Sports as we bring you live coverage of the 36th edition of the National Games being held in Gujarat across 6 cities. Today is day 9 of this national competition, and the highlight of day 8 has been the judo competition, especially with the performance of Tulika Maan, who won the women's judo gold medal in the plus 78 kilogram weight category. She is from Delhi and she defeated her opponent through an ippon and winning the gold medal in judo. Well, as far as the medals tally is concerned, it has been the Services Sports Control Board which has dominated the competition with 100 medals, 42 golds, 31 silvers and 27 bronze medals, followed by the state of Haryana with 75 medals, 29 golds, 23 silvers and 23 bronze medals. And in third place is Maharashtra with a total medals tally of 100, but 26 golds, 26 silvers and 48 bronze medals. That has been the performance so far, and we are into day 9 of the competition. In a short while from now, we will show you men's hockey directly from Rajkot, and these are the quarterfinal stage in the men's hockey, starting with Karnataka versus Gujarat. That would be the match that we would show you, and then it will be followed by Haryana versus Tamil Nadu, then Uttar Pradesh versus West Bengal, and finally Maharashtra versus Jharkhand. And the winner of each of these 4 matches would determine the berths for the semi-finals in the men's hockey. Also in day 8 of the competition, there was plenty of action apart from Tulika Maan's judoka gold medal winning performance in judo. Sunibala Devi of Manipur also won the gold medal in judo in the below 63 kilogram weight category after she defeated Megha Tokus of Delhi to win the gold medal. And in the men's below 66 kilogram weight category, it was N.K. Roman of the Services Sports Control Board who won the gold, beating Ayush Mawari of Delhi in the final. In the men's below 60 kilogram weight category, it was UP's Vijay Yadav who beat Delhi's Harsh Singh to win the gold medal. Apart from judo gold medal winning performances, we also saw action from swimming, and this is from Rajkot, where the hockey events are also being held, and the star performer was the Mana Patel from Gujarat, who won the women's 50 meters backstroke event. Also in the men's backstroke was underway, and Karnataka once again winning the swimming medals quite comprehensively. If you look at the mixed 4 into 100 meters freestyle relay, Karnataka won the gold medal with a timing of 3 minutes and 44.62 seconds. In second place was Maharashtra with a timing of 3 minutes 47.81 seconds, and in third place was Tamil Nadu with a timing of 3 minutes 50.74 seconds. And this is directly from Rajkot, where both the hockey and the swimming events are being held. Like I mentioned earlier, Mana Patel had earlier won the 100 meters gold as well, and she has been really setting the swimming medals on fire. Apart from that, Sajan Prakash clinched the men's 200 meters medley gold with a National Games record of 2 minutes 5.81 seconds, and Karnataka's S. Siva took the silver with 2 minutes 7.47 seconds, while Tamil Nadu's Rohit Benediction won the bronze medal in the 200 meters medley gold for men with 2 minutes 8.66 seconds in the men's 200 meters medley event. Then if you look at Hashika, who won the women's 200 meters medley with a timing of 2 minutes 26.23 seconds, with Manavi Verma winning the silver, while Goa Shrungi Bhandekar won the bronze medal with 2 minutes 28.64 seconds. So that's been the swimming action so far, and Karnataka's Hashika Ramachandra clinched the gold in the women's 400 meters freestyle event as well. And finally, a silver medal going to Delhi with Bhavya Sachdeva winning the silver medal, and Vritti Agarwal of Telangana winning the bronze medal. Sajan Prakash once again came into the highlight from after winning the 400 meters freestyle event to win the gold, and it was Advait Page who won the silver, followed by Anish Gowda of Karnataka, who took the bronze medal. There has been a lot of action in the other contact sport apart from judo, which is boxing men's welterweight competition,
and the men's lightweight competition as well. And do watch out for the men's welterweight competition, especially Shiva Thapa, who is a world championship bronze medalist, and he was through to the quarterfinals with a 5-0 win over Aniket Pandey of Gujarat. And Shiva will next face Vikas in the last 8 bout, which is the quarterfinals. Services Sports Control Board, which has dominated the competition with a total medals tally of 100, 42 golds, 31 silvers and 27 bronze medal. Akash from the Services Sports Control Board has also reached the last 8 with a 5-0 win over Aman of Chandigarh. UP's Aditya Pratap Yadav reached the quarterfinals with a win over Odisha's Smarak Sahu, and Punjab's Vikas Kumar beat Bihar's Haider Ali 1-0 to reach the quarterfinals as well. That's the men's welterweight position right now as they reach the last 8 in this boxing event. In the men's lightweight competition, Tripura's Parvinder Punia won the bout 5-0 against Chhattisgarh's Lokesh Sahu, and Inderjeet Singh of Daman and Diu won 5-0 against Jharkhand's Kirandeep Singh. Services boxer Mohammad Itash Khan beat Maharashtra's Harivansh Tiwari 5-0, and Punjab's Vijay Kumar won 5-0 against Karnataka's Kiran. So that's the latest action as far as boxing men's lightweight competition is concerned. You also have Yogasana at the National Games this time round as one of the disciplines there where the competition has taken place. Maharashtra's Vaibhav Srirame took the gold in the men's traditional event, and Shubham Devnath of West Bengal won the silver, while Mohammad Feroz of Karnataka took the bronze medal there. And if you look at shooting, it was Madhya Pradesh's Neeru who came out on top with the gold medal, and then UP's Sabira Harris won the silver, and the bronze went to Seema Tomar of the Services. The other medal winner in the men's trap gold was Vivan Kapoor, who won the gold with a score of 31 in the men's trap event, with Punjab's Zarovar Sandhu took the silver, while bronze went to Tarashia of the Services Sports Control Board. In football, that was another highlight of yesterday's National Games event, where Gujarat beat Punjab by 3-2 to win the final match of the league stage in the men's football. And in women's hockey, this is the quarterfinals that took place yesterday. Punjab beat Gujarat by humiliating score of 24-0. Remember, this is the women's hockey quarterfinal match that really came to the forefront. We obviously have men's hockey, which is now coming up with the match between Karnataka and Gujarat, where directly from Rajkot, which is one of the 6 centers hosting the national games. So let's go and see what's the latest as far as hockey is concerned. This is one of the 4 quarterfinals that is going to be held today at Gujarat, the National Games, the 36th edition of this mega event, being held after 7 years. The last time it was staged was in 2015 in Kerala. So let's go directly to Rajkot, where the men's quarterfinals between Karnataka and Gujarat in hockey is about to commence. पता नहीं, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए वहां से, प्रोड्यूसर ने कहा कि पहला क्वार्टर फाइनल जाएगा, ये आप 650
Back to the Doordarshan studios as we show you the 36th edition of the National Games being held in Gujarat, and one of the venues for hockey is Rajkot, and for that we have the men's quarter-final matches, 4 of them with Karnataka and Gujarat, which is about to commence in the men's quarter-finals hockey event, followed by Haryana versus Tamil Nadu during the course of the day. Uttar Pradesh versus West Bengal in the 4th and final quarter-final match would be between Maharashtra and Jharkhand. And this is after the action that we saw yesterday in women's hockey, where Punjab beat Gujarat by 24-0 in women's hockey. And that was the quarter-final match as well. Let's have a look at what happens in men's hockey today, especially with the competition that has been on fire as far as hockey is concerned. And remember, both Haryana is at second place in the medals tally. So let's go back to Rajkot, where the first quarter-final match in men's hockey is about to commence between Karnataka and Gujarat, the host state. टीम उड़ीसा को शिकस्त देकर के एक उलटफेर किया था। देखिए बेहतरीन डिफेंसिव स्किल दिखाते हुए और 4 नंबर की जर्सी खिलाड़ी को पास किया अब्राहम सुदेवी और वापस से 24 नंबर की जर्सी में बॉल के साथ इस समय एसवी सुनील कप्तान शूटिंग सर्कल में दाखिल हुए। डिफ्लेक्शन की कोशिश थी मिलन। Extremely important that the finish will have to come from them, but this is the man on whom they're going to bank a lot out there, Karnataka. We are into the second minute of play out here in this crucial match. All the past is forgotten, remember, because it's here that one of the two teams will make it to the semi-finals. Dangerous play there coming up from the Karnataka side. And a reminder that we're coming to you from the wonderful Dhyan Chand hockey stadium here in the heart of the city of Rajkot. The first of the quarterfinals, which features Karnataka versus Gujarat. We'll talk of the Gujarat team as well, as there is a side pass there, picked up well, weaving his way through. A good combination there for Gujarat as also Karnataka, and the two teams are deciding that in the earlier 3 minutes of play, they will make sure that they look at the opportunity. Opportunities do or have come their way, but have not really been capitalized on. So Karnataka out here went into that early lead to start off with, and that lead, I suspect, Vikas, will help them to be in the groove from the very beginning. They'll keep on putting the pressure at regular intervals. When you go into the end of the first quarter with, let's say, 2 or 3 goals, then the pressure in the remaining 3 is that much lesser. यकीनन तौर पे आपकी बात से सहमत। पहले क्वार्टर में जब भी आप लीड लेते हैं, अपोनेंट पे अपने प्रतिद्वंदी पे दबाव पैदा करेंगे, और पहला गोल आया मोहम्मद राहिल मोहसिन। क्या खूबसूरती से गोल किया था मोहम्मद राहिल मोहसिन ने मुकाबले के दूसरे ही मिनट में, और दर्शाया जिस तरीके से मोहम्मद राहिल मोहसिन का फील्ड गोल। एक बार फिर से अटैक पर इस वक्त गुजरात की टीम इस समय शूटिंग सर्कल के अंदर। मोहम्मद राहिल मोहसिन के बारे में आपको बता दें, बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं। 5 साइड हॉकी 5 मुकाबले खेले पोलैंड में, 10 गोल किए, और 10वें पुरुष सीनियर नेशनल झांसी में जो आयोजित हुई थी उसमें बहुत अहम भूमिका अदा की थी इस खिलाड़ी ने। Unable to trap there, and then tried to get that wild one, but was not successful. The pressure obviously on Gujarat. And talking of Gujarat, they lost to Haryana 0-7. That was a big match. Then they lost to Maharashtra 21. They did manage to get that 1 goal. I wonder how they got that goal. But this is a young outfit, Vikas. So obviously it's a learning curve for them. And being the host state, Gujarat, here in this hockey tournament, they have a long way to go. It doesn't really matter at the end of the day. They're slipping well on this AstroTurf, which has been wonderfully laid out, and then they lost to West Bengal by 8 goals to 2. So Gujarat has a long way to go, but learning is going to be the order of the day. यकीनन तौर पे इतना बड़ा ये इवेंट है, इतना बेहतरीन मंच, राष्ट्र के तमाम बड़ी टीमें इसमें शिरकत करें, और गुजरात की युवा खिलाड़ियों को सीखने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इस बात को दर्शाया भी उन्होंने, जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़े गुजरात के मिलिंद, इस टीम ने इम्प्रूव किया अपने खेल को। पिछले मुकाबले मुझे याद है रुचित पटेल, और गुजरात के लिए फ़िलहाल इसी बीच एक और आक्रमण शूटिंग सर्कल के बिल्कुल पास, और 23 मीटर रेखा से गुजरात की टीम अटैक करती हुई बेहतर रणनीति के तहत, और सीखने के लिए बहुत है इन युवा खिलाड़ियों के लिए। धनराज पिल्लई एकेडमी और गुजरात इसी बीच इस समय पेनल्टी कॉर्नर मिला गुजरात को।
क्या बेहतरीन कोशिश थी, शूटिंग सर्कल के अंदर दाखिल हुए और बहुत एक सुनहरा अवसर है गुजरात के लिए। पहला पीसी इन्होंने अर्जित की है। अहम रहेगा इस पीसी को, पेनल्टी कॉर्नर को कौन से खिलाड़ी इंजेक्ट करते हैं, और अगर यहाँ पे बराबरी का इक्वलाइजर का गोल आता है मिलन, तो गुजरात की टीम के आत्मविश्वास में इजाफा होगी। Absolutely, I think capitalize on a penalty corner. And if you look at the history of this tournament, which started on the 2nd of October, then there have been only 4 penalty corners which have been converted in this entire tournament. 2 penalty strokes, and all the others have been field goals. There for Gujarat is Sahil Katiyar waiting, and will this be taken there? Taken well blocked there by, nearly there. As far as Gujarat are concerned, asked to be taken again. Sarat Somanna Kudira was strong there. Karnataka has always had a good goalkeeper, Ashish Ballal and Subaiya, the 2 big names as far as Karnataka are concerned. But here Gujarat, wonderful opportunity that they have had their way, but very effectively blocked by Sharat Somanna Kudira. So the second penalty corner being asked to be taken for the Gujarat team. If you don't convert penalty corners, then half the job is lost. यकीनन तौर पे आपकी बात से सहमत। फिलहाल इस समय पेनल्टी कॉर्नर दोबारा लेने के लिए गुजरात के लिए इंजेक्ट किया, ठीक तरीके से स्टॉप नहीं कर सके, और इस बार पहला गोल गुजरात के लिए। लीजिए इस समय इस बात की जाहिर करते हुए दर्शकों की आवाज, गुजरात ने आखिरकार बराबरी का गोल कर लिए। क्या शानदार तरीके से नजर डालते हैं रिप्ले में। इस बार बेहतरीन 2 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने बॉल को बेहतर तरीके से अपनी रीच में, और आप देखिए टॉमाहॉक लगाया रिवर्स स्टिक से। मिलन कितना दर्शनीय गोल गुजरात के लिए आता हुआ। यकीनन तौर पे बराबरी का ये गोल, और मुकाबले में 1-1 की बराबरी पहले क्वार्टर में। बहुत ही शानदार शुरुआत की है गुजरात की टीम ने भी, और दर्शाया है कि ये टीम आज एक अलग इरादों से आई है क्वार्टर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में, अलग रणनीतियों से। और देखिए पहले क्वार्टर में जिस तरीके से गुजरात के लिए गोल आया, अब ये टीम बेहतर तरीके से स्पर्धा देगी यहाँ पे। Did that come from Ruchit Patel, the number 4, and it came at the right time. So once again they bounced back Gujarat very effectively as a result of some wonderful play, a combination I thought of Sham Prakash Yadav and Ruchit Patel getting them that particular goal of the second penalty corner. And that's the reason, Vikas, why I said that if you convert your penalty corners into goals, then half the battle is won. I said some time back half the battle is lost, but in this particular, Karnataka on the move there, dangerous, they're looking very dangerous there, Karnataka, but taken away from harm's way at this point of time with Abraham Sudev, one of the goal scorers. In fact, Abraham Sudev has got a goal there, the field goal and a penalty corner. He's got a total of 2 goals. Karnataka will want to bounce back, but 1-1 after just about 7 minutes of play. This quarter-final is turning out to be very interesting. यकीनन तौर पे क्या बेहतरीन, आपने बहुत सही बात कही कि जब आप पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करते हैं सफलतापूर्वक, तो आधी आपकी बैटल अगर बात करें लड़ाई जीत लेते हैं। लेकिन यहाँ पिछला गोल श्याम प्रकाश यादव मुकाबले के 6ठे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया गोल के रूप में, और फिलहाल एक कर्नाटका का मुंह बनता हुआ इसमें सुनील टीम के कप्तान। पेनल्टी कॉर्नर मिला कर्नाटका को, ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर कर्नाटका के लिए। देखना होगा किस तरीके से ये टीम, अभी तक के 12 नेशनल जो हुए हैं सीनियर मेंस, जिसमें 6 बार मेडल जीती है टीम, और पिछले 2 लगातार कंसिस्टेंट 11वें और 12वें नेशनल में टीम ब्रॉन्ज जीत कर आई है। और इस टीम में निगाहें डालिए आप, जो कर्नाटका की टीम है इसमें सुनील गजब का तजुर्बा फिलहाल नजर डालेंगे। इससे बात करें पेनल्टी कॉर्नर पे, क्या मिलन यहाँ से ये टीम अगर कन्वर्ट करती है, वापस से प्रेशर बिल्ड करेगी युवा टीम गुजरात पे कर्नाटका। Yes, absolutely. Pressure there on Vikas Kewat, the goalkeeper for Gujarat. We are now getting a penalty corner in the 9th minute of play here in the first quarter of this, the quarter final. All set there for that penalty corner. The first of them for Karnataka. Will it be Sunil Kumar, the experience of his, who will be able to convert it? We've got Abraham Sudev waiting there. Taking it is K.R. Bharat for Karnataka. And well, you couldn't have asked for it better. You just said that the pressure has now bounced back on Gujarat. गोल किया एक बार फिर से, नजर डालते इस रिप्ले में बेहतर तरीके से बॉल को स्टॉप किया। इसमें सुनील ने इंजेक्ट किया था,
एक जरूर खिलाड़ी से गुजरात के स्टिक से लगकर गेंद थोड़ी डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन इतनी तेज गति हो मिलिंद, 150-160 किलोमीटर प्रति घंटे होती है ड्रैग फ्लिक की, और वहां रोकना जब तक प्रॉपर तरीके से आपके ठीक पोजीशन में ना हो। सेशे गौड़ा वीएम तीसरा गोल आया है इनके, बात करें इस समय मुकाबले का तीसरा और कर्नाटका के लिए दूसरा गोल इस समय सेशे गौड़ा वीएम। इससे पहले भी गोल कर चुके हैं सेशे गौड़ा, देखना होगा। और अब 2-1 की बढ़त पहले क्वार्टर में। जबरदस्त शुरुआत कर्नाटका की, अनुभवी टीम है और दर्शाया इसमें सुनील ने, दर्शाया इस मुकाबले में जिस तरीके से इस टीम में 2 ओलंपियन खेल रहे हैं, नितिन तिमैयासी, ऐसे खिलाड़ियों के अनुभव। और देखिए मिडफील्ड में किस तरीके से वापस बॉल पोजीशन गुजरात के पास, बढ़िया थ्रू पास, अच्छी कॉम्बिनेशन। मिडफील्ड का बैटल आधुनिक हॉकी में मिलिंद बहुत अहम रहता है, क्योंकि ऑल हॉकी का जमाना है। और जिस तरीके से गुजरात की टीम आज एक बदली हुई टीम नजर आ रही क्वार्टर फाइनल में। Oh, they look a absolutely different outfit from what we've seen them over the last 7 days of this competition, starting on the 2nd of October. And here we are with the ball with the captain Yash Bhausar, gets it across on the far side. Gujarat playing a very cohesive game, and on this particular occasion, trapped well with Ruchit Patel, who scored that goal. A combination of Shama Prasad Yadav and Ruchit Patel. Shama Prasad Yadav it was who took it well, and then it was tapped inside, I thought, by Ruchit Patel to get Gujarat. But then very quickly in the 9th minute of play of a penalty corner, once again Karnataka bounced back. Karnataka playing in a yellow and a red color, wonderful colors there. And Gujarat on the other hand, oh, into the circle there. This is going to be close, and they're taken away. But Karnataka still continues to lead by 2-1. और मिलिंद यहाँ एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है कर्नाटका को, ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर। पिछले पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया था गोल के रूप में, और बढ़िया संकेत है जब भी आप बड़े मुकाबलों में पेनल्टी कॉर्नर को बेहतर सक्सेस रेट से कन्वर्ट करते हैं। ये दर्शाता है कि आप किस रणनीति से आए हैं। और अनुभवी खिलाड़ी इस टीम में फिलहाल देखेंगे इस समय इंजेक्ट करने के लिए पेनल्टी कॉर्नर। कर्नाटका 2-1 से बढ़त पे, पहले क्वार्टर का खेल जारी, क्वार्टर फाइनल मेंस वर्ग का। और बात करें दोनों पूल से 4 टीमें क्वार्टर फाइनल्स के लिए जो फॉर्मेट रहा है, इससे 36वें नेशनल का सभी टीमों ने क्वालिफाई की है। और आज का ये पहला मुकाबला कर्नाटक वर्सेस गुजरात, होम टीम, बड़ी संख्या में स्पेक्टेटर्स आए हैं, बेहतरीन ये मैदान इस समय। और देखिए इस समय तस्वीरों में इंजेक्ट किया, इस समय स्टॉपर नेरो का ट्रैक किए, और एक और गोल आता हुआ कर्नाटका के नाम। 3-1 की बढ़त कर्नाटक को, खुशी की लहर देखिए इस समय। येलो और रेड कलर की जर्सी की टीम मुकाबले के पहले क्वार्टर में प्रभावित की है अपने शानदार खेल से। मिलन देखिए इस समय इस खूबसूरती से इसे इंजेक्ट किया, बढ़िया स्टॉपर ने स्टॉप किए, और ट्रैक देखिए लाजवाब, तेज तर्रार, कोई ऑप्शन मौका नहीं था गोलकीपर, बात करें विकास केवट के लिए। Absolutely. I think as you said earlier on, traveling at 160 odd kilometers an hour, and that really stung the Gujarat team. All ends up with the goalkeeper Vikas Kewat beaten, all ends up. So now with approximately 5 odd minutes to go out here in the first quarter, Karnataka are leading by 3-1. They've taken a wonderful lead there. We got new goal scorers in the earlier matches. Harish Motagir had scored 3 goals, all 3 of them field goals, and then the others for them was Abaram Sudev 1 and Gurmukh Singh there, of course, getting 1 for Haryana towards the end of this particular pool games. But yes, Karnataka on a roll in this particular first quarter. बारिश के दिन खत्म हो गए हैं, but I'm sure, Vikas, as the day progresses, we'll see a rain of goals coming out here. बिल्कुल आपकी बात से सहमत, और आज देखने को भी ऐसे ही मिलेगा कि गोलों की बारिश होगी। पिछला गोल सेशे गौड़ा वीएम ने मुकाबले में 10वें मिनट में गोल किया था, और पेनल्टी कॉर्नर, दोनों पिछले पेनल्टी कॉर्नर को सेशे गौड़ा ने कन्वर्ट किए हैं गोल के रूप में। सेशे गौड़ा वीएम के बारे में बता दें, बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी के तौर पे अपनी क्षमता रखते हैं। वापस से गुजरात की टीम इस समय बॉल पोजीशन पे, और मिलिंद ने जैसा कहा यकीनन तौर पे आज गोल की बारिश देखने को मिलेगी। पहला क्वार्टर फाइनल इस समय, जहां गुजरात वर्सेस कर्नाटका 3-1 पहले ही क्वार्टर में, और 3 जो गोल आए हैं कर्नाटक के लिए। पहला मोहम्मद राहिल मोहसिन ने किया था फील्ड गोल। मुकाबले की बात करें, तीसरे
महज इस समय दूसरे ही मिनट में। उसके बाद गुजरात के लिए गोल आया, श्याम प्रकाश यादव ने किया था पेनल्टी कॉर्नर से, और पिछले दोनों ही गोल इस समय शेषेगौड़ा वीएम कर्नाटक के लिए 8वें और 10वें मिनट में। फिलहाल एक अच्छा अटैक बन रहा है गुजरात का, लेकिन इस समय मैच ऑफिशियल कि ये निर्देश इस समय फ्री हिट लेती हुई गुजरात अब राइट फ्लैंक से अटैक बनाएगी मिलिंद। So from Shama Prasad, looking for his partner there, but not able to find one, and then the possession is with Karnataka. With about 4 minutes of play remaining here in the first quarter, I suspect that Karnataka would like to capitalize. Prithviraj GN for Karnataka. That long pass very close to the D out there, taken away by Shama Prasad Yadav for Gujarat. On there now to Sohan Shilaya. Karnataka then with the very experienced KR Bharat very close to the danger area, and Karnataka now get a free hit. Very taken very quickly there by Prithviraj GN for Karnataka. Then into the D, but slight hesitation on the part of him to really give it back. And is that one more penalty corner? या बिल्कुल सही कहा आपने, एक और पेनल्टी कॉर्नर, और पेनल्टी कॉर्नर नंबर चौथा है जिसमें कि अभी तक 3 में से 2 को सफल किया गोल के रूप में। बहुत शानदार ट्रैक फ्लिकर है इनमें। आजकल हॉकी में मिलिंद बात करें, अलग से पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं, और शेषेगौड़ा वीएम इस बात को प्रदर्शित की है। 2 बात करें हिट लिए हैं उन्होंने ट्रैक फ्लिक के तौर पर पेनल्टी कॉर्नर में, और दोनों को कन्वर्ट किया है गोल के रूप में बेहतर सक्सेस रेट के साथ। So yes, that will be a good combination here with Karnataka leading 3-1 with 3 minutes of play remaining in the first quarter. Are they able to capitalize out here and push their scoreline to 4-1? Everything is ready. Will he be able to convert this one? Taking this is the captain SV Sunil. God, nearly there, going absolutely wide over the back line, and once again the game commences with under 3 minutes of play here in the first quarter. I'm sure when they go back into the dugout out there, then in which case Vikas, it will be their coach Napoleon. What a wonderful name. He comes from Imphal, the capital of Manipur. Their coach, the reserve umpire of course is Napoleon, but their team manager Deepak Sawant and their coach, I'm sure, will have a lot to tell the players to make sure that they try to bridge the gap and make that 3-1, 3-2, because the moment that happens, then Karnataka will have to really start thinking their strategy. बिल्कुल सही फरमाया आपने, यकीनन तौर पे कोच आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी रणनीति अपनाएंगे। और खास करके देखिए आप, मैंने गुजरात के तीनों ही मैच फॉलो किए, बड़े अंतर से मुकाबले हारी, लेकिन आज के क्वार्टर फाइनल में एक बेहतर डिफेंस और सबसे अच्छी बात नजर आई गुजरात, आज शानदार अटैक बनाती हुई टीम। Because they will have to forget everything. The loss of 7-0, the loss of 21, the loss of 8-2 is history. इतिहास दोहराता है, but you also learn from history. बिल्कुल इतिहास से हम सीख सकते हैं, और दर्शाया इस टीम ने क्वार्टर फाइनल, क्योंकि मुकाबले का हमेशा से नॉकआउट मैच होता है, एक अलग स्ट्रैटेजी से आई है, और मिलिंद हर दिन अलग दिन। फिलहाल इसमें सुनील बॉल लेकर के 23rd मीटर की रेखा को क्रॉस किया, बॉल पोजीशन कर्नाटका ने जीती है, और यहाँ से मिला है इनको लॉन्ग कॉर्नर। आजकल के आधुनिक हॉकी में 23 मीटर की रेखा से शूटिंग सर्कल के अंदर टमाहॉक रिवर्स हिट से, लेकिन मिलिंद जिस तरीके से ये खतरा टला, कितना जल्दी इस समय बॉल पोजीशन गुजरात ने विन की, स्कूप आता हुआ। लेकिन इसी बीच एसवे सुनील, आप जानते हैं ओलंपियन एसवे सुनील, अर्जुन अवॉर्डी 2014 कॉमनवेल्थ गेम, लंदन ओलंपिक 2012, इसके अलावा 271 मुकाबले खेले एसवे सुनील ने, और वो टीम की कप्तानी कर रहे हैं मिलन। एक अनुभवी साइड है कर्नाटका, और गुजरात युवा टीम सीख कर जाएगी यकीनन तौर पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म से। Yes, this is a huge learning lesson for Gujarat. We are now into the last 55 seconds of the first quarter. Remember, hockey has changed since 2018 when the international body into the striking circle. Dangerous there, but yes, called out into the back line. Good attempt there from Karnataka, coming there from Harish Motagir.
but squandered on that particular occasion. So the clock now ticking for the end of the first quarter, which is now coming up. Not trapped well on that occasion was Prithviraj G, and he's been amongst the thick of the action, Prithviraj. And yes, Vikas has been talking about 2018 when this game changed from the traditional 70 minutes of play to the 4 quarters, and that Vikas, I think, has made the entire game so interesting. बिल्कुल सही कहा आपने। और हमेशा से जब भी बदलाव होते हैं खेल को और प्रभावी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, फिलहाल इसे बीच शूटिंग सर्कल में बॉल क्रॉस आया, डिफ्लेक्शन के लिए ऐसे अमूमन क्रॉस आते हैं। और मिलिंद, आप जो बात कर रहे थे, पहले क्वार्टर की फिलहाल समाप्ति हुई है 3-1 की बढ़त के साथ। पहला क्वार्टर खत्म किया है कर्नाटक ने, और अभी तक के जो गोल स्कोर रहे हैं नजर डालेंगे। पहला गोल आया था दूसरे मिनट में, मोहम्मद राहिल मोहसिन फील्ड गोल। इसके अलावा गुजरात के लिए छठे मिनट में श्याम प्रकाश यादव, और तीसरा गोल 8वें मिनट में शिशे गौड़ा वीएम। और कर्नाटक के लिए चौथा जो गोल था, बात करें इस मुकाबले का, फिलहाल नजर डालते हैं इससे पहले गोल पे। खूबसूरती से बॉल रिबाउंड पे वापस आई थी, गोलकीपर को परेशान किया। ये दूसरा पेनल्टी हिट जिसे लिया था शिशे गौड़ा वीएम ने, और देखिए रिवर्स सीट से टॉमाहॉक लगा के ये दूसरा गोल किए, और जिस तरीके से बिल्कुल परेशान किया। 3-1 की बढ़त इस बात को, और ये बेहतर शानदार अंदाज में ट्रैक फ्लिक था। Milind. I think we must give it to Gujarat the way they have played this first quarter for a side who actually was down, losing 21, 7-0 and 8-2. If you look at this particular match, the quarter-final match, it's a do or die for either of the two sides. In the pool, you always have a chance of coming back in the remaining two games if you're lost. But out here, there is no chance. You lose this match and you're out of the competition. Gujarat or Karnataka, I'm not going to say who's going to win this match, because we as commentators are supposed to be absolutely unbiased. But very clearly, this side on a picture frame, Hockey Karnataka, with Subbiah, who is the General Secretary of the Karnataka State Hockey Association, very experienced player, and they have produced so many good players over the years. You spoke about the history of Karnataka over the last 10 odd years, where they have gone on from strength to strength. A lot of the Karnataka players from Coorg, because Coorg, the hill station, produces some wonderful players. As I said, Timaya is one of them. They produce good soldiers. Incidentally, today is Indian Air Force Day, the 8th of October, as we celebrate. But as we come back here into play in the second quarter, I think Gujarat deserves their share of credit for some wonderful display in the first quarter. यकीनन तौर पे गुजरात की तारीफ करनी होगी। पहला क्वार्टर जिस तरीके से खेला इस टीम ने, एक मजबूत और अनुभवी टीम के खिलाफ जो स्ट्रैटेजी बनाए, और एक गोल पहले क्वार्टर में आत्मविश्वास बढ़ाएगा इस टीम का। फिलहाल दूसरे क्वार्टर की शुरुआत होती हुई आपको बताते चले कि आज पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले आप तक हम लेकर आए डीडी स्पोर्ट्स पे, जिसका सीधा प्रसारण, और 36वें राष्ट्रीय खेल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन गुजरात राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त मेजबानी में। फिलहाल इसी बीच इस समय कर्नाटक के लिए अटैक बनता हुआ अब्राहम सुदेवी, बॉल के नीचे इस समय बेहतरीन क्रॉस शूटिंग सर्कल के अंदर, बहुत ही बढ़िया काम एंड कूल होकर डिफेंस ने इस आक्रमण, अभी भी खतरा टला नहीं है। वापस बॉल इस समय शूटिंग सर्कल में, और दर्शाते हुए गुजरात के खिलाफ लगातार इस समय अनुभवी टीम कर्नाटक अटैक दोनों ही फ्लैंक से बनाती हुई। Absolutely, I think the pressure has started from Karnataka in the very first minute of play out here. I'm sure they had a long chat in those 2 minutes. 120 seconds can be a long time within which you can get your advice from your coach, which is Vinaya Wakaliga for Karnataka. Likewise, Francis Paul Parmar would have had his words of advice for the Gujarat team. Gujarat now with the possession, back to Karnataka, and that through Nachappa R. Now remember, Nachappa is a very popular name. Ashwini Nachappa, the famous athlete for India, and here now with Sharat Somanna Kudira, the goalkeeper, who has not really been tested. And yes, one more penalty corner here coming up in the very second minute of play here in the second quarter. So relentless pressure being put on by Karnataka on Gujarat, and the goalkeeper there for Gujarat, Vikas Kewat, number 18, hawk eyes that he's looking like. They will take their own time. 3-1 is Karnataka, just in case you're switched on your television sets here at home. It's early morning, just about half an hour into play, having started at 7 a.m.
out here in Rajkot. Stopped well there. Will this be the one? Well, squandered once again. That was the fifth of the penalty corners which came Karnataka's way in the very opening minutes of the second quarter, and missed by Karnataka from taking what could have been a possible fourth goal. यकीनन तौर पे इस समय बात करें दूसरे क्वार्टर के शुरुआती मिनट में, अब वापस से लॉन्ग कॉर्नर 23 मीटर की रेखा से कर्नाटक की टीम लगातार मिडफील्ड से बॉल बेहतर सप्लाई हो रही है। फॉरवर्ड लाइन में आप देखिए इस टीम के बेहतरीन खिलाड़ी जिस तरीके से अभी तक के पूरे टूर्नामेंट में, चाहे बात करें हरीश मुतागर 3 गोल कर चुके हैं कर्नाटक के लिए, शेषे गौड़ा भी है, इससे पूर्व 2 गोल उनके नाम थे और आज 2 महत्वपूर्ण गोल। मिलिंद, Yes, absolutely. You know, the other important point that I wanted to make to you, Vikas, is ball possession. Karnataka seem to be having, there you are, the ball possession, which is now coming from Nachappa Junior. There into the striking circle, coming from Surya NM, but a penalty corner once again. The moment you have more ball possession, so much is the better chances of a penalty corner, and Gujarat must start realizing this. Take more possession of the ball, move into the other half very quickly, don't be defensive. When you're aggressive, the chances of a goal are much better. यकीनन तौर पे बॉल पोजीशन ने हॉकी जैसे मुकाबले में सबसे बात करें गोल करने की और सफलता की है, जितने ज़्यादा बॉल पोजीशन रखेंगे शूटिंग सर्कल के अंदर, जितना प्रेशर बिल्ड करेंगे अपने प्रतिद्वंदी टीम पे। फिलहाल नज़र डालते हैं इस समय पेनल्टी कॉर्नर पे पेनल्टी हिट लेने के लिए आज के दोनों ही अंपायर, बात करें अश्विनी कुमार पंजाब से और मुंबई से सूरज दुबे। आप देखिए लंबी हाइट में जो इस वक्त स्क्रीन पे हैं इस समय अश्विनी कुमार। फिलहाल इस बार बेहतर तरीके से, हालांकि वेरिएशन तलाशने की कोशिश थी लेकिन उतना बेहतर तरीके से इसे फिलहाल अभी भी शूटिंग सर्कल में शानदार कोशिश गुजरात के डिफेंस का, पूरी तरीके से समर्पण के साथ अपने आप को युवा टीम संपूर्ण समर्पण दिखाते हुए मिलन। Very well cleared there by Shama Prakash Yadav, who has been amongst the goals earlier on. But Karnataka very quickly, once again, with the ball possession. That's what we have been talking about. A bounce there, not in their favor. And there Gujarat being warned. A card yet not being shown to either of the two sides. Remember the green card, the yellow, and of course the dreaded red card. Who wants a red card? What the beauty of this tournament so far in 7 days is there has been no red card at all. बिल्कुल मिलिंद, सही कहा आपने, एक भी रेड कार्ड नहीं मिला, लेकिन मुझे याद है महिला वर्ग में एक येलो कार्ड जरूर दीप ग्रेसिक का ओलंपियन को पिछले मुकाबले में मध्य प्रदेश के खिलाफ मिला था। फिलहाल इस समय नजर डालते हैं इस पेनल्टी कॉर्नर पे, एक और पेनल्टी कॉर्नर, 7वां पेनल्टी कॉर्नर कर्नाटका के लिए। लगातार बॉल पोजीशन रखे, यही वजह है प्रतिद्वंदी टीम पे आक्रमण बनाए, और जब भी इतने ज़्यादा दोनों छोर से आक्रमण होता है गलतियों की गुंजाइश होती है, और वही वजह है कि 7 पेनल्टी कॉर्नर दूसरे ही क्वार्टर में। फिलहाल इस बार स्टॉप किया, ट्रैक फ्लिकर ने ट्रैक किए, बहुत अच्छी कोशिश, मैच ऑफ सेल के विसिल, क्योंकि वहां फाउल हुआ और लॉन्ग कॉर्नर दिया है, थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी। वापस से इस समय बॉल पोजीशन गुजरात के पास। बहुत अहम बात कही आपने, 7 दिन के खेल में अभी कोई भी रेड कार्ड किसी खिलाड़ी को नहीं मिला है, और ये अनुशासन दर्शाता है अभी तक के खेल में। The first 4 minutes of play here in the second quarter have been comparatively easy, with Karnataka getting a few penalty corners in their favor. Gujarat now doing well through Sahil Katiyar, but Karnataka very quickly taking possession of the ball and moving further. Now ball with Abraham Sude, one of the... Oh, that's a brilliant save. That's a brilliant save coming from Vikas Kewat. That surely, Vikas, could have been goal number 4 for Karnataka. यकीनन तौर पर यह सुनिश्चित गोल था, लेकिन विकास केवट क्या लाजवाब पूर्वानुमान के साथ, और इतनी तेज गति से बॉल जब आती है, देखिए शूटिंग सर्कल के अंदर पूरी ताकत से ये क्रॉस बिल्कुल गोल पोस्ट के किनारे पे, लेकिन क्या शानदार पूर्वानुमान। मिलिंद, इस युवा गोलकीपर ने काबिल तारीफ प्रयास किया है। फिलहाल वापस से इस समय प्रतिद्वंदी टीम अटैक पे 23 मीटर की रेखा के अंदर दाखिल हुए, टमाहॉक लगाए शूटिंग सर्कल के अंदर इस समय, लेकिन बॉल निकल गई गोल पोस्ट को छोड़ती हुई। गोलकीपर को टेस्ट करना होगा यहां से, तब जाके प्रेशर वापस से बना सकती गुजरात की टीम। The first signs of aggression which have come here in the second quarter from the Gujarat side, moving very swiftly out there. Ball with A.K. Dikshit for the first time that we've seen him in action. Pressure there. Once again done extremely well by Vikas Kewat. The second time in just about 2 minutes. The danger are now thwarted from the Gujarat goalkeeper.
Ball now with Shama Prasad Yadav. He's been the wild wire out there in the entire play that we've seen in the 2 quarters so far. Taken well off the bounce there. AstroTurf, remember, unlike the good old days of grass, when you can actually predict, and that's one of the reasons as to why the Dutch, the Australians, the Argentinians, the Spanish, as into the D there, taken well by Karnataka, but yes, given away on that particular occasion. Number 24, a very popular name, a very familiar name as far as Indian hockey is concerned, SV Sunil, the captain who's been a part of the Indian team. There, danger once again, but cleared well as far as Gujarat defense is concerned. Neil Patel, once again, the second time. You know, if you look at the passing, Vikas, the dribbling has been good from Gujarat. The passing has been slightly poor, and then the trapping from the compatriot has been poor. On the converse, the Karnataka side has been a very cohesive force in this particular competition. Surya NM, danger still once again there, thwarted as a result of some good defense from Yash Bhavsar, the captain, whom we've seen in action, and one more penalty corner there coming the way of the Karnataka side. So plenty of penalty corners, important for Karnataka, convert them. यकीनन तौर पे 8वां पेनल्टी कॉर्नर कर्नाटका के लिए, और पेनल्टी कॉर्नर अभी तक देखे 7 में से 2 पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया है गोल के रूप में, जिसमें कि नज़र डालें शेषे गौड़ा BM, इस टीम के अहम खिलाड़ी फिलहाल इंजेक्ट करने के लिए। अहम बात कही आपने मिलन, जिस तरीके से आज थोड़ी सी पासिंग में थोड़ी कम जो संवाद कम्बिनेशन की कमी नज़र आई है, साथ ही साथ और फिलहाल नज़र डालते हैं इस पेनल्टी कॉर्नर पे गोलकीपर के अलावा 4 डिफेंडर फर्स्ट रशर होते हैं, और एसपी सुनील ओलंपियन इस समय कर्नाटका टीम का प्रतिनिधित्व कप्तानी करते हुए ठीक तरीके से स्टॉपर रोक नहीं सके। खतरा कुछ क्षणों के लिए टला कर्नाटका से, और फिलहाल अभी भी 3-1 का स्कोर। ये क्वार्टर अभी गोल रहित रहा है, एक भी गोल देखने को नहीं मिले। जरूर आक्रमण एक बार फिर से शूटिंग सर्कल में क्रॉस आया, डिफ्लेक्शन की कोशिश थी, लेकिन कोई भी खिलाड़ी कर्नाटका के नहीं। बॉल साइड लाइन से बाहर, हिट इन मिला इस समय गुजरात को, और हिट इन लेते हुए, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रेशर बिल्ड कर रही है टीम आगे जा कर के। और जो आप देखिए फॉरवर्ड लाइन में शूटिंग सर्कल के अंदर 3 से 4 खिलाड़ी हमेशा कर्नाटका के होते हैं। और वहीं जो आप पुअर पासिंग की बात की, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक वो पासिंग जब तक आपका प्रॉपर अपनी टीम के साथ ना हो, बॉल सप्लाई फॉरवर्ड लाइन में नहीं होगी, गोल और की गुंजाइश कम होती है मिलन। Yes, the word is supply line. The supply line or the supply chain has to be absolutely immaculate, and which is what we've been seeing from Karnataka. Karnataka there with Somaya KP, that was a substitution there. So he's come here into the second quarter. KP Somaya, also one more from the wonderful hill station of Coorg, which has produced so many hockey players and so many in the armed forces as well. Karnataka now with possession there, looking very dangerous. Ball now with Surya NM. Karnataka holding on to there, wanting to get into the aggression mode, into the D. Will they be able to convert this well? Weaving its way through, back pass once again. The ball is now with Surya NM once again. A cross pass on the side, on the far flank for Karnataka, and that's exactly what's been happening out here. The finishing is not there, but Karnataka latching onto the ball, those combination of 5 or 6 players making sure that the supply chain is regularly in motion, and that's the worry that Gujarat should be looking at. यकीनन तौर पे फिलहाल इसे भी शूटिंग सर्कल के अंदर कर्नाटका के लिए आक्रमण देखना होगा, लेकिन एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है। मैच ऑफिशियल अंपायर आज के जिस तरह सूरज दुबे ने ये इशारा किया, और फिलहाल अब स्कोर देखें, इस समय अभी भी 3-1, 9वां पेनल्टी कॉर्नर मिला है, 9th इस समय। One difference, unlike the first quarter, is now with about 7 minutes to go here in the second quarter, we haven't had a goal, so that's the difference. यकीनन तौर पे अभी तक पहले गोल की तलाश है इस क्वार्टर में, और कई आक्रमण किए इस क्वार्टर में भी बात करें, अभी तक के 3 पेनल्टी कॉर्नर मिल चुके हैं, और यहाँ से पेनल्टी कॉर्नर इंजेक्ट करने के लिए देखना होगा। कर्नाटक की टीम अभी तक 3 में से 3 मुकाबले जीतकर पूल बी की टॉप टीम है, और आज मुकाबले में पहले क्वार्टर फाइनल में एसवी सुनील इस समय स्टॉप किया, ट्रैक किया इस समय। जी हाँ, एक और गोल, कर्नाटक 4-1 के बढ़त में इस पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया आखिरकार मिलन। ये टीम जानी जाती है, और बेहतर इस समय सक्सेस रेट अगर बात करें पेनल्टी कॉर्नर में, नजर डालते हैं इस रिप्ले पे। एसवी सुनील 271 मैचों का अनुभव,
ओलंपिक के गेमों में खेल चुके हैं और क्या शानदार इस समय 4-1 और ये गोल आया एक बार फिर से हैट्रिक लगाया है शेषे गौड़ा बीएम कर्नाटक के इस समय 6 नंबर के जैसे खिलाड़ी. But what a combination it was from SV Sunil and Nikin Timaya. And then, of course, finishing off extremely well was Mohammad Rahil Mosim. The best part about a sport like a hockey or football is the combination of 2 or 3 players. You can't have it all your way. A Cristiano Ronaldo or a Pele or a Maradona can only do it, but you need the combination of your teammates to make sure that the goal is there for the asking. यकीनन तौर पे बिल्कुल सही बात कही. एक फुटबॉल और हॉकी जैसे खेल टीम गेम इसीलिए कहा जाता है और कॉम्बिनेशन की सबसे ज़्यादा दरकार होती है और आज कॉम्बिनेशन दिखाया है कर्नाटक के लिए. इस टीम में फिलहाल इसी बीच इंफ्रिंजमेंट और वापस से बॉल पोजीशन में कॉम्बिनेशन की बात की मिलिंद ने तो इस टीम ने दिखाया कॉम्बिनेशन. कप्तान इस पे सुनील, चाहे बात करें शेषे गौड़ा बीएम, इस टीम में इसके अलावा हरीश मुतागर और भरत नचप्पा, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो देखिए बॉल को देखिए मिडफील्ड में कितना बेहतर अपने पोजीशन रखते हैं और बहुत रेयर इनका मिस पास होता है. एक लंबा स्कूप शूटिंग सर्कल के पास 5 मीटर डॉटेड लाइन पे वापस से बॉल इस समय कर्नाटक खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी को पास किया. अटैक बनाने की कोशिश, शूटिंग सर्कल में दाखिल हुए लेकिन बहुत अच्छा क्लियरेंस. आज श्याम प्रकाश यादव की तारीफ करनी होगी. गुजरात के लिए डिफेंस में सेंटर हाफ बैक के तौर पे बेहतर कार्य किया मिलन. Oh, undoubtedly, I think although Gujarat has conceded 4 goals, I think they deserve a lot of credit for this. The goal scores perhaps could have been 7 or 8 at this point of time. SV Sunil there, a combination. And yes, the defense of Gujarat has been very resolute. Now picking up very well there. Look for his partner, not finding one for Gujarat on that particular occasion. Yes, been able to do that, but Karnataka now very taking possession of the ball very quickly with under 5 minutes of play remaining here in the second quarter. Trapped well there, passed well on the far side into the D. It's time now for Nikin Timaya HCA to really take it on there. Doesn't find a player, and once again a penalty corner comes their way. Yes, is it or no? That was not, because it went through the back line. There was no obstruction on that particular occasion and there's no penalty corner awarded. So with under 5 minutes of play remaining out here, a reminder that this is the first of the quarterfinals here in the men's in the 36th national games being played at the Major Dhyan Chand Hockey Stadium, with Karnataka leading by 4 goals to 1. यकीनन तौर पे बात करें इस समय कर्नाटका ने मुकाबले के हर क्षेत्र में बॉल पोजीशन, बेहतर स्किल और साथ ही साथ जिस तरीके से बेहतर कॉम्बिनेशन दिखाई, जिस बात की जिक्र कर रहे थे मिलिंद. इस मुकाबले में 2 ओलंपियन खेल रहे कर्नाटका की तरफ से. नितिन तिमैया 2016 रियो ओलंपिक, एशियन गेम्स 2000 बात करें 14 इंचियोन, और उस टीम के हिस्सा फिलहाल एक अच्छा आक्रमण बन रहा था. डिफेंस ने बेहतर कार्य किए. नितिन तिमैया फॉरवर्ड लाइन पे खेलते हैं और साथ ही साथ इस टीम में एसवी सुनील एक जाना पहचाना नाम है भारतीय हॉकी का. इस टीम के लिए बहुत अच्छा कार्य किया बतौर कप्तान. फिलहाल आक्रमण बना शूटिंग सर्कल के अंदर. एसवी सुनील के बारे में बता दें, 271 मैचों का अनुभव, 2012 लंदन ओलंपिक, कॉमनवेल्थ 2014 और जुनो बॉडी. अनुभवी कॉम्बिनेशन इस टीम के साथ है. और जो युवा खिलाड़ी हैं मिलिंद इस टीम में बात करें, जिस तरीके से खेले हरीश मुतागर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो बेंगलोर यूनिवर्सिटी टीम को चैंपियन बनाया था, और साथ ही साथ इस टीम के लिए जो अहम कार्य करते हैं, बात करें शेषे गौड़ा बीएम, तो ये टीम बेहतर साइड नजर आई है अभी तक कॉम्बिनेशन के लिहाज से. Very quickly, Abraham Sudev now taking charge of the ball, and once again the danger on the team Gujarat. So Karnataka are up by 4 goals to 1, and the danger once again now coming up. Karnataka look a very, very relaxed outfield out here. All the experience, the presence of the 2 internationals which has come out there. And because you made that important point, the pressure is now suddenly on the goalkeeper. यकीनन तौर पे बिल्कुल सही बात कही आपने. फिलहाल एक और पेनल्टी कॉर्नर इस समय मुकाबले में बात करें, लगातार पेनल्टी कॉर्नर्स पे कॉर्नर, और डिफेंस के लिए और गोलकीपर के लिए बहुत मुश्किल होता है पेनल्टी कॉर्नर को सेव करना. It's been the same combination from Karnataka. They have not actually changed it. It's been the combination of SV Sunil and along with him Nikin. So once again there is Sunil. Stopped well, and yes, it is
It is with just under 3 minutes of play remaining out here. Karnataka comes up with a sizzler of a goal. That ball really travelled and travelled well, and the goalkeeper there, Vikas Kewat, had no semblance of a chance. Wonderful stop there, the same combination, and look at to his right, flung himself but had no semblance to stop the ball. So Karnataka move up very, very quickly into goal number 5. And the defense there also perhaps took his body away, the goalkeeper, all at sea. Karnataka will now, I'm sure, go into the third quarter or the half time to be precise, up by 5-1. Gujarat, a wake-up call is required. यकीनन तौर पे गुजरात के लिए जब भी अब दूसरे क्वार्टर में आएंगे बहुत मुश्किल भरा डगर रहेगा। फिलहाल इसे बीच पिछला गोल बता दे प्रणम गौड़ा वायब ने किया। प्रणव गौड़ा मुकाबले का 28वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किए हैं और अभी तक के गोल पे नजर डाले जिस तरीके से 5 गोल हुए हैं, जिसमें शीर्षे गौड़ा ने 3 गोल किए, हैट्रिक लगाए। पहला गोल किया था मोहम्मद राहिल मोहसिन ने और पिछला गोल पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया प्रणव गौड़ा बीएम ने। दूसरे क्वार्टर में मिलिंदे महज इस समय 2 मिनट से कम का खेल शेष। यहाँ पे गुजरात की टीम चाहेगी, लेकिन इसी बीच एक आसान सा अवसर और छठा गोल। बहुत ज्यादा गैप दिया था डिफेंस में और बहुत खूबसूरती से इसे फिनिश किया गोल को। What were the Gujarat players doing? It was as if early in the morning. If you now watch this very clearly, there is no one except the goalkeeper, and you can't allow that to happen. There are 2 players there, Pratham Deshmukh and Poonam Thakur, were all over the place. It was as if they were gone in the outside the stadium to have a cup of tea. यकीनन तौर पे ये समझ से परे चीज है। इतना ज्यादा गैप दिया आपने हरीश मुतागर जैसे खिलाड़ी को जो पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले हैं। 3 गोल इससे पहले हरीश मुतागर कर चुके और बहुत आसानी से इतना लंबा गैप था, मानो टीम का कहीं कॉम्बिनेशन नजर ही नहीं आया डिफेंस में और उस गैप का बेहतर इस्तेमाल फिलहाल मिडफील्ड में खेल होता हुआ। एम्फ्रेंचमेंट और बॉल पोजीशन गुजरात के पास चाहेगी मिलिंद की जाते जाते एक गोल करके कम से कम अगले हाफ की बेहतर शुरुआत करें। This is just the second time in the entire 15 minutes of play that Gujarat has been able to get into the Karnataka half. But look at Karnataka, how swiftly they move up there. They are like gazelles in play. Very quickly up there is Abraham Sudev. He's been the live wire. Converts this very quickly, passes it on, but dispossessed by the Gujarat defense. But 6-1 up, I'm sure there must be a lot of worry for the Gujarat side. But I keep on emphasizing, this is a learning curve for a young Gujarat side. They'll come out of this competition, they'll come out of this match wiser. The ball there with Sahil Katiyar, passes it back once again into to Ruchit Patel. Back again with Karnataka, and now with just about 20 seconds remaining out here, it's very clear that at halftime Karnataka will go into with a big lead. यकीनन तौर पे कर्नाटका इससे हाफ टाइम के बाद एक बड़ी लीड के साथ जाना चाह रही है और स्कोर लाइन साफ प्रदर्शित करते हुए 6-1 की बढ़त गुजरात के खिलाफ और 6-1 की बढ़त इस बात की संकेत देते हुए फिलहाल इसी बीच इस समय एसवे सुनील और पहले हाफ की समाप्ति यानी 2 क्वार्टर में खेल जो हुए हैं, कर्नाटका 6 गुजरात 1 और अभी तक के जो गोल रहे हैं उस पे हम नजर डालेंगे कुछ क्षणों में। आज का ये क्वार्टर फाइनल का पुरुष वर्ग का मुकाबला जिसमें गुजरात वर्सेस कर्नाटका के बीच कर्नाटका टेबल टॉप थी, 3 में से 3 मैच जीत के गुजरात पहली जीत की तलाश में। So let's take a short break out here, but we'll go across for a chat out there in the center. Very good morning and welcome to the live broadcast from Major Dhyan Chand Hockey Ground in Rajkot. We witnessed tremendous competition yesterday in the women category. MP Haryana, Jharkhand and Punjab, they have made it to the semi-finals, and now in men's category first semi-final will be played between Karnataka and Gujarat. Another exciting encounter we are expecting, and to talk more on this we have competitions manager Mr. Rajendra Shalar with us. Welcome to DD Sports sir. Sir, किस तरह के competitions हमें अभी देखने को मिले हैं और 4 टीमें डिसाइड हो चुकी हैं सेमीफाइनल्स की महिला कैटेगरी में और आज पहला मैच कर्नाटक और गुजरात के बीच में खेला जाएगा. Another exciting encounter we are expecting. गुड मॉर्निंग टू माय ऑल ऑफ लव हॉकी लवर्स. और कल जो मैच हुए चारों 4 इतने एक्साइटिंग थे और अभी सेमीफाइनल स्टेज आ गई है वुमेंस में.
सेमीफाइनल्स आ गई है वुमेंस में, जबकि कल के मैच जो हुए उससे ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल बहुत ही एक्साइटिंग हो गए, इक्वल टू फाइनल्स। और आज जो बॉयज़ के वो मेंस के जो मैचेस हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छा शानदार हो गए, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन सर हम देखें यानी कि स्कॉपमैन ये आई हैं विटनेस करने के लिए महिला कैटेगरी के मैचेस। ग्राम रीड भी एक्सपेक्टेड है कि वो मैचेस देखने आएंगे। बड़े खिलाड़ी जो हैं, स्टार खिलाड़ी, वो नेशनल गेम्स का हिस्सा हैं। यही इसको रोमांचक बना रहा है इस गेम्स को। सर उसके साथ साथ यदि मैं आपका कुछ वर्ड्स सुधारना चाहूँगा, एक्सपीरियंस प्लेयर तो अच्छे ही खेल रहे, लेकिन कई यंग टैलेंट भी हमें देखने मिले जो अपने देश के लिए खेलने के लिए नॉक कर रहे हैं, और जो अपने कोचेस लोग आएंगे वो अच्छे अच्छे लड़कों को भी सिलेक्ट करेंगे और अपनी टीम इससे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। सर नेशनल गेम्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, 100 दिन मिले आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये कितना मुश्किल था? और अब हम उम्मीद करेंगे कि आगे के जो टूर्नामेंट्स होंगे उनमें अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी जो हमें 100 दिन में अरेंज करने में सब कुछ हुई। जैसे गुजरात ने एक एग्ज़ाम्पल दे दिया सारे वर्ल्ड को कि हम क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा इवेंट सिर्फ 100 दिन में खड़ा करना एक इम्पॉसिबल मिशन लगता था, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सारे फेडरेशंस, नेशनल फेडरेशन ने इतना सारा हेल्प किया और इसको एक ही कर दिया, जीतेगा, जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। इस तरह की उम्मीद रख के हमने पॉसिबल करके बताया। बिल्कुल, जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सो here we go, Karnataka and Gujarat will be up against each other. They are warming up behind me and the match will start in some time. Back to our commentary team. So yes, Karnataka absolutely brilliant out here in both the two quarters. We came with some wonderful combination. This was Mohammad Rahil Mosoon, who was amongst the thick of the action. Gujarat strong at this point of time. They came up with Shama Prasad Yadav, and then from there on it was Karnataka all the way. The combination of Sunil SV and along with him Nikhil Timaya and Mohammad Rahil Masoom, each of them contributing, Vikas, to make sure that Karnataka go up 6-1 in the two. अभी आपने अभी तक के जो 6 गोल हुए हैं उसके हाइलाइट्स देखे। And with the news that Karnataka are leading by 6 goals to 1 at half-time from here at the Dhyan Chand Stadium in Rajkot, it's back to our studios in Delhi. But remember, we'll come back for action in a short while from now. हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। Welcome back to the Doordarshan studios as we showed you live coverage of the first quarter-final in the men's hockey between Karnataka and Gujarat. Karnataka dominating the first two quarters with a scoreline of 6-1 thanks to multiple penalty corner conversion and goals in the striking circle. This is the fun of the 4 quarterfinals for a berth in the semi-finals in the men's hockey competition. Gujarat struggling at the Dhyan Chand Hockey Stadium at Rajkot. We saw women's also struggling yesterday, losing to Punjab in the women's quarterfinal by 24-0. And today Gujarat is struggling against Karnataka, behind by 1-6 in the men's quarterfinal. 2 more quarters to go. Each quarter is of 15 minutes duration, and the third quarter is about to commence with our commentators Milind Wagle and Vijay Kumar at the helm describing the action in this quarterfinal match. We will be going straight to Rajkot for the action there in the men's quarterfinal. The second quarterfinal after this match would be between Haryana and Tamil Nadu, and the third would be between Uttar Pradesh and West Bengal, and the final quarterfinal would be between Maharashtra and Jharkhand, and the winner of each would make it to the semi-finals and then to the finals where the match would be played at Rajkot at the Major Dhyan Chand Hockey Stadium.
where the quarterfinals are being played right now. The action is that in the first quarterfinal between Karnataka and Gujarat, Gujarat is behind, losing the match right now by 1-6. 2 more quarters to go, a total of 4 quarters in this quarterfinal match, and in the end of 2 quarters, Gujarat already behind by 1-6. We've already seen action from the ground. We saw the feedback from the competition manager as well. Remember, Gujarat has organized this event in 100 days only. This multi-event competition, the National Games, the 36th edition of the National Games. The previous edition was in 2015, which was held in Trivandrum, Karnataka, Kerala, I beg your pardon. And the 36th edition is being held after a gap of 7 years. And Rajkot, one of the 6 cities hosting this multi-sport event, the National Games being held in Gujarat. So hockey, the team sport, really capturing everyone's attention right now. It's overcast conditions in Rajkot right now. We're seeing rains in Delhi also, where the studio is and where we are giving you the feedback about the men's hockey quarterfinal match being played at Rajkot. So overcast conditions, rain has not yet interfered with play. Remember, hockey is an outdoor sport. Most of the events that we have shown you on DD Sports have been indoors, but the action is outdoors right now, and the umpires, referees, judges have not yet taken a call on whether to stop play. It is continuing right now, and all the 4 quarterfinals will be shown live on Doordarshan Sports today during the course of the day, and the 4th quarterfinal will be played at 3 o'clock in the afternoon. So the action would continue at Rajkot, where at the the Dhyan Chand Hockey Stadium, where the matches are being played. Remember, hockey is a team sport of 11 players, and there's quite a strong formation, especially by Karnataka, with 5 attackers. And remember, they do switch positions during the course of each quarter. The coach advises them. You have the captain also taking a strong position in terms of how the formation should be, again adapting to the needs of the situation. And we've seen Karnataka taking a strong lead with a lead of 6-1 at the end of 2 quarters. And we're now heading right back to the Dhyan Chand Hockey Stadium in Rajkot, where the 3rd quarter is about to continue, about to start in fact, with our commentators Vijay Kumar and Milind Wagle, who will give us the latest action from that first quarterfinal in men's hockey, a description of the match so far. And what we have seen is that Karnataka has really been dominating the play, especially in the striking circle and even in the 23-yard line, and ensuring that they have a 5-goal lead in this first quarterfinal match. The other quarterfinal matches, especially with teams like Haryana, which is in the 2nd spot on the medals tally, has really taken a strong stand as far as men's hockey is concerned. They will be taking on Tamil Nadu. In the medals tally, Haryana has a total medals tally of 75 medals with 29 golds, 23 silvers and 23 bronze medals, and they have not lost a step in this national games, despite it being held after a gap of 7 years. Remember, the national championships determine whether you make it to the national side or not, which shows their state readiness for each team sport. Let's now head back to the Dhyan Chand Stadium, where the first quarterfinal match is being played. The 3rd quarter is about to commence. Karnataka has taken a lead of 6-1. Let's go to Rajkot for the latest action in men's hockey. ये बहुत ही अहम मुकाबला कर्नाटक वर्सेस गुजरात। पहले हाफ के बाद कर्नाटक ने 6-1 की बढ़त बनाई और मुकाबले के हर क्षेत्र में जिन्होंने बढ़त अर्जित की, बेहतर खेल, शानदार स्किल, शानदार कॉम्बिनेशन और उससे बेहतरीन बात की बॉल पोजीशन ज़्यादातर रखा। फिलहाल एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। गुजरात की टीम ने हाफ टाइम के बाद यकीनन तौर पर मिलिंद, जो कोच की इनकी बातचीत हुई होगी गुजरात के लिए, ये टीम चाहेगी फ्रांसिस पॉल परमार जो इनके कोच हैं एक अलग स्ट्रैटेजी बना के आए होंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट के लिए ये क्वार्टर फाइनल का बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है और आखिरी 2 क्वार्टर ही दिशा दशा तय करेंगे इस मैच की। I think what you're saying is absolutely right. I can very clearly see the aggression coming from the Gujarat forward line in the very first minute of play. But Karnataka now in possession with Nikin Timaya.
gives it across there on the far side. Possession now with Karnataka, up by 6 goals to 1 out here. In case you just finished your breakfast at home and switched on your television sets to watch this, the first quarter final, a reminder. Absolutely aimless there, absolutely aimless from Karnataka, does not fetch them any results. So yes, 6 goals to 1 up there for Karnataka here in after the 2 quarters, going into the third quarter now after half time for Karnataka. The goals coming there from Mohammad Rahil Mausum, one, Sheshe Gowda, who's been absolutely brilliant with 3 goals, and then a single goal each to Harish Mutagir and Pranam Gowda. Right now it is Gujarat, as you said, Vikas. The writing very clearly as far as the Gujarat coach is concerned. Francis Paul Parmar, get into the attacking mode. Only then will you be able to put the pressure on the Karnataka side. बिल्कुल यकीनन तौर पे जानते हैं कि आखिरी 2 क्वार्टर ही है इस मुकाबले में और बिल्कुल बदली हुई रणनीति से आई है टीम। आप देखिए इनकी आक्रामकता, बहुत अच्छे फ्लैंक को यूज करना होगा। मिडफील्ड के बैटल, आधुनिक हॉकी में जो मिडफील्ड का संघर्ष है, ऑल हॉकी का जमाना, लेकिन देखिए इस समय कर्नाटक के खिलाड़ी बेहतर बॉल कंट्रोल, पास किया साथे खिलाड़ी को और लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनाने की कोशिश में थोड़ा आक्रामकता दिखा रही है गुजरात की टीम, जानते हैं। और आज इसके बाद 3 और क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले होने हैं पुरुष वर्ग के, जिसका सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पे आप तक लेकर के आज सुबह। फिलहाल इसे भी शूटिंग सर्कल के अंदर दाखिल हुए, मैच ऑफ सेल की पहले ही अंपायर की यह विसिल, यानी कि फाउल हुआ और वापस से अब बॉल पोजीशन गुजरात के पास। मिलिंद, कितना बेहतरीन ये मैदान आसपास से देखें, वृक्षों से आच्छादित और बेहतरीन ये कलर्स, जो पिक्चराइज ये बात करें तस्वीरें, यकीनन तौर पे दर्शकों तक ये सीधा प्रसारण उन्हें रोमांचित कर रही होगी। Yes, from Manjeet, he squared it across on the far side, making sure that Karnataka continues to get possession of the ball. Wily players there for Karnataka in the shape of Prithviraj GN, who has been outstanding along with some of the other players. Gives his back pass out there. A square once again onto Manjeet, traps it well, looking for an opening. Back again on the far side onto the flank. Moving up, making sure that the Gujarat defense is found napping very slowly but surely. Has to give it back as quickly as possible. Does that. This is not going to help their cause. They will obviously perhaps be a little relaxed, I suspect. Manjeet once again. Then through there. Up to Nikhil Timaya. He's been outstanding. Loses possession on that occasion. Mohammad Rahil Mausum, the goal scorer. And once again, the Gujarat side doing well to make sure that no harm comes their way. This is Karnataka up by 6 goals to 1, and here after about 4 minutes of play, Vikas, very clearly Gujarat look a very different side. यकीनन तौर पर पिछले 4 मिनट में और इससे जैसे ही इस क्वार्टर की शुरुआत हुई है, गुजरात एक अलग रणनीति, आक्रामक खेल के, और देखिए बॉल जैसे ही कर्नाटक के पक्ष में भी जाती है उस पर प्रेशर बनाते हैं फॉरवर्ड पे। ये अच्छी रणनीति है। और जब इनके कोच फ्रांसिस पॉल परमार, बातचीत हुई होगी हाफ टाइम ब्रेक के बाद, लेकिन बॉल लेकर के पृथ्वीराज जीएन कर्नाटक के लिए एक बार फिर से शानदार कोशिश करते हुए बेहतर बॉल पोजीशन, गेम की गति को थोड़ा स्लो किया है कर्नाटक ने। यह भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, कई बार आप लीड में रहे और एक बार फिर से राइट फ्लैंक से देखे वापस से इस समय समानांतर पास, बैक पास करके मुकाबले को अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में रख के चलना चाह रही कर्नाटक की टीम। जानते हैं 6-1 की बड़ी बढ़त। बॉल पोजीशन 18 नंबर की जर्सी खिलाड़ी इस समय मंजीत, वापस बैक पास किया और दोबारा से इस समय शूटिंग सर्कल के नजदीक। देखना होगा, बॉल को अभी भी क्लियर नहीं कर पाए, बढ़िया डिफेंसिव स्किल और वापस 11 नंबर की जर्सी फेनिल पटेल अब गुजरात के खिलाड़ी बॉल के साथ। Yes, the Gujarat side, a reminder, playing in red shorts and a striped blue. These are like the Argentinian football colors, but here Karnataka doing well to have the defense into possession with 4 of their players. Have they got a penalty corner there? No, not at this point of time. Gujarat looking into the attack. The first time in the third quarter after half time that Gujarat have mounted the pressure. Sahil Katiyar there for Gujarat. It is still with them. Trapped well by Karnataka defense and cleared well on this occasion. Bharat KR in possession. Gujarat once again in possession. Through on the far side, but a wasted pass there from Gujarat.
Karnataka in possession of the ball. The first 7 odd minutes of play, still looking for that goal. One goal, because if it comes Gujarat way, perhaps they will start bouncing back. But 6-1 is a huge difference for them to digest. यकीनन तौर पे बहुत बड़ा अंतर है इस समय, लेकिन एक गोल के बाद आप के खेल के बात करें, अंदाज बदल जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और जो एक आपको आत्मविश्वास मिलता है गोल के बाद, शायद चाहे कि गुजरात. Would you say that with Karnataka leading by 6 goals to 1, they try a few different strategies? Nothing is lost even if you concede 1 or 2 goals, but try different strategies because the difference between a quarter-final and a semi-final can be huge. यकीनन तौर पे जानती है टीम बड़े मुकाबलों के लिए, और खास करके यहाँ आप चाहेंगे किसी तरीके के एक्स्ट्रा एफर्ट ना करें, चांसेस ज़्यादा ना लें, बॉल पोजीशन अपने पास रखें, और बॉल पोजीशन ही हॉकी जैसे खेल में आपकी सफलता की सबसे बड़े सूत्र होते हैं. और लॉन्ग कॉर्नर मिला इस समय. कर्नाटक टीम देखिए मिलिंद, सेकंड हाफ में एक बदली हुई हॉकी, बहुत स्लो, अपने बॉल पोजीशन अपने पास रख के मैच को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है. बैक पासेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि 6-1 का जो स्कोर है 6-1 का, और जैसे ही कैप मिलता है शूटिंग सर्कल के अंदर बढ़िया थ्रू पास और एक और गोल कर्नाटक के लिए. हरीश मुतागर ने क्या खूबसूरती से गोल किया. देखते ही बन रहा हरीश मुतागर का ये गोल. नजर डालते हैं रिप्ले पे, क्रॉस आया था, गोलकीपर इस बार विकास के बट बीट हुए. Did it come off the stick of Harish Mutagir there, or was it some other player? But it doesn't really matter at the end of the day. Karnataka have managed to score their 7th goal. What is important is they were like a tiger waiting for that prey to come their way. The first 8 odd minutes they were very silent. You said they slowed the pace of the game, and suddenly from nowhere they came back to score that 7th goal. यकीनन तौर पे अचानक जैसे ही उनको गैप मिलता है, ये अनुभवी टीम है जिसमें आप देख रहे हैं इस टीम में नितिन तिमैया ओलंपियन, सुनील, और इससे भी अच्छे समय बात करें, शॉट लिया लेकिन बैकलाइन से बाहर, और वापस से अब बॉल पोजीशन फ्री हिट के साथ गुजरात के पास. उससे पूर्व इस समय टीम के मिडफील्डर वापस से बिल्ड करेंगे अटैक को, और देखिए विंग का कितना अच्छा यूज कर रही है टीम. मिडफील्ड में बॉल लेकर के 5 नंबर के जर्सी खिलाड़ी कर्नाटक के लिए सुबैया केपी, बैक पास किया, एक अनुभव साफ झलकता हुआ इस टीम के साथ. पूनम गौड़ा इस समय बॉल के साथ, और एक बार फिर से प्रणव ने बॉल को शूटिंग सर्कल के अंदर पहुंचे, 23 मीटर की रेखा को पार किया, बहुत खूबसूरती से. गोलकीपर की तारीफ करनी होगी, लाइन छोड़कर आए, एंगल ब्लॉक किया मिलन, बहुत बढ़िया गोलकीपिंग. Wonderful hockey that we've seen so far in the last 20 odd seconds. A good combination from the Karnataka forwards who kept on the aggression, but in the end it was the Gujarat goalkeeper who's been brilliant. I thought he has conceded 7 goals, but it could have been much more. Danger there. Once again, Sunil CV, the experience of him coming to his aid, but the defense of Gujarat coming to their rescue on that particular occasion, and all the hard work that they had done did not really come good. Karnataka leading by 7 goals to 1 here in the 3rd quarter. Good pass there, picked up well into the D. Danger once again, and no, gone away, gone begging. The score remains at 7-1 in favor of Karnataka. We've got under 5 minutes or close to 5 minutes of play remaining here in the 3rd quarter. Will Gujarat be able to strike back? They are not, but they have the possession of the ball. Very good defense there from Karnataka, stopping what could have been perhaps a good through pass as far as Gujarat is concerned, but the ball stays with Karnataka. Where will Gujarat find that opening? The finishing is what is important from their perspective. यकीनन तौर पे जिस तरीके से कितना बेहतर तरीके से मुकाबले में आने वाले समय में फिनिश बेहतर टच देगी टीम, तभी जाकर के मुकाबले में कुछ बेहतर हो सकता गुजरात के नज़रिए से. वापस बॉल पोजीशन, ये अच्छी रणनीति है हॉकी जैसे मुकाबले में. 12 नंबर के जैसे खिलाड़ी यश भावसार टीम के कप्तान वापस से इस समय, लेकिन देखिए क्या बढ़िया स्किल कर्नाटक के खिलाड़ी मिडफील्ड में राइट फ्लैंक से. इसमें सुनील बॉल लेकर के शूटिंग सर्कल के अंदर दाखिल हुए, तेज तर्रार हिट, और यहां पे हालांकि गोल नहीं मिलेगा लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाएगी कर्नाटक के टीम के लिए. In about 40 minutes of play so far, Vikas, this has perhaps been the finest move that we've seen from Karnataka. What a combination this has been. Such a cohesive side that they are.
and SV Sunil, they're taking that huge one but did not come to the edge. This is danger once again for the Gujarat side, but the danger averted. Ball now with Ganesh Maji, who's come in here into the third quarter. Gives a through pass there for Ganesh Maji once again into that danger area. Good pass, good combination, and yes, oh yes, yes. So Gujarat now conceding quite a few. Question there by the Gujarat defense, but SV Sunil says, yes, we had it our way. Look at this very, very carefully. That melee which happened just outside the goal. यकीनन तौर पे नजर डालते हैं रिप्ले में जिस तरीके से गोलकीपर के पास 3 वहां पे डिफेंडर थे, 2 स्ट्राइकर थे, इसमें सुनील उनमें से एक, और मैच अंपायर की तरफ आशा भरी निगाहों से देखी और फिलहाल मिडफील्ड से वापस खेल शुरू होता हुआ गुजरात की टीम के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही है और लगातार आक्रमण पे प्रति आक्रमण। देखिए अब काफ़ी समय बाद गुजरात की टीम के 30 नंबर के जैसे खिलाड़ी सोहन ने बॉल लेकर पिछले मैच में गोल किया था महाराष्ट्र के खिलाफ सोहन ने। इसके अलावा रुचित पटेल, साहिल काटियार और श्याम प्रकाश यादव ये इस टीम के उभरते हुए सितारे हैं। मिलिंद, The more goals that Karnataka scores from here on, the confidence seems to be bouncing up. For the first time once again here in a long time that Gujarat has been able to, haven't got any penalty corners here in the third quarter. Is this the one that's important from their perspective? 8-1 up here for Karnataka, and Gujarat now getting a penalty corner finally here in the third quarter. लगता है मिलिंद आपकी बात सुन ली है उन्होंने। जैसे आपने कहा वापस से कुछ ही सेकंड्स बाद गुजरात ने पेनल्टी कॉर्नर ले ली है। स्कोर लाइन 8-1, पिछला भी गोल दिया गया। इसमें सुनील जिस तरीके से गोल लाइन के अंदर थे, जरूर मांग कर रही थी टीम, लेकिन 8-1 फिलहाल इसे भी नजर डालते हैं इस पेनल्टी कॉर्नर को इंजेक्ट करने के लिए। कर्नाटक वर्सेस गुजरात होम टीम, बेहतरीन मेजबानी। इस समय 36वें राष्ट्रीय खेल 7 साल बाद पिछला केरल में आयोजित हुआ था, उसके बाद इस समय देखे और क्वार्टर फाइनल का बड़ा मुकाबला इंजेक्ट किया। इस समय स्टॉपर ने स्टॉप किए, ट्रैक किए बहुत खूबसूरती से, लेकिन क्या गोल पोस्ट के अंदर नहीं रख सके। खतरा टला कर्नाटक के लिए। One thing I must tell you, Vikas, is that the Karnataka goalkeeper Sharat Somanna Kundira, he can go to sleep, because in the entire play that we've seen so far, how many times, maybe 3 or 4 times only, that Gujarat has really been able to get very close to the goal. यकीनन तौर पे ज़्यादा उनके लिए मुश्किल कार्य नहीं है जिस तरीके से। और फिलहाल पेनल्टी कॉर्नर मिला इस समय, इस मर्तबा कर्नाटक को यह पेनल्टी कॉर्नर मिला। और पिछला गोल जो था एसवी सुनील के स्ट्रिक से, वो एसवी सुनील जो 271 मुकाबले खेल चुके हैं भारतीय टीम के लिए भी, लंदन ओलंपिक 2012 के हिस्सा थे, कॉमनवेल्थ 2014 और कर्नाटक टीम की कप्तानी करते हुए। और देखिए वापस से रणनीति बना रहे, तीसरे क्वार्टर में ज़्यादा खेल शेष नहीं है समय, मैच 3 मिनट के आसपास खेल। I think that's a good move on the part of Karnataka, as we now look at Karnataka taking that penalty corner finally. It's a good move from the Karnataka State Hockey Association to get 2 experienced players, because a combination of 2 experienced players along with the youth will help them to understand the game much more at this level. बहुत सही बात कही, यकीनन तौर पे आपने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का फायदा मिलेगा युवाओं को। फिलहाल इस बार अच्छा इस समय बचाव गोलकीपर की विकास केवट, लेकिन वापस पेनल्टी कॉर्नर। अंपायर ने इशारा किया इस बात की, अभी भी खतरा गुजरात के लिए टला नहीं है। गुजरात की टीम का जब तक बात करें सफर इस टूर्नामेंट में 3 में से 3 हार, बात करें 35 गोल इनके खिलाफ लगे, 3 गोल इन्होंने किए थे। वहीं कर्नाटक की टीम 3 मुकाबले जीत कर आई है, इससे पूर्व 12 गोल किए, 5 गोल इनके खिलाफ लगे। फिलहाल नजर डालेंगे इस समय इस पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर। मिलिंद, बहुत अहम है ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल का। गुजरात युवा टीम कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही है, लेकिन अनुभव के आगे फिलहाल देखते हैं एसवी सुनील इंजेक्ट करेंगे। गोलकीपर के अलावा 4 डिफेंडर होते हैं, जिनमें फर्स्ट रशर। और मुकाबले को बात करें पेनल्टी कॉर्नर के दौरान, जब भी अंपायर का कॉल होता है, बॉल हिट ली जाती, तब आप निकल सकते हैं। 4 जो डिफेंडर नजर आते हैं, फिलहाल देखना होगा एसवी सुनील। ट्रैक किया खूबसूरती से, और जी हां, एक और गोल इस समय
यकीनन तौर पे कर्नाटका पूरी तरीके से मुकाबले में हावी नजर आ रहे हैं मिलिंद। Oh yes, absolutely. They look a side which is looking very, very dangerous in this competition. SV Sunil once again amongst the act out there, very well stopped, and then it was time for Pranam Gowda, who slammed it home to get Karnataka goal number 9. So it's all happening out here at the Major Dhyan Chand Stadium. Wonderful goalkeeping there. Came off the leg of the Gujarat defense, which was Sham Prakash Yadav, the goal scorer. And he's been the culprit on that particular occasion to concede that goal. But nevertheless, when you have a powerful Karnataka side, nothing can stop them in the stride, marching on out here in the third quarter with just under 2 minutes remaining in the third quarter. Karnataka are leading by 9-1 in this, the first quarterfinals. We'll talk of the other 3 quarterfinals coming up. The second of them will be Haryana versus Tamil Nadu. Then you'll have UP versus West Bengal, and finally it will be Maharashtra versus Jharkhand. Once again, it is Karnataka coming up through Nachappa Junior, but taken away as far as Gujarat is concerned. A ball now with Abraham Sudev on the far side. The ball in the Karnataka possession onto their side now, passes it back onto the flank. Moving up at this point of time is Surya NM for Karnataka, and an aimless one which doesn't fetch Karnataka anything. 9-1 up for Karnataka against Gujarat here in the first of the quarterfinals in the men's event at the 36th National Games being played at the Major Dhyan Chand Hockey Stadium in Rajkot. बिल्कुल इस समय पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कर्नाटक 9-1 की बढ़त पे। आने वाले मुकाबले भी बहुत अहम रहेंगे। डीडी स्पोर्ट्स में आप उनका प्रसारण देख सकते हैं। हरियाणा तमिलनाडु, इसके बाद क्वार्टर फाइनल, इसके बाद यूपी बंगाल और महाराष्ट्र झारखंड। फिलहाल इसी बीच इस समय नजर डालते हैं मुकाबले पे, और जो जिक्र हुई आने वाले मुकाबलों के साथ साथ अब देखिए तीसरा क्वार्टर समाप्ति की तरफ है। लगभग तकरीबन 25 सेकंड के आसपास खेल, और इस क्वार्टर में जिस तरीके से गोल किए एसबी सुनील ने, प्रणव गौड़ा ने, हरीश मुताकर ने, हरीश के नाम 2 गोल अभी तक इस मुकाबले में। प्रणव गौड़ा इससे पूर्व गोल कर चुके हैं, और एसबी सुनील ओलंपियन। और फिलहाल तीसरे क्वार्टर की समाप्ति की तरफ इस समय खेल, और उसी मोमेंटम, उसी लय और उसी बात करें निरंतरता से इस समय एक बार फिर से शूटिंग सर्कल के अंदर दाखिल हुए हुटर की आवाज सूचित करती हुई कि तीसरे क्वार्टर के खेल की समाप्ति हुई है। और मिलिंद, जिस तरीके से इस क्वार्टर में भी कर्नाटक उसी रंगत में खेलती नजर आई, और 9-1 के गोल स्कोर लाइन इस बात को प्रदर्शित करता हुआ। So Karnataka, there this was a wonderful move there which came from Karnataka, and for them coming through Mohammad Rahil Mausum, some of the goals that we've seen in this the first of the quarterfinals, Gujarat getting that lone goal, but after that, Vikas, there's no element of doubt that Karnataka has dominated this entire match, up by 9-1 at the end of the third quarter. Everything that they've done has struck them, and struck them with gold coming their way. This is not the gold ki medal match, but gold has struck them at regular intervals in the shape of goals. यकीनन तौर पे बिल्कुल सही बात कही आपने। फिलहाल अभी तक जो गोल हुए हैं उसके आप हाइलाइट्स देख रहे थे। पहला गोल किया था मोहम्मद राहिल मोहसिन ने, दूसरा श्याम प्रकाश यादव ने गुजरात के लिए, तीसरा शशि गौड़ा बी एम। लगातार 3 पेनल्टी कॉर्नर को शशि गौड़ा ने कन्वर्ट किया था। If you look at the difference between the two sides, Karnataka have gathered there and discussing. Gujarat, all the players have been far away. Get together, regroup. Nothing is lost. You're down 9-1. But the smile on the face is what's important. The body language, shoulders drooping, your head is high. And that perhaps is the answer to why Karnataka is a far different side from what Gujarat is. That's the reason why they're leading by 9-1. बहुत अहम बातें हैं, क्योंकि आप मुकाबले में अपने बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि मुकाबला भले ही मैदान पे हो रहा है, लेकिन मानसिक तौर पे आप मेंटली कितना प्रिपेयर हैं, और वो देखने को मिल रही। बात करें कम्बिनेशन की, बात करें आपस में वो कम्युनिकेशन की, उसकी थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। आखिरी क्वार्टर में गुजरात की टीम चाहेगी कि जाते जाते इस क्वार्टर में बेहतर खेल दिखाएं। भले ही 36वें राष्ट्रीय खेलों में टीम सेमीफाइनल तक ना पहुंचे, लेकिन आगे आने वाला जो इनका भविष्य है उसके लिए यहाँ से बड़ी टीम से सीख कर जाए, और इस बेहतरीन आयोजन से। फिलहाल चौथे क्वार्टर की शुरुआत होती हुई
कर्नाटका 9 गोल, इसके मुकाबले गुजरात 1 गोल पे। वापस से बेहतर मूव बनाते हुए गुजरात के खिलाड़ी, लेकिन बहुत अच्छा बॉल वहाँ पे शिष्य गौड़ा BM, आज हैट्रिक लगाई इन्होंने। और जिस तरीके से बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर हैं, क्या बेहतर बॉल निकाला शिष्य गौड़ा BM। अगर बात करें पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में बात करें मिलिंद, गुरजीत कौर जिन्होंने भारत की नंबर अगर देखें बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर हैं। झारखंड के खिलाफ 3 ड्रैग उन्होंने लगाए थे और पिछले मुकाबले में बहुत अहम कार्य किया था। तो ऐसे ड्रैग फ्लिकर आजकल के आधुनिक हॉकी में स्पेशलिस्ट किसी पोजीशन के लिए तैयार किए जाते हैं। Just 14 minutes of play out here will decide which of the two teams makes it to the semi-finals. But at this point of time, unless of course they come up with a sizzler, on this occasion Nachapaju and a brilliant out there, really moved like a tiger on the prowl on that particular occasion. But the Gujarat defense very strong to take the ball away. Just 14 or 13 minutes of play remaining, Vikas, out here in this the first of the quarterfinals to decide who the semi-finalists will be. But Karnataka looks very sure that they will take their appointed place in the grand semi-final here in the 36th national games at this wonderful ground. I would really say this is one of the finest hockey grounds that I've seen anywhere in the country. There's a lot of greenery around this out there. This ground is in the heart of the city with so many other sporting activity, and this is what will really encourage the youth of Rajkot and Gujarat to take up to the sport of hockey. बिल्कुल बेहतरीन मैदान है और इस तरीके के बेहतर मैदान ने आने वाले समय में युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। और गुजरात राज्य सरकार की खेल युवा कल्याण विभाग ने 36वें राष्ट्रीय खेलों को बेहतरीन अंदाज में आयोजित किए हैं। फिलहाल इसे बीच कि समय लंबा स्कूप आया, उससे ट्रैप करके वापस से अटैक बनाने की कोशिश में कर्नाटक की टीम के 17 नंबर के जैसे खिलाड़ी बॉल के साथ इस वक्त गणेश मांझी। और गुजरात राज्य सरकार इंडियन ओलंपिक संघ के एसोसिएशन के बेहतरीन प्रयास से और डीडी स्पोर्ट्स पे जिसका सीधा प्रसारण 36वें राष्ट्रीय खेल 36 अलग अलग स्पर्धाओं में। और देखिए आज हॉकी का क्वार्टर फाइनल गुजरात वर्सेस कर्नाटक। 9 की स्कोर लाइन आपके टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रही है, यानी पूरी तरीके से दबदबा कर्नाटक की मिलिन। Ball now with Somaya KP to Nikhil into the danger area, and well done there by Vikas Kewat, who has stood like a rock of Gibraltar or like the Himalayas, stopping everything that's come their way. And now there is danger once again as far as Gujarat is concerned. Each of the quarters, Karnataka has been able to strike 3 goals, and that's one of the reasons why they are up by 9 goals to 1. This combination has really worked well. Penalty corners, plenty of them that have come their way, and they have been able to score a fair bit of them. But that combination, that we've been talking about, Vikas, of the boy with the experience, SV Sunil, and then stopping that particular ball, Nikhil Timaya, and then slamming it in, has been the advantage that Karnataka has their way. बिल्कुल इस समय कोई शक नहीं है। और फिलहाल एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है कर्नाटक को, और कर्नाटक को मिलने वाला ये इस वक्त का 10वां पेनल्टी कॉर्नर। और जो कॉम्बिनेशन की बात की आपने एसपी सुनील और उनकी टीम के साथी खिलाड़ी के साथ नितिन तिमैया फिलहाल नजर डालते हैं इस पेनल्टी कॉर्नर पे। बेहतरीन ट्रैक किया, डिफेंस से टकराकर बॉल उनके पैरों में टकराई, इस कारण वापस से पेनल्टी कॉर्नर दिया है। हॉकी के ये मुकाबले FIH के जो तमाम रूल्स हैं उसके अनुरूप इस समय खेले जा रहे हैं। और मैच के आज के ऑफिशियल्स बता दें आपको, सूरज दुबे मुंबई महाराष्ट्र से, स्विनी कुमार पंजाब से, और दोनों ही बेहतर भूमिका अदा की है हमारे अंपायर्स। और सभी बात करें ऑफिशियल्स जो इस मुकाबले में फिलहाल वापस से इस समय पेनल्टी कॉर्नर इंजेक्ट करने के लिए समय इंजेक्ट किया, स्टॉफर ने रोका, ट्रैक किया, वेरिएशन तलाश रहे थे। आजकल बेहतर तरीके से पेनल्टी कॉर्नर के दौरान वेरिएशन से गोल ढूंढने की कोशिश, लेकिन वैसी कामयाबी नहीं मिली। Yes, I have a feeling that SV Sunil has substituted himself. It was not him who took that one. It was a different player on that particular occasion. But it doesn't really matter. It's important that the other players do get that opportunity. This is a huge opportunity for them. They've got a lead of 9-1. So I don't think in the remaining 11 odd minutes that Gujarat is going to get anywhere close to that score line of 9-1. यकीनन तौर पे जहां से इस समय वापस से बॉल पोजीशन कर्नाटक के पास,
और राइट फ्लैंक से अब आक्रमण बनाने की कोशिश। 9 के स्कोर गुजरात की टीम चाहेगी कि यहां अब आखिरी क्वार्टर में 1 या 2 गोल करके मुकाबले के अंतर को, हार को कम करे और आने वाले भविष्य में बेहतरीन फिलहाल इसे भी स्किल दिखाते हुए कर्नाटक के खिलाड़ी 11 नंबर की जर्सी में वहां पे नचप्पा जूनियर। ये ताकत है इस टीम का, अनुभव के साथ युवाओं का जो बेहतर समन्वय है। और ये टीम, यही वजह है जब बातचीत हो रही थी टीम मैनेजर से मिलिंद सर की, तो वहां पे जिस तरीके से उन्होंने दर्शाया कि कुछ सीनियर प्लेयर के साथ यूथ का जो कॉम्बिनेशन, और टीम देखिए अपराजय होकर खेलती हुई। Oh, yes, 40 days of camp that they had in Bangalore, that famous ground, the Field Marshal Karyappa ground in the heart of the city of Bangalore, the Garden City. Karnataka in possession now, doing well on this occasion was Bharat KR for Karnataka. Passes it back. They're taking it a bit easy on this, trying to gauge the Gujarat players. Manjeet in possession. Back again to Bharat. The chance, the ploy out here very clearly should be ball with Ganesh Maji. Back to Manjeet. The ploy would be muster up as many goals as possible from here on in the remaining 10 minutes. Gujarat on the other hand are looking a little jaded. The body language doesn't look what it should be on that particular occasion, and the ball harmlessly going to the back line, the one which came in from Harish Mutagir, one of the goal scorers. Yes, he scored 3 goals prior to this, got the 4th goal today, so he's been one of the pillars as far as Karnataka is concerned. वाकई में हरीश मुतागर ने बहुत प्रभावित किया अभी तक अपने खेल से। और हरीश मुतागर, जिनके बारे में आप जानते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बेंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए गोल्ड मेडल जीता था, उस टीम के हिस्सा थे। और आपको बता दें कि एक भारतीय हॉकी के लिए बड़ी खुशखबरी, FIH इस वर्ष के बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पूनिया और PR श्रीजेश को अभी कुछ ही दिन पहले, महज 2 दिन पहले ये FIH ने घोषित किया है। भारतीय हॉकी के लिए बहुत अच्छी खबर है। PR श्रीजेश पुरुष वर्ग में और सविता पूनिया महिला वर्ग में बेस्ट गोलकीपर के अवार्ड से नवाजे जाएंगे FIH के लिए। मिलिंद, भारतीय हॉकी वापस से उस स्वर्णिम इतिहास को दोहराने की कोशिश होती हुई। Yes, a tournament of this nature that we are watching, Karnataka versus Gujarat, and the other quarter-finals to follow from here on in the national games. Stopped well, asked for an obstruction there by one of the Gujarat players. Ball now with Abaran Sudev, but dispossessed by the Gujarat defense very strongly, but back again with Karnataka, which is Nachappa Junior, but Gujarat back with the possession in their own half. They'll have to start moving very swiftly to make sure if they have to make an impression. Just about 8 minutes of play remaining here in the final quarter, the 4th quarter of this, the first quarter final between Karnataka and Gujarat. A reminder that we're coming to you from the Major Dhyanchand hockey field here in Rajkot, the wonderful city known for its groundnuts and for its machinery. There's some wonderful monuments in the city. We've seen swimming and hockey as the 2 sports played here in Rajkot. Ball with Karnataka. Through there onto the far flank. The ball possession with Karnataka. And the more ball possession that Karnataka, Vikas, continue to have, the danger on the Gujarat half will continue to be there. यकीनन तौर पे ज़्यादातर बॉल पोजीशन कर्नाटका ने, और जो आक्रमण बनाए हैं 10 पेनल्टी कॉर्नर, और लगातार टीम में अपने उसी आक्रामकता को बरकरार रखने की कोशिश। This is the point I was trying to make. The finish is missing on their part. Wonderful work there coming from the aggression or the aggressive side Gujarat was, but Shama Prakash Jadhav, the goal scorer on that occasion, was not very quick enough to seize and strike the ball into the goal. नियोजित हमला और उससे परिणाम में नहीं बदल पाई है, इसमें कोई शक नहीं है। बेहद बेहतरीन कोशिश है सब है शूटिंग सर्कल के अंदर। तारीफ गोलकीपर की इस बार। साथ बात करें शरत समन्ना, जिस तरीके से समन्ना ने ये रोका इस सब है, अपने अनुभव अपने पूर्वानुमान दिखाते हुए इस बार जरूर गोलकीपर को टेस्ट किया इस समय गुजरात की टीम ने। और इसी चीज की दरकार होगी मिलिंद, कि जितना ज्यादा हो सके आपके आक्रमण सही दिशा में हो, शूटिंग सर्कल में वापस बॉल, लेकिन बेहतर तरीके से। ये क्लियरेंस अभी भी खतरा टाला नहीं है। 23 मीटर और 5 मीटर डॉटेड लाइन शूटिंग सर्कल के पास इस समय। बहुत बढ़िया स्किल दिखाते हुए बात करें गुजरात के खिलाड़ी रुचित पटेल, से पहले 1 गोल कर चुके हैं रुचित पटेल। और वापस से बॉल अब कर्नाटक के पास।
In a span of just 60 seconds that Gujarat was able to put the pressure on the Karnataka defense, but I keep on emphasizing on the fact that the finishing was just not there. They could have easily got one goal of the three opportunities that had come their way, but squandered on this occasion. 6 minutes of play remaining out here in the fourth quarter, which means actually 6 minutes of play remaining in this entire match, with a reminder that Karnataka are leading by 9 goals to 1. Each of the quarters, the 3 quarters that we've seen them getting the 3 goals. But this has been a fairly dry one for Karnataka. Gujarat, on the other hand, Vikas, seem to have woken up at this particular stage. They seem to be playing the game as if the game has just started. बिल्कुल उसी चीज़ की दरकार होगी गुजरात के लिहाज से जिस चीज़ की बात की आपने। और फिलहाल आपको बता दें इस क्वार्टर फाइनल के बाद हरियाणा और तमिलनाडु भिड़ेंगे आमने सामने। उसके बाद यूपी बंगाल और महाराष्ट्र झारखंड। आने वाले मुकाबले बहुत अहम होंगे। महाराष्ट्र में वाल्मीकि ब्रदर्स युवराज और देवेंद्र वाल्मीकि, 2 इंटरनेशनल सितारे। हरियाणा की टीम भी नजर आएगी। फिलहाल इसे वेज से पेनल्टी कॉर्नर। हरियाणा की टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नजर आएंगे, जिसमें सुमित और अभिषेक जो कॉमनवेल्थ गेम खेल चुके हैं और यूपी में कप्तानी की भूमिका अदा करेंगे। जब जानते हैं बड़ा सितारा भारतीय टीम के ललित कुमार उपाध्याय। Will this be goal number 10 as far as Karnataka is concerned? They've got this opportunity coming their way. It will have to be some work that Shama Prakash Yadav will have to continue to do from here on. Looks like Manjeet who will take the one which will inject so much of power as far as the finish is concerned. SV Sunil has been substituted. Waiting there is Harish Mutagir. Stopped well and struck well. Struck well there as far as Karnataka is concerned. But danger averted as far as the Gujarat side is there. But the pressure continues to be on the Gujarat side. Obstruction from Karnataka and asked for a free hit to be taken in the Gujarat area itself, weaving his way through on that particular occasion. Ball with Ruchit Patel. Down with him again, looking for an opening. Passes a square on at the back. Karnataka very quickly. It's just those 20 or 30 seconds that Gujarat has possession of the ball. After that, it's Karnataka all the way. बिल्कुल बहुत ही संक्षिप्त समय के लिए गुजरात के पास बॉल पोजीशन रहती है और वही वजह है। कर्नाटका खिलाड़ी देखिए स्किल दिखाते हुए वापस बैक पास किए। 3 नंबर के जैसे खिलाड़ी बॉल पे मोहम्मद रोहिल हुसैन, जो कि युवा खिलाड़ी है। मुझे याद है 2020 में 10वें नेशनल गेम झांसी में मेंस वर्ग का इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया था। उभरते हुए सितारा आज पहला गोल इन्हीं की स्ट्रीक से आया। और वापस से कर्नाटका की टीम देखे पिछले 2 सीनियर मेंस नेशनल में लगातार 3rd प्लेस अर्जित करके आई है और उसी मोमेंटम को, और अभी तक 12 सीनियर मेंस जो नेशनल हुए हैं 6 मेडल इस टीम ने अर्जित किए हैं, यानी कि एक निरंतरता नजर आता है इस टीम में। Oh yes, absolutely. A very experienced outfit that Karnataka is. Karnataka at this point of time seem to be playing a game which is telling the Gujarat players, come and take the ball from me. I'm not going to give it to you very easily. And that's the reason why in the last 2 odd minutes of play that we have seen, the ball has always been with Karnataka. Nagasrinu, who came in as a substitute, out with the possession of the ball, passes it square on the far flank. Still with Karnataka. This being the combination, all 3 of them, all 4 of them, and the ball harmlessly going to the back line there for a free hit. Taken there for Gujarat. The writing is now clearly on the wall. Whatever you can do in those, we've seen at international levels, sides which are down by 3 goals to nil, they come back, the international side comes back to level at 3-all and go on to win 4-3. But now with 9 goals to 1 down Gujarat, with under 3 minutes of play, I don't think that's possible. Stopped well there by Karnataka. Gujarat now putting the pressure. A wonderful chance there for Sohan Shialevia, but not taken well. And how quickly Karnataka get the possession of the ball back. बहुत जल्दी ये टीम बिजली की गति की मानिंद इस समय अपनी पोजीशन अर्जित करती है। और वापस से देखिए बॉल को इस समय ट्रेबल करते हुए 11 नंबर के जर्सी में नचप्पा जूनियर। अच्छी रणनीति, वापस से बैक पास किया, डिफेंस को रीऑर्गेनाइज करते हुए। जानते हैं लीड में है और चौथे क्वार्टर का लगभग 2 मिनट 20 सेकेंड्स के आसपास का खेल। और यहाँ से कर्नाटक 9 विकेट की बड़ी बढ़त, वापसी की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में इंग्लैंड और भारत मेंस में मैं देख रहा था
इंग्लैंड 4-0 से पीछे चलने के बाद भी कमबैक करके मुकाबले को बराबरी पे किया था, लेकिन इतना बड़ा जो अंतर है मिलिंद, ये पाट पाना, इसे कम कर पाना बहुत मुश्किल है यहाँ से। Yes, 120 seconds to be precise, or under 120 seconds from here on. It's now Ganesh Maji. They seem to be playing a cat and mouse game. The cat, which is Karnataka, the mouse, which is Gujarat, keep on saying, come and fetch me, come and fetch me. I'm not going to give it to you. It's all with them right now. 1 minute and 35 seconds, the clock ticking away. Karnataka leading by 9, and there Sunil comes back again towards the dying moments with that substitution. His experience perhaps, and no. Yes, one more chance there for Karnataka here to capitalize with plenty of penalty corners that seem to be coming their way from here on. Will the presence of SV Sunil back here as a substitute? They are questioning it, Vikas, but I think the umpire is very, very clear. मुझे लगता है कि अंपायर से इस समय थोड़ी सी संवाद होती हुई, और मुझे लगता है अंपायर ने यहाँ पेनल्टी स्ट्रोक संबंध दिया है, और गुजरात की टीम इस विषय पे बात कर रही है अंपायर से। आज के दोनों अंपायर बात करें, सूरज दुबे मुंबई से और अश्विनी कुमार पंजाब से। 2 penalty strokes in the entire tournament, and guess who's taken them? Devinder Valmiki. He's got 2 penalty strokes, converted them, and this of course is the dangerous part as far as Gujarat are concerned. This boy on your picture frame, the goalkeeper Vikas Kewat, has been absolutely outstanding. He's conceded 9 goals, but I really won't take anything away from him. The scoreline perhaps could have been 16 or 17 goals. A chance here now for Karnataka to go up 10-1 in the dying minutes of this. Look at the goalkeepers from the 90. Absolutely no chance. Absolutely no chance. When you have goals of these nature coming your way, then I'm sure that they are there for the asking. It is Mohammad Rahil Mausin, the goal scorer once again. He's been amongst the thick of the goals, and you are not going to miss any of these. बिल्कुल इस समय मोहम्मद राहिल मोहसिन ने ये पेनल्टी स्ट्रोक लिया। गोलकीपर पहले राइट तरफ अपने डाइव करने की कोशिश, लेकिन बहुत आसानी से इसे गोल पोस्ट के अंदर आसानी से डाला, और गोल स्कोर देखिए 10-1 से कर्नाटक की टीम चौथे क्वार्टर में। आखिरी मिनट के कुछ सेकंड शेष, और अब जीत की सौंधी खुशबू कर्नाटक को आने लगी हुई मिलिंद। और एक वापस से राइट फ्लैंक से क्या बढ़िया स्किल दिखाते हुए शूटिंग सर्कल के अंदर गोलकीपर की तारीफ, लाइन छोड़कर आए, बात करें इस समय, और एंगल को ब्लॉक किया, और वापस एक बेहतर रणनीति गोलकीपर के लिहाज से। Oh yes, clearly it could have been 11-1 at this point of time, but Vikas Kewat just came out there, made sure that he blocked everything, and the danger was averted. Oh, there you are. Karnataka just doesn't seem to be happy with 10-1. They want to keep on mounting. 11-1, 12-1. How does it matter with just 20 seconds remaining? They seem to be saying, let's go inside the dugout out there with plenty of goals in our pocket. नजर डालते हैं इस समय इस रिवर्स स्टिक पे, बेहतरीन रिवर्स स्टिक से ये टॉमाहॉक, अत्याधुनिक हॉकी का ये शब्द रोमांचित कर रहा होगा जो दर्शक के हमारा सजीव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स में देख रहे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का, और लगभग अब जीत की तरफ कर्नाटक की टीम। 11-1 का स्कोर इस बात को परिलक्षित करता हुआ मिलिंद। By my clock, or by our clock, it's now down to the last 10 seconds of play out here, with the clock ticking away furiously. 11-1 Karnataka against Gujarat in the first of the quarterfinals. So 11-1 for Karnataka, and the hooter will go up any moment, and for Karnataka, what a sweet victory because it will be. लेकिन बेहद सही बात कही आपने, लेकिन यहाँ से गुजरात की टीम ने पिछला गोल किया है, यानी कि 11-2। बात करें ऑफिशियली अपडेट कुछ समय में आपको हो जाएगा, लेकिन क्या शानदार जीत क्वार्टर फाइनल में एसपी सुनील की कप्तानी में। और देखिए तस्वीरों में आप एसपी सुनील को, और जी हाँ ऑफिशियली 11-2। आखिरी गोल आखिरी कुछ सेकंड्स में गुजरात के लिए कितना अहम रहेगा मिलिंद? Oh yes, absolutely. That second goal from Gujarat came at the right time to inject a little bit of enthusiasm in the spectators out here. But this is the way
the entire game has been played today, starting off with brilliant fashion from Mohammad Rahil Mausoom. From there on, except that one goal to start off with Vikas, and then the goal towards the end, it has been this side. This, of course, was the first of the goals for Gujarat. But from here on, it was Karnataka all the way, except for that second goal, which got that little bit of pride back into Gujarat side. यकीनन तौर पे इस समय इस बात से सहमत, और जिस तरीके से अभी तक जितने गोल हुए हैं नजर डालते हैं उस पे, जो अभी तक कर्नाटक की टीम ने 11 गोल किए और 2 गोल गुजरात के। टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अभी तक जो गोल हुए हैं उनमें मोहम्मद राहिल, श्याम प्रकाश यादव, शिशे गौड़ा, इसके अलावा हरीश मुतागर के नाम 2 गोल, प्रणव गौड़ा 2 गोल इनके नाम, मोहम्मद राहिल, नचप्पा जूनियर और हिमालय ठाकुर, ये थे गोल स्कोरर। And so there you are with Karnataka beating Gujarat by 11 goals to 2. Time for me and my commentary team and the entire team. Welcome back to the Doordarshan studios. I'm your host Arjun Chaudhary, and joining me in the studio is our sports expert, who's also former administrator of sport, Mr. Manish Kumar. Manish, a warm welcome to you on this program. Thank you so much. Well, as we have just shown you live coverage of the first quarter-final match in men's hockey between Karnataka and Gujarat. Gujarat losing heavily by 2 goals to 11 in this first quarter-final and being knocked out of the men's hockey competition, which means that Karnataka are now through to the semi-final, and the other 3 quarter-finals to be shown on DD Sports Live would be Haryana versus Tamil Nadu, which will be coming up next, Uttar Pradesh versus West Bengal, and Maharashtra versus Jharkhand in this 36th edition of the National Games being held in Gujarat across 6 cities. And the men's hockey, which we are showing live coverage of, was at the Major Dhyan Chand Stadium at Rajkot, where the swimming events also being taking place, aquatics and swimming. Our commentators Milind Bagle and Vijay Kumar gave you live updates and description of the play in this humiliating defeat of Gujarat by 2 goals to 11, and Karnataka really making it count. Remember, Gujarat scored the first goal in the first quarter and the second goal in the dying seconds of the fourth quarter, but it was Karnataka dominating the entire match across all 4 quarters of 15 minutes each by winning the match 11-2, which means Gujarat has been knocked out of men's hockey, just as the women were knocked out yesterday by Punjab with a scoreline of 24-0, which means Punjab is through to the semi-finals in the women's hockey. To understand more about this and about the upcoming events of the day, let's discuss with our expert Manish Kumar. Manish, what's your take on men's hockey? Gujarat is a relative newcomer to hockey if you look at the performances right now. Karnataka, which has been dominating in swimming, has dominated Gujarat in men's hockey. Karnataka has been a traditional powerhouse in hockey for many years. They probably have the best domestic league at the state level. They've got very good administration of hockey. So it's not very surprising that Gujarat, dominated the game. But what's heartening is that Gujarat, which is not really known to be a hockey state, has come up very well in the last 4-5 years in the sports. So kudos to both teams. Karnataka, of course, were the favourites even before the game. So they've naturally made it to the semi-final. What is interesting is that the other teams which are stacked up for the semi-final, I don't see Orissa. I was expecting to see Orissa. I was expecting to see Punjab and Haryana also, and UP. Haryana is there in the second quarterfinal against Tamil Nadu. Yes. I was expecting to see Orissa also in the quarterfinal lineup. Well, clearly Karnataka dominating that contest against Gujarat. They're now through to the semi-finals. Haryana will take on Tamil Nadu, UP will take on West Bengal, and Maharashtra will take on Jharkhand. We don't see any mention of Punjab in this quarterfinal lineup. You just mentioned about that. In women's hockey, Punjab defeated Gujarat by 24-0. It was a huge margin of defeat as far as Gujarat is concerned. Punjab is through in women's hockey. It was a complete rout, but in women's hockey, I think the teams to watch out for, apart from Punjab, would be Haryana, UP, Jharkhand, and if at all Orissa makes the cut. So I think these are the 4-5 teams that you would look at, in women's hockey, in addition to Punjab. Well, Haryana has dominated the medals tally. They are in second place right now
with a total medal count of 75, which includes 29 gold medals, 23 silvers and 23 bronze medals. Of course, we have the Services Sports Control Board dominating. They are first placed right now with 100 medals, 42 golds, 31 silvers and 27 bronze medals. The Services Sports Control Board, as we understand, is composed of personnel from the Defence Forces. But as far as the state unit is concerned, Haryana is in second place. There are two interesting trends in the National Games medal tally. If you see, Haryana, the medal tally for the rest of the states reflect what we see it also in Khelo India Youth Games, which means the junior program must be aligned with what the seniors do. So it's good to see that Haryana leads the medal tally among the state. You see Maharashtra, you see UP also do well. What I would like to see is Assam and Gujarat also come up, because in Khelo India Games, both Assam and Gujarat, they've done reasonably well. They're in the top 10, top 12. So I'm expecting Gujarat and Assam to pull up the socks. But if you look at the top 4-5 states, there's Haryana, there's Maharashtra, there's Tamil Nadu, there's UP. What I would like to see more of is Kerala, Manipur, and another state to pull up their ranks, because you don't want to, you're not happy as a sports person to see Kerala not excelling in the medal tally. You want to see Kerala in the top 3, top 4, because don't forget that in 2015 they were in the top 3 medal tally. As far as services is concerned, I think it's also something that our policy makers should be looking at, that across the world sports science, sports training has come from the army and the services. If you look at South Korea, is the army which contributes. Even in India till a long time back, it was the Army Sports Institute Pune which was supporting our sports. So I think maybe the government would look at how, if service still excels, which means we'll have to include services in our overall sports policy. Well, you just mentioned about Kerala and Manipur. Kerala doing well in track and field as a discipline. Then Manipur doing very well in weightlifting. Mirabai Chanu really setting the standards there with a gold medal to start in her weight class. Remember, she won the gold medal in the Commonwealth Games as well, and a silver in the Olympic Games. What I meant to say is it'll be good for Indian sports if you see Kerala and Manipur in the top 3, 4. I want to see them at 7th and 8th place, because they're capable of delivering much more. Well, what's your take on the next match in men's hockey between Haryana and Tamil Nadu? Oh, it's going to be a tough call. Haryana again tournament favourites, but you can never rule out Tamil Nadu. They've got a huge hockey history, probably even bigger than Haryana in terms of their hockey legacy. But I think Haryana will clearly have the edge. Well, it's time for us now to go back to the latest sporting action in Gujarat, where we have the second quarterfinal that is about to commence between Haryana and Tamil Nadu. Remember, the first quarterfinal in men's hockey was won by Karnataka by 11 goals to 2 against Gujarat. We also have Malkham, which is being held in Sanskar Dham in Ahmedabad. So these are the two sporting disciplines taking place right now as we speak. And then, of course, at 11 o'clock, we have aquatics and swimming as well from Rajkot, which would be the medal event. So let's go to the latest action in Gujarat at the National Games on DD Sports. थोड़ा से बैंड कर गई एंट्री के वक्त, ज्यादा अच्छे अंक नहीं कहे जाएंगे। ऋतिका श्रीराम जो पिछले डाइव में ज्यादा अच्छे अंक हासिल नहीं कर सकी थी। ऋतिका श्रीराम फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट 1 ट्विस्ट, यानी कि 2.5 कलाबाजियां खाने के बाद एक ट्विस्ट भी उनको लेना होगा। फॉरवर्ड पोजीशन पे है महाराष्ट्र की ऋतिका श्रीराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1.5 समरसॉल्ट के साथ डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो थी 2.2 और एक ट्विस्ट। लेकिन अभी तक जो लीड कर रही हैं वो मेधाली रेडकर है। आखिरी आज के 10वीं प्रतिभागी पलक शर्मा मध्य प्रदेश की, राउंड 4 में इन्वॉल्व 1.5 समरसॉल्ट सी पोजीशन पर। सी पोजीशन जिसमें घुटने को मोड़कर रखना होता है अपने चेस्ट के साथ। पलक शर्मा ऑफ मध्य प्रदेश तैयार आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्प्रिंग लेती हुई बोर्ड से। आप जितना ज्यादा अपने आप को स्प्रिंग से ऊपर की तरफ ले जाएंगे उतनी डाइव आपकी अच्छी रहेगी। अपने आप को संयमित करना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा ये पलक शर्मा का डाइव कहा जाएगा। फॉरवर्ड इनवर्ड
1.5 समरसॉल्ट था, 1.5 इन्होंने कलाबाजी के 5, 5.5, 5.5, 6 और 5.5। और अब जबकि आखिरी राउंड तैयार है, माइक्रोफोन पर अंग्रेजी में मेरे साथी इस समय भरत सचदेवा। Thank you, Kulwinder. Moving to the next diver for the fourth is Rujita Pawar of Karnataka. Over the half twist, not a very convincing attempt. If you see in the recap, she didn't keep that alignment. The stretch in her legs went off a bit bent, and that is why she lost that point in the last round. Next diver from Karnataka is Shakanya Rao. Inward, 1.5 somersault in C position. Shakanya Rao. Last attempt by Shakanya Rao of Karnataka. Inward, 1.5 somersault. Taking her time, ensuring that timing for the takeoff, and a decent attempt, last attempt of her dives, Shakanya Rao of Karnataka, and a decent score too, with the average being 4. Next diver, Ashna Chaveli of Gujarat, attempting inward 1.5 somersault in C position. The local lad from Gujarat, Ashna Chaveli. And Kulwinder, welcome back. Kulwinder, as we were discussing, so many things go into making a successful dive, right from the takeoff to the position, alignment, control, awareness in the air, to the finishing of the entry. डाइवर को कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, फलक्रम को एडजस्ट करना पड़ता है, यहाँ आपको स्प्रिंग लेना है, आपको एकदम जंप लेना है, संतुलित होकर आपको दोनों बाजू और दोनों पैरों को जोड़ कर रखना है. Absolutely, and that's why, you could see the numbers coming for Ashna. Decent number, stayed in the mid-range. Next diver, Ipsita Mahajan of Bengal. इसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी देखी जाती है, जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि 5 जजेज होते हैं, सबसे कम और सबसे ज्यादा अंक हटा दिए जाते हैं, बाकी तीनों के अंकों को जोड़कर और उसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी से मल्टीप्लाई किया जाता है. Absolutely, absolutely, and that's Ipsita Mahajan, one of the favorites for this event so far. Kulwinder, she has attempted all the dives with grace, success. That's the last attempt and a clean entry. You could see that. What a beautiful dive. Kept it simple, stick to the basics and finished. सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जो बेसिक्स हैं उस पर रहिए, अपने आप पर नियंत्रण रखिए, संतुलित रखिए, शांति बनाए रखें और इत्मीनान के साथ जब आपको लगे कि हाँ अब आप तैयार हैं, तब आपको डाइव करना है. मेधाली रेडकर इस समय महाराष्ट्र की. Attempting back somersault with 1.5 twist in D position. Now positions, as we were discussing earlier, if you are uninitiated into diving, it's a free position. A diver is free to choose or combine 2 different positions to create that attempt. और उसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी शामिल हो जाती है जब आप बार बार तीनों चीजों को आप मिश्रित करने की कोशिश करते हैं. Automatically the degree of difficulty, as Kulwinder rightly said, goes up, and there you could see that attempt. Very good movement in the air, Kulwinder, but landing was just a bit off. पानी में आप जब एंट्री लेते हैं उस वक्त आपकी एंट्री कैसी है, पानी में कितना छपाक होता है, स्प्लैश होता है, पानी कितना उछलता है, इस पर बहुत निर्भर करता है. कम से कम पानी उछलना चाहिए. मृदुला ऑफ तमिलनाडु. Attempting her last dive, back dive with half twist. Simple dive, but requires diver to finish in with grace.
Let us see what this diver has in store for her last attempt. Mridula from Tamil Nadu. Kept it simple, stayed with the basics, and a fine attempt by Mridula from Tamil Nadu. और मृदुला के बाद अब मध्य प्रदेश की भविका पिंगले, ये देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया डाइव था, लेकिन अब पानी में एंट्री के वक्त थोड़ा सा आप ट्विस्ट कर गए। Bhavika Pingle from Madhya Pradesh, attempting forward 1.5 somersaults in B position. Keeping her attentiveness, keeping her focus, taking her time for the jump, for the takeoff. A bit too short, I would say. Kulwinder, she could have taken the big jump. The spring was still missing, and I think that's where the dive gets determined in the beginning. And the numbers speak the whole story. जब आप जंप लेते हैं, स्प्रिंग लेते हैं, जितना ऊपर जाते हैं उतना ही आप अपने शरीर को एडजस्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी डाइव मानी जाती है। और अगर आप शॉट लेते हैं तो दिक्कत आती है। स्नेहा पॉल ऑफ बंगाल नंबर 8 पर इस समय तैयार है। बैक 1.5 somersault. Sneha so far has displayed fine dives, and with her last attempt, let's see if she can continue doing that. And a good attempt, a bit too much splash at the entry, but nonetheless, that was a brave attempt by this young girl from Bengal, Sneha Paul. ये देखिए किस तरीके से, लेकिन पानी में जो स्प्लैश ज्यादा आया है वो शायद इनके अगेंस्ट जाएगा। And the next diver, the second last diver of this women's 1 meter springboard diving, the favorite for this event, Rutika Sriram from Maharashtra, attempting back 1.5 somersault in C position. इनको अब बहुत सही डाइव लगानी पड़ेगी क्योंकि मेधाली रेडकर के साथ इनका मुकाबला है। Preparing herself, taking that position right at the edge of the board. Kulwinder, this requires a lot of balance like a ballerina. This reminds me of how the dancers, the ballerinas are performing at the stage, and that's what the divers do. But here, they have to create different complexities, and there you could see fine dive by this amazing athlete, mother of two from Maharashtra, going strong. A little over, if you see the attempt, slightly she went over, the legs fell over her head, didn't get the alignment. बिल्कुल सही कहा आपने। और 3 राष्ट्रीय खेलों में पहले भाग ले चुकी हैं और इन्होंने बताया इंटरव्यू की मदर बनने के बाद ये पहली बार भाग ले रही हैं। पलक शर्मा इस समय, और फॉरवर्ड 1.5 somersault 1 twist के साथ। तो यहाँ पर ये 5वें राउंड की आखिरी प्रतिभागी पलक शर्मा ऑफ मध्य प्रदेश। That will be, let's wait what the referees will award that. And referees decided to continue with that attempt. Forward 1.5 somersault with 1 twist. She had a bit of a hiccup in the first attempt, but then she quickly went back, and a good attempt by Palak Sharma from Madhya Pradesh. You could see the twist, the movement in the air, and that finishes 1 meter diving competition for the women. Wonderful attempt by the diver, Kulwinder. What a great show. What's your thoughts on that? और डाइविंग के जो ये मुकाबले हैं स्प्रिंग बोर्ड पर, या आप 10 मीटर कह लीजिए, 5 मीटर, 1 मीटर, ये आज आखिरी मुकाबले हैं। आज ये सभी मुकाबले समाप्त हो जाएंगे जो कि डाइविंग के हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो आज का मुकाबला था, 10 प्रतिभागी थे। ऋतिजा वी पवार, शकन्या राव, आशना चेवली,
स्मिता महाजन, मेधाली रेडकर, मृदुला, भाविका पिंगले, स्नेहा पॉल, रुतिका श्रीराम और पलक शर्मा। तो डाइविंग के इन मुकाबलों में आज महिलाओं की 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स राजकोट। और अभी आपने स्क्रीन पे देखा जो पीछे वाटर पोलो का मुकाबला चल रहा है, उसके दृश्य आप देख रहे थे। तीनों ही मुकाबले यही इन 2 तरनताल में हो रहे हैं। हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे जिसमें वाटर पोलो चल रहा है, इसी में शाम के वक्त स्विमिंग मुकाबले होते हैं। और जो हमारे सामने तरनताल है ये छोटा है, इसमें डाइविंग के मुकाबले होते हैं। 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 7.5 मीटर और 10 मीटर। और चारों तरफ भरत पानी इतना उछलता आगे पीछे से कि अगर कोई कमेंटेटर नहाकर नहीं भी आया हो तो भी काम चल सकता है। Well, we are getting the cues now from you, Kulwinder. I can understand. अभी के लिए You want to take a shower at the pool, but yeah, there you could see happy faces, feeling content with their attempts. And as we await the final verdict of the referee of the match of the diving competition, let's see who will be the winner of 1 meter springboard diving for women. ये देखिए श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल स्विमिंग पूल का शॉट। बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल है। और यहाँ हम बार बार कहते हैं कि डाइविंग के मुकाबलों में यहाँ 5 जजेज होते हैं, ओलंपिक में 7 जजेज होते हैं, लेकिन ओलंपिक में डाइविंग नहीं होती, सिंक्रोनाइज स्विमिंग होती है। वो 1 मीटर डाइविंग नहीं होती। आप खुद बहुत अच्छे डाइवर रहे हैं और ये जजेज जो कि फाइनल रिजल्ट बनाते हुए, कंपाइल करते हुए, क्या खूबसूरत विहंगम दृश्य है। दोनों ही तरनताल एक साथ एक ही शॉट में। Gulwinder, I would love to ask you, where do you get this? Someone out here who's been at diving for a long time, Gopi Malpedi, comes from the wonderful city of Sholapur. और अब चलते हैं मिलिंद वागले के पास जो कि इंटरव्यू के लिए तैयार है। So yes, Sholapur, the place which is known for its chaddars or bed sheets, and he comes from that wonderful place, Gopi Malpedi. Gopi, tell me, you've been with diving for many years, 40 years, gosh, 40 years at diving. Tell me the transition of diving 40 years ago and what it is today. Today we are having very good infrastructures from all over the India for diving, and this time Gujarat government has did a good job conducting this national games. With this, sportsmen will encourage for their every events and to achieve in future also in many big competitions. The level of competition, both in the men and the women over these 40 years, how has it grown in these 4 decades? In these 4 decades, the diving has been changed more and more, because in our days we used to do only up to 3.5, only 2.5 somersault in only just in forward groups. Nowadays these boys are players are doing in all groups, like forward 3.5, 4.5 they are also doing from ASI, and in back 3.5, inward 3.5, reverse 3.5. So many difficult dives we are performing nowadays with the support of our Swimming Federation of India, and Mayur sir is also with us, Kamlesh Nanavati sir is there, and Virendra Bhai Nanavati is also will support for diving lot. And which is the state, or which are the states which are doing well, so that the others also start doing well like these states? From last 3 to 4 decades, Maharashtra is doing now number 1. From my childhood, I am looking Maharashtra is doing good. After that, we'll get Madhya Pradesh is also is a number 1, where Ramesh Vassar is coaching there. He's a very senior coach. Plus also we are having Karnataka, Goa,
and West Bengal is also doing good divers from their state. And all are now, some states are there like Assam, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh, where there is no divers at all. What do you think should be then done to encourage diving? क्वार्टर के मिनट में महज 27-28 सेकंड हुए होंगे और पहला पीसी अर्जित कर ली पेनल्टी कॉर्नर। दिनेश, आत्मविश्वास बढ़ेगा यकीनन तौर पे इस पेनल्टी कॉर्नर मिलने के बाद। जी, 1 मिनट के अंदर विपक्षी टीम के ऊपर पेनल्टी कॉर्नर पा लेना ये निर्धारित करता है, ये दिखाता है कि वे किस रणनीति के तहत खेलने के लिए उतरे हैं। और हरियाणा की टीम का प्रदर्शन अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा रहा है। पश्चिम बंगाल और गुजरात को 7-0 से हराकर वे यहाँ तक पहुँचे हैं लीग मैचों में, और यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर लेने की तैयारी, अंपायर उन्हें कुछ बताते हुए शेख जावेद, और यहाँ पर इंजेक्ट की गई गेंद रोकी गई और बेहतर फ्लिक से करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिली। तो एक बहुत अच्छा मौका जो तमिलनाडु को मिला था पहले ही मिनट में, वो उनके हाथ से जाता रहा। अभी कोशिश करेगी अब हरियाणा की टीम, जैसा कि विकास में बात कर रहा हूं, कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे हैं हरियाणा की टीम में, तो उन्हें ये दिखाना है कि वो अपने नाम के अनुरूप खेलें ताकि दर्शक और हम सब एक अच्छी हॉकी का आनंद ले सकें। यकीनन तौर पे बहुत अहम रहेगा हरियाणा के लिए। हरियाणा की टीम पहला मुकाबला 7-0 से पश्चिम बंगाल को हरा कर आई। दूसरे में पंजाब के खिलाफ बात करें, महाराष्ट्र के खिलाफ माफी चाहूँगा, हार का सामना करना पड़ा था 3-1 से, और पिछला जीत गुजरात के खिलाफ भी 7-0 से थी। और आपने इंटरनेशनल प्लेयर की जिक्र की, हरियाणा के टीम में सुरेंद्र कुमार डिफेंडर इंडिया के लिए बहुत लंबे समय से खेलते रहे, 65 मुकाबले। इसके अलावा ओलंपिक, एशियन गेम्स, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के हिस्सा थे। अभिषेक अंतर्राष्ट्रीय सितारा हरियाणा टीम में, कॉमनवेल्थ हाल ही में जो कि 2022 में आयोजित हुआ, उस टीम में हरियाणा टीम के हिस्सा। और फिलहाल इस समय बॉल पोजीशन हरियाणा के पास ब्लू कलर की जर्सी में। और आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल का बहुत अहम मुकाबला। बॉल पोजीशन एक बार फिर से 29 नंबर में तमिलनाडु टीम के लिए क्रॉस आया, डिफ्लेक्शन, लेकिन दिनेश कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे शूटिंग एरिया में। जी विकास, जैसा कि मैंने कहा था कि तमिलनाडु की टीम की रणनीति है कि आरंभ से ही हरियाणा के ऊपर दबाव बनाया जाए, और जब लगातार दबाव बनाया जाता है, लगातार आक्रमण किए जाते हैं, तो वे कहीं ना कहीं सफलता दिलाते हैं। इस बीच हरियाणा ने अपने हाथ से एक लंबा स्कूप दिया था, वहां पर 2 नंबर की जर्सी में 23 मीटर लाइन से आगे गेंद फेंकने की कोशिश, और हरियाणा के पोजीशन में गेंद तमिलनाडु के हाफ में गोल पोस्ट के बाईं ओर खेल होता हुआ 23 मीटर लाइन के पास बेहतरीन ढंग से ड्रिबल करते हुए, लेकिन वहां पर गेंद का नियंत्रण उनसे छूटा और पैक लाइन से गेंद पीछे चली गई। तो ये तमिलनाडु के लिए एक प्रयास हो सकता था दिखाने का कि उनकी डिफेंस कैसी है, लेकिन हरियाणा का ये तीखा आक्रमण नहीं था शूटिंग सर्किल में। लाले से फिर से एक लंबा स्कूप आता हुआ, बॉल पोजीशन बहुत मायने रखेगा। और देखिए हरियाणा की टीम वापस से समय, थ्रू पास शूटिंग सर्कल के अंदर, गोलकीपर की तारीफ करनी होगी, लाइन छोड़कर वापस आए और एंगल को ब्लॉक किया गोलकीपर इस मुकाबले के अरुण प्रसाद। इस समय तमिलनाडु के बेहतर कार्य और जो एक आक्रमण बन रहा था हरियाणा को, उससे टाला। मिडफील्ड में खेल तमिलनाडु की टीम, बॉल पोजीशन तमिलनाडु के साथ मरेश्वरन, शक्तिवेल गोल कर चुके इससे पहले मरेश्वरन। और दिनेश, क्वार्टर फाइनल जैसे बड़े मंच पे गलतियों की गुंजाइश नहीं होगी। दोनों टीमें बेहतर खेलकर आई है अपने लीग चरण में। हरियाणा जरूर कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हर दिन अलग दिन खेलों में और कुछ भी हो सकता है। जी, यदि हम झारखंड की बात करें, ये तमिलनाडु की टीम ने अपने पहले मैच में विकास झारखंड को 3-0 से पराजित किया था, और दूसरे मैच में वे कर्नाटक से 5-1 से हारे जरूर थे, पर तीसरे मैच में भी उन्हें उत्तर प्रदेश से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिस तरह से इस मैच में वे हरियाणा जैसी एक सशक्त टीम के विरुद्ध खेल रहे हैं, और यहाँ पर एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है। विकास, मैं कह रहा था कि हरियाणा जैसी टीम के विरुद्ध इतने हौसले के साथ खेलना, आरंभिक क्षणों से दबाव बनाने की जो रणनीति है उस पर अमल करना, ये दर्शाता है कि कोशिश करेगी तमिलनाडु की टीम कि वो सेमीफाइनल की दूसरी टीम बन जाए। यकीनन तौर पे आपकी बात से सहमत, लेकिन फिलहाल नजर डालेंगे दूसरा पेनल्टी कॉर्नर तमिलनाडु के लिए। और तमिलनाडु के लिए 23 नंबर के जर्सी खिलाड़ी
श्याम कुमार हरिदोस टीम के कप्तान गए हैं इस समय इस पेनल्टी कॉर्नर को इंजेक्ट करने के लिए। गोलकीपर के अलावा 4 डिफेंडर देखना होगा। इंजेक्ट किया, स्टॉपर ने रोका, ट्रैक किए, लेकिन फर्स्ट रशर बहुत बढ़िया सीधी लाइन में दौड़े। भारतीय टीम के लिए फर्स्ट रशर अमित रोहिदास किया करते हैं और ऐसे युवा खिलाड़ी अहम भूमिका अदा करते हुए फिलहाल अच्छे संकेत इस समय हरियाणा के लिए। वापस बॉल पोजीशन हरियाणा के इस समय मिडफील्ड में उनके हाथ में खेल होता हुआ अहम रहेगा। पहला क्वार्टर 0-0 अभी इस पहले क्वार्टर की, और फिलहाल कार्ड इस समय ग्रीन कार्ड, ये भी आपको हम जानकारी देंगे कुछ ही क्षणों में। अभी भी स्कोर लाइन 0-0। हरियाणा की टीम आक्रमण पे शूटिंग सर्कल के नजदीक इस समय देखना होगा किस तरीके से यहां से इस मुकाबले में आक्रमण को राइट फ्लैंक से वापस इस समय बॉल एक लंबा हिट लिया डिफ्लेक्शन की तलाश में, लेकिन कोई खिलाड़ी शूटिंग सर्कल के अंदर नहीं और वापस बॉल बैकलाइन से बाहर। हरियाणा को लॉन्ग कॉर्नर मिला है दिनेश जी। एक क्रॉस हिट लगाया था हरियाणा के फॉरवर्ड्स ने, आपने सही कहा यदि डिफ्लेक्शन मिल जाता तो हरियाणा के हिस्से में पहली सफलता आ सकती थी। विकास, जिस तरह से अभी तक हरियाणा खेल चुकी है, मात्र उन्हें एक ही मैच में पराजय का मुख देखना पड़ा है, लेकिन इस देखिए शूटिंग सर्कल में एक बार फिर से आक्रमण हरियाणा का, लेकिन बहुत सफाई के साथ वहां क्लियर किया गया। खेलने के प्रयास में एक प्लेयर की स्टिक भी छूटी। फ्री हिट मिला है सेंट्रल लाइन के बिल्कुल पास से हरियाणा को, 23 मीटर की लाइन से पास से फ्री हिट। एक बार फिर बैक पास अपनी 15 नंबर की जर्सी मनदीप मोर को। संघर्ष गेंद के लिए 23 मीटर की लाइन के पास और कॉर्नर से एक बार फिर से क्रॉस हिट, शूटिंग सर्किल में गेंद, लेकिन सफाई के साथ तमिलनाडु ने उसे क्लियर किया। विकास, कहना होगा कि तमिलनाडु बहुत होशियारी से हरियाणा के आक्रमण को विफल कर रहा है। यकीनन तौर पे इसमें कोई शक नहीं है, तमिलनाडु टीम भी बेहतरीन टीम है और तमिलनाडु का जहां तक ताल्लुक है, हालांकि लीग चरण में 3 में से फिलहाल इससे बेचे समय बढ़िया स्किल दिखाते हुए बहुत शानदार कोशिश, शूटिंग सर्कल के अंदर दाखिल हुए। तारीफ इस बार हरियाणा की गोलकीपर की, विक्रांत की, क्या बेहतर आइए नजर डालते हैं। पिछले इस कोशिश पे अकेले पूरा हरियाणा के डिफेंस को रोका, एक जरूर डिफेंडर थे जिन्होंने एंगल ब्लॉक की, और क्या बेहतरीन शुरुआत की कोशिश पहले क्वार्टर में। तारीफ करनी होगी, तमिलनाडु आज एक बदली हुई टीम नजर आ रही है, अलग स्ट्रैटेजी। क्वार्टर फाइनल्स बड़ा मुकाबला है, पूरे लीग चरण भूल जाइए, ये मुकाबला ही आपके सेमीफाइनल के दरवाजे सुनिश्चित करेंगे। दिनेश, सही कहा आपने, लीग मैचेस में आपने क्या किया ये मायने नहीं रखता, यदि क्वार्टर फाइनल में आपने अच्छा किया तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। और ये आक्रमण जो अकेले दम पर कार्तिक सेल्वम ने किया था, विकास, जो उनकी टोमोहॉक थी, वो अंतिम क्षणों में यदि हरियाणा के डिफेंडर की स्टिक से ना लगी होती तो ये एक पहला गोल हो सकता था तमिलनाडु के लिए। तो इस तरह से दोनों ही टीमों का पोजीशन फिलहाल तो कह सकते हैं कि बराबर रहा है, 50-50%। इस समय जो बॉल है पीछे गई है बैकलाइन से और वहां पर हरियाणा को फ्री हिट 23 मीटर की लाइन के पास से। अत्याधुनिक हॉकी में दिनेश इसे लॉन्ग कॉर्नर, पहले एक पूरे किनारे से लॉन्ग कॉर्नर लिया जाता था, लेकिन हॉकी जिस तरीके से बदला है, और मेरी चर्चा भी हो रही थी इससे पूर्व मिलिंद वागले जी से, तो वहाँ भी कई बदलाव देखने को मिले अत्याधुनिक हॉकी में 2018 के बाद। फिलहाल इसे बीच से बॉल ट्रैप करने की कोशिश, पहले क्वार्टर की सूरत हाल इस समय 0-0। मुकाबला बहुत अहम है, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला पुरुष वर्ग का, तमिलनाडु वर्सेस इस समय हरियाणा। हरियाणा 5 से 6 अंतर्राष्ट्रीय सितारों से सजी। तमिलनाडु टीम में भी बात करें, कई बड़े सितारे हैं जिस पे नजर डाले, वेंडेक वैक्स, बात करें वेस्ले। फिलहाल इसी बीच इस समय 2 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी भरत आज कप्तानी की भूमिका अदा कर रहे, भरत चिकारा, ये भी बड़ा नाम है भरत चिकारा इस समय। बात करें हरियाणा टीम के अहम हिस्सा, और बॉल वापस से बिन की मिडफील्ड के अंदर इस समय एक शूटिंग सर्कल के अंदर हरियाणा का हमला, क्या शानदार स्किल दिखाते हुए गोल पोस्ट के अंदर, और पहला गोल भरत चिकारा। जो ये मूव बनाया था भरत ने वो देखने लायक था दिनेश, बहुत अनुभवी खिलाड़ी, 36 वर्षीय भरत चिकारा। नजर डालते हैं रिप्ले में, गोलकीपर को बीट किया और भरत का आखिरी शॉट इस समय। जी बिल्कुल विकास, जो मूव बनता है उसका बहुत योगदान रहता है कि शूटिंग सर्किल में जो आपके फॉरवर्ड्स हैं वे उसका किस प्रकार उपयोग करते हैं और गेंद को आखिर में किस तरह से दिशा देते हैं। तो हरियाणा ने
इस क्वार्टर फाइनल का, जो कि दूसरे नंबर का क्वार्टर फाइनल मैच है, तमिलनाडु के साथ खेल रही है उनकी टीम। 1-0 की बढ़त बना ली है, जबकि लगभग 6.5 मिनट का खेल होना बाकी है। विकास, एक बहुत अच्छा आक्रमण था। आपने देखा कि शूटिंग सर्किल में हरियाणा के वे प्लेयर जिन्होंने गोल किया है कई डिफेंडर्स से घिरे हुए थे, पर अंत तक उन्होंने गेंद पर नियंत्रण रखा और बड़ी सफाई से, बड़ी चतुराई से गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया। यकीनन तौर पे बात करें इस समय भरत चिकारा की मैं जिक्र कर रहा था। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली, उसमें खेल चुके हैं और मिडफील्डर हैं। 2010 ही एशियन गेम्स में भी उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और आज हरियाणा के लिए कप्तानी कर रहे हैं। 36 वर्षीय खिलाड़ी, बड़े मुकाबले में उनको कप्तानी दी गई। इससे पूर्व कप्तानी की भूमिका आप देखते रहे हैं। इस टीम के लिए सुरेंद्र कुमार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अदा करते रहे हरियाणा के लिए, लेकिन आज भरत चिकारा टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। फिलहाल बीच में इस समय बाधित हुआ खेल और वापस से मिड लाइन के पास से हिट लेने के लिए स्कोर लाइन देखे 1-0 की बढ़त पे हरियाणा। पहले क्वार्टर में 2 शुरुआती हमले दिनेश किए थे यहाँ पे तमिलनाडु ने, लेकिन उससे परिणाम फिनिश तक नहीं ले जा सके गोल के रूप में। जी, आज राजकोट की मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच, और यहाँ स्टैंड्स में बैठे सैकड़ों हॉकी प्रेमी, खेल प्रेमी दर्शक एक अच्छे मैच का आनंद लेते हुए एक खूबसूरत मैदान में होता हुआ खूबसूरत मैच, क्योंकि जो ये मैदान है चारों तरफ से हरे भरे दरख्तों से घिरा हुआ है और हरे रंग की टर्फ के ऊपर जब पीली और नीली रंग की जर्सी में 2 टीमों के खिलाड़ी खेलते हैं तो विकास, एक ऐसा दृश्य उपस्थित होता है कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। एक बहुत सुंदर दृश्य होता है यकीनन तौर पे, और बहुत अच्छी मेजबानी की है गुजरात राज्य के। बात करें इस समय खेल युवा कल्याण विभाग, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, फिलहाल इस समय बॉल पोजीशन बात करें तमिलनाडु के लिए 17 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी बॉल के साथ केविन किशोर, वापस से बॉल पास किया 10 नंबर में अक्षय कुमार, बॉल लेकर तमिलनाडु के लिए इंटरसेप्ट करने की कोशिश वहां पे मनदीप मोर की। 1-0 पहले क्वार्टर में, और आज के दोनों ही अहम अंपायर बात करें बी ननैया कर्नाटका से और ओलंपियन शेख जावेद। और फिलहाल इसी बीच हरियाणा का आक्रमण 5 मीटर डॉटेड लाइन और 23 मीटर की रेखा के बीच शूटिंग सर्कल के नजदीक। दिनेश, वापस बॉल हरियाणा के पास। जी विकास, अभी आपने जो इस मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं ननैया और जावेद जी के बारे में बताया, तो जावेद एशियन गेम्स 2006 कतर, 2014 और इसके अलावा 2018 में जो जकार्ता में गेम्स हुए थे उसमें अंपायरिंग का दायित्व निभा चुके हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2014 हेग और वर्ल्ड कप 2018 में जो भुवनेश्वर में हुआ था विकास, उसमें भी अंपायर का बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण दायित्व इन्होंने निभाया था। रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में भी ये अपने निर्णय से, यानी अंपायरिंग का काम वहां भी कर चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा अनुभवी अंपायर जब मैदान पर होता है तो अच्छे खेल के साथ साथ अच्छे निर्णयों को भी हमें देखने को मिलता है। यकीनन तौर पे कोई शक नहीं है। ऐसे बात करें हॉकी इंडिया के ऑफिशियल्स, लंबा अनुभव रखते हैं। शेख जावेद मुंबई से, और फिलहाल स्कोर लाइन पे नजर डाले पहले क्वार्टर में 1-0 की बढ़त। लॉन्ग कॉर्नर लेती हुई हरियाणा की टीम, राइट फ्लैंक से अच्छा अटैक बनाते हुए 15 नंबर में मनदीप मोर, लेकिन बॉल पोजीशन एक बार फिर से हरियाणा के पास। राइट फ्लैंक से 5 मीटर डॉटेड लाइन और शूटिंग सर्कल में दाखिल हुए। इस समय क्रॉस आया और फिलहाल इस समय बॉल बैक लाइन से बाहर। पहला गोल आया भरत चिकारा के द्वारा। 2010 कॉमनवेल्थ गेम खेल चुके हैं और पहला गोल फील्ड गोल किया मुकाबले के 9वें मिनट में भरत चिकारा, जर्सी नंबर 2। और तमिलनाडु की टीम वापस इस समय अटैक को बनाती हुई, इनके मिडफील्डर बॉल को बेहतर सप्लाई की कोशिश करेंगे हरियाणा के अच्छी डिफेंस के खिलाफ। दिनेश, बिल्कुल, भरत चिकारा के गोल से पूरी टीम को एक नई ऊर्जा मिली और आरंभिक आक्रमण जो तमिलनाडु की ओर से हुए थे उनका दबाव जो है बहुत कम उनके ऊपर है। हालांकि दबाव में हरियाणा की टीम कभी नहीं दिखी, लेकिन आरंभिक रूप से जो मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की थी तमिलनाडु की टीम में, उसमें वो अपने सफल नहीं हुई। यहाँ पर 4 नंबर की जर्सी में हरियाणा के सुमित ने गेंद आगे पास दी है महकप्रीत को, और बहुत सफाई के साथ खेलते हुए यहाँ पर उड़ीसा का, क्षमा कर, यहाँ पर तमिलनाडु का एक और आक्रमण शूटिंग सर्किल में गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने फॉरवर्ड्स के पास गेंद थी, लेकिन सफाई के साथ 19 नंबर की जर्सी में सुरेंद्र ने बहुत सफाई के साथ रोका
और खतरा अभी टला नहीं है, गेंद अभी भी शूटिंग सर्किल में। उड़ीसा के 18 नंबर की जर्सी में प्लेयर उनके सामने अभी भी कोशिश कर रहे हैं गेंद को छीनने की। 23 मीटर की लाइन के आसपास खेल होता हुआ फ्री हिट मिला है हरियाणा को अपने ही हाफ में। तो इस तरह से जो उड़ीसा का जो एक आक्रमण था वो निश्चित रूप से, क्षमा करें, तमिलनाडु का जो आक्रमण था वो एक प्रभावी आक्रमण हो सकता था, लेकिन सफाई के साथ सुरेंद्र ने जिस तरह से अपनी टीम को बचाया, सुरक्षित है हरियाणा और स्कोर अभी भी हरियाणा के पक्ष में 1। हरियाणा इस समय 1-0 की बढ़त पे। हरियाणा वर्सेस तमिलनाडु, आज का ये पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, बहुत ही अहम मुकाबला है ये। और जिस तरीके से पहला गोल किया भरत चिकारा ने, तमिलनाडु की टीम येलो कलर की जर्सी में, एक अच्छी टीम है तमिलनाडु भी, जिस टीम में सतीश जेम्स, कार्ति सेल्वम, धनुष मुरली ऐसे सितारे हैं, साथ ही साथ पृथ्वी मगप्पा। फिलहाल थोड़ा सा इन्फ्रेंचमेंट और इस समय स्कोर देखें अभी भी 1-0। बहुत ही शानदार तरीके से 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी 7 साल बाद, और गुजरात राज्य जिस तरीके से, और देखिए बेहतर स्किल दिखाते हुए खिलाड़ी, डिफेंडर यहाँ तारीफ करनी होगी। इस समय तमिलनाडु 24 नंबर में साहिल रेहबर पास किया राइट फ्लैंक से, वापस मूव बनाती हुई इस समय तमिलनाडु की टीम कोशिश करेगी टीम, लेकिन अब हरियाणा काउंटर अटैक पे, ये ताकत है। आखिरी क्वार्टर के कुछ सेकंड से बेहतर गति, शानदार बॉल ट्रेवलिंग, बेहतर कंट्रोल, 23 गज की रेखा को पार किया। इस समय देखना होगा बॉल वापस शूटिंग सर्कल में जाने से पहले रोका। 36वें राष्ट्रीय खेल जिसका सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पे, और आज पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला तमिलनाडु हरियाणा आमने सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे। तमिलनाडु के खिलाफ हरियाणा 1 गोल की बढ़त पे, और फिलहाल जो पिछला गोल हुआ था भरत चिकारा के द्वारा, भरत चिकारा टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और फिलहाल पहले क्वार्टर की समाप्ति के बाद देखिए पिछला जो गोल था, बेहतरीन स्किल इस समय, और क्या कहने भरत के चिकारा, शानदार तरीके से आखिरी फिनिश देखने लायक भरत चिकारा का। दिनेश, पहले क्वार्टर के बाद 1-0 की बढ़त के बाद हरियाणा बेहतर शुरुआत की है, अगले क्वार्टर में क्या रणनीति रखेगी? विकास, हरियाणा के इस पहले गोल का रिप्ले जब हम देख रहे थे तो आपने देखा कितनी सफाई के साथ गेंद को एक टप्पा खाने के बाद वो पहुंची थी भरत के पास, और भरत ऐसा लगता है कि इंतजार कर रहे थे। उन्हें मालूम था, पूर्वानुमान था कि इस तरह की गेंद या इस तरह का पास उनके पास आ सकता है। और यहाँ स्क्रीन पर अपने गंभीर दायित्वों को निभाते हुए इस मैच के ऑफिशियल्स, हमने आपको बताया है शेख जावेद हैं और ननैया है। ननैया कर्नाटक के कुर्ग के रहने वाले युवा अंपायर हैं, और आगे आने वाले समय में आप कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी उन्हें देखेंगे। तो विकास, इस टूर्नामेंट में हमने कई टीमों को देखा, कई राज्यों की टीमें हैं, हरियाणा है, झारखंड है, उड़ीसा है, चाहे वो महिला वर्ग के खेल हों या पुरुष वर्ग की हॉकी हो, हमें बेहतरीन खेलों का नज़ारा देखने को मिला। लेकिन एक बात है कि आज जिस तरह का संघर्ष इस मैच में देखने को मिल रहा है, पहले क्वार्टर में हरियाणा जैसी टीम के विरुद्ध तमिलनाडु खेल रही है, उसके लिए तो तमिलनाडु की टीम की प्रशंसा करनी होगी। बिल्कुल सहमत आपकी बात से। तमिलनाडु जरूर ये टीम युवा खिलाड़ियों से सजी हुई है, और इस टीम में जिस तरीके से खिलाड़ी शुरुआत की है, बेहतर डिफेंस दिखा, इसमें कोई शक नहीं है। और इस डिफेंस में देखना होगा दूसरे क्वार्टर में हरियाणा के जो कोच हैं गुरबाज सिंह, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, एशियन गेम्स बात करें, इंचियोन 2014 में भारतीय टीम के हिस्सा थे, कॉमनवेल्थ 2010 उस टीम के हिस्सा दिल्ली, ग्लासगो बात करें, और साथ ही साथ ये वो बात करें टीम के कोच हैं, क्या रणनीति बनाई होगी उन्होंने। फिलहाल एक बार से देखिए क्या खूबसूरती से हरियाणा के खिलाड़ी बॉल लेकर के 23 मीटर की रेखा को क्रॉस किया, शूटिंग सर्कल में दाखिल हुए, एंगल ब्लॉक करने की कोशिश थी इस समय तमिलनाडु की डिफेंस की, लेकिन वापस से बॉल पोजीशन तमिलनाडु पे। और आप देखिए आज का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला हरियाणा वर्सेस तमिलनाडु, और बेहतरीन खेल जिसका सीधा प्रसारण आज सुबह ही आप हॉकी से ही शुरुआत हुई है, बात करें आज के दिन की, और शानदार तरीके से तमिलनाडु और हरियाणा आपस में इस समय खेल दिखाते हुए। तमिलनाडु के लिए एक लंबा हिट, लेकिन शूटिंग सर्कल में कोई भी खिलाड़ी जो ट्रैप करके इसे डिफ्लेक्शन दे सके मौजूद नहीं। दिनेश,
जी विकास, आप रणनीति की बात कर रहे थे कि हरियाणा की रणनीति क्या होगी, तो हरियाणा की रणनीति तो यही दिखती है कि किसी प्रकार गोलों की संख्या और बढ़ाई जाए, और तमिलनाडु की रणनीति है कि किसी तरह से हम बराबरी पर आ जाएं। इस बीच एक लंबा स्कूप हरियाणा की 18 नंबर की जर्सी में सुरेंद्र ने दिया था सेंट्रल लाइन के पास। एक बार फिर से आक्रमण की कोशिश 17 नंबर की जर्सी में प्रिंस की ओर से कोशिश कर रहे हैं शूटिंग सर्किल के अंदर जाने की, लेकिन वहां पर अच्छा खेल दिखाते हुए तमिलनाडु के रक्षक, लेकिन एक बार खतरा हो सकता है। शानदार बचाव वहां पर तमिलनाडु के गोलकीपर का, और लगता है फिलहाल कुछ क्षणों के लिए तो खतरा टला तमिलनाडु के ऊपर, जिस तरह से हरियाणा का ये आक्रमण था। 17 नंबर की जर्सी में केविन किशोर ने सफाई के साथ उसे शूटिंग सर्किल से बाहर निकाला था। यकीनन तौर पे बहुत बढ़िया दिखाया इस समय डिफेंस। इस समय तमिलनाडु के खिलाड़ियों ने बेहतर अंदाज में बहुत ही शानदार एक मूव बनाया था हरियाणा ने, और दर्शाई हरियाणा की टीम कि कितना बढ़िया बॉल पोजीशन, अच्छे मूव, बेहतर नियंत्रण और अच्छा मिडफील्ड की खेल को जिस तरीके से इन्होंने आज बेहतर बॉल सप्लाई कर रहे फॉरवर्ड के लिए। एक बार फिर से शूटिंग सर्कल के अंदर इस समय बॉल, मुकाबला बहुत बेहतरीन अंदाज में दूसरे क्वार्टर का 1-0 की बढ़त पे हरियाणा, और जिस तरीके से यह मुकाबला जो टीम जीतेगी सीधे सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेगी। पिछला मुकाबला जीतकर कर्नाटक पहली टीम बनी है पुरुष वर्ग की। देखिए मिडफील्ड में कितनी खूबसूरती से इस समय समानांतर पास हिट लिया शूटिंग सर्कल से पहले, बढ़िया बचाव इस समय। ये अच्छी रणनीति दिनेश, डिफेंस ऑर्गेनाइज होकर खेलता हुआ इस समय तमिलनाडु का। एक समझदारी पूर्ण बचाव था ये तमिलनाडु की ओर से, बहुत ध्यान के साथ मार्क किए हुए थे, जिसकी आवश्यकता है फिलहाल तमिलनाडु को। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर पीले रंग की जर्सी में तमिलनाडु की टीम को और नीले रंग की जर्सी में हरियाणा की टीम को 36वें राष्ट्रीय खेलों की पुरुष हॉकी स्पर्धा के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में, और अभी तक स्कोर है हरियाणा 1 तमिलनाडु 0। एक और कोशिश शूटिंग सर्किल में गेंद गई भी थी, लेकिन ये आक्रमण तमिलनाडु का विफल होता हुआ। दिनेश, अत्याधुनिक हॉकी में शूटिंग सर्कल के अंदर से आपको हिट अगर ली जाती है तभी गोल करार दिया जाता है, और इसीलिए गोलकीपर ने भी ज़्यादा कोई जल्दबाजी या प्रयत्न नहीं किया। फिलहाल इस समय हरियाणा 1-0 की बढ़त पे दूसरे क्वार्टर का खेल, और आज का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। आप सुबह जिस आपने देखा कि कर्नाटक की टीम एसवी सुनील की कप्तानी में पहले पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, और अब एक बार फिर से इस समय टीम तमिलनाडु की मिस पास, बढ़िया बॉल ट्रैप की हरियाणा के इस समय खिलाड़ी ने, लेकिन वापस से हरियाणा को बॉल पोजीशन 15 नंबर की जर्सी में मनदीप मोर, बढ़िया विंगर है, और एक बार फिर से बॉल इस समय हरियाणा के खिलाड़ी शूटिंग सर्कल के अंदर। देखना होगा भरत शिकारा नजर आते हुए टीम के कप्तान। भरत शिकारा के साथ साथ 4 नंबर की जर्सी में सुमित, इंटरनेशनल प्लेयर, इस समय सेंटर किया बॉल को। डिफेंस बहुत बढ़िया अभी तक कार्य किया तमिलनाडु का, वरना 1-0 जो स्कोर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं वो शायद 2 या 3-0 हो सकता था। दिनेश, शानदार नियंत्रण था इस बार हरियाणा के आक्रमण में, और जिस तरह से अपनी स्टिक से लेकर आगे बढ़ रहे थे सुमित। एक बार फिर से अभी डी के अंदर गेंद तमिलनाडु के, खतरा टला नहीं है, बिल्कुल गोल पोस्ट के सेंटर में पास दिया गया था। तमिलनाडु के डिफेंडर्स ने क्लियर किया एक लंबी हिट। विकास, जिस तरह से हरियाणा लगातार 1-0 के बाद अपनी बढ़त बनाने को कोशिश कर रहा है, एक के बाद दूसरे गोल की दरकार है उनको, लगता है कितने खतरनाक आक्रमण है ये। शूटिंग सर्किल में गोल पोस्ट के बिल्कुल सेंटर में पास दिया गया था, और एक बार फिर अभी गेंद हरियाणा के दीपक के पास। एक नए आक्रमण की तैयारी सेंट्रल लाइन के पास से 23 मीटर की लाइन के पास अपने नियंत्रण में लिए हुए हरियाणा के प्लेयर्स, लेकिन ये मिस पास हुआ। वहां 10 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु के अक्षय ने गेंद को इंटरसेप्ट किया था, पास दिया 23 मीटर लाइन के पास। आगे बढ़ती हुई तमिलनाडु की टीम कॉर्नर से एक हिट लगाकर शूटिंग सर्किल में डालना चाहते थे, लेकिन फ्री हिट मिला है तमिलनाडु की टीम को। तमिलनाडु के लिए कार्तिक सेल्वम बहुत बढ़िया कार्य किए पूरे टूर्नामेंट में। तमिलनाडु की टीम भले एक जीत के आई है मुकाबला, लेकिन अच्छी चुनौतियां पेश की है लीग चरण में। क्वार्टर फाइनल नॉकआउट होता है हमेशा से, और जब भी टीमें टकराती है अलग स्ट्रैटेजी से, अलग रणनीति अपना कर आई है दोनों टीमें। स्कोर लाइन 1-0 की बढ़त पे हरियाणा चाहेगी हरियाणा की टीम जहां से इस बढ़त को और बड़ा आकार दी जाए, लेकिन बॉल पोजीशन, गेम की गति को स्लो किया तमिलनाडु ने। वापस से अपने इस समय डिफेंस को
ऑर्गेनाइज करने की कोशिश, अच्छी रणनीति है यकीनन तौर पे 12 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु के लिए। बात करें विनोदन वीरन बॉल पे, और अब 17 नंबर की जर्सी खिलाड़ी बॉल को लेकर के केविन किशोर, बेहतर इस समय हिट शूटिंग सर्कल के अंदर, लेकिन अभी भी किसी तरीके का कोई भी यहाँ पे खतरा नहीं। 1-0 की बढ़त, 23 मीटर की रेखा से ये इस समय हिट लेते हुए, बहुत ही बढ़िया खेल। ब्लू कलर की जर्सी में हरियाणा, येलो कलर की जर्सी में तमिलनाडु। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, हरियाणा की टीम की कप्तानी कर रहे हैं आज। बात करें मुकाबले में, भरत चिकारा मिडफील्डर हैं, 2010 एशियन गेम्स, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली, अनुभवी खिलाड़ी भरत चिकारा 36 वर्षीय। दिनेश देखिए आप, 36 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी, युवा सितारों के साथ कप्तानी दी गई है, किस ये कॉम्बिनेशन कितना आपको प्रभावित करता है? जी विकास, मैं कहना चाहूँगा कि 36 वर्षीय खिलाड़ी के साथ एक गुरमुख सिंह जैसे एक जूनियर विश्व कप खेलने वाले युवा खिलाड़ी भी हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि जो कोच हैं वे जानबूझकर ऐसा टीम का गठन इस तरह से करते हैं कि वरिष्ठ खिलाड़ियों के अनुभव को जूनियर खिलाड़ी देखें और उसके अनुरूप ही आगे आने वाले समय अपने खेल में निखार लाते रहें। और यहाँ पर तमिलनाडु की ओर से एक लंबी हिट, पोजीशन तमिलनाडु के पास, हरियाणा के हाफ में खेल होता हुआ 29 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु के खिलाड़ी ने सेंटर पास दिया था, लेकिन मिस पास, और कंट्रोल की है गेंद हरियाणा ने। फ्री हिट मिली हरियाणा को सेंटर लाइन और 23 मीटर की लाइन के पास। तो तमिलनाडु के विकास काउंटर अटैक जारी हैं, लेकिन पहली सफलता का अभी भी उन्हें इंतजार है। और यहाँ पर 15 नंबर की जर्सी में मनदीप मोर ने गेंद को आगे बढ़ाया था, शूटिंग सर्कल में गेंद तमिलनाडु के, और एक टोमोहॉक लगाने की कोशिश की थी, और देखना है कि इस पर अंपायर का निर्णय देते हैं। फिलहाल इस समय बहुत ही बेहतर रोबोस्टिक से यह कोशिश, एंगल को ब्लॉक किया था जरूर डिफेंडर ने, लेकिन जिस तरीके से प्रतीत होता हुआ कि पहला पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है इस समय हरियाणा को। पहला पीसी पेनल्टी कॉर्नर, क्या खूबसूरती से, क्या इसे कन्वर्ट कर पाएंगे गोल के रूप में? हरियाणा की टीम जानी जाती है अपने तेज तर्रार हॉकी के लिए, और इस टीम में नजर आ रहे हैं आज सुरेंद्र कुमार, इंटरनेशनल खिलाड़ी, डिफेंडर, इंडिया के लिए 65 मुकाबले ओलंपिक में खेल चुके हैं, और फिलहाल नजर डालते हैं इस पेनल्टी कॉर्नर पे। और आज के हमारे अंपायर बी ननैया, देखे तस्वीरों में, बी ननैया इस समय कर्नाटका से इंजेक्ट किया, ठीक तरीके से स्टॉपर रोक नहीं सके, खतरा हालांकि टला नहीं है। 5 मीटर डॉटेड लाइन शूटिंग सर्कल के पास, इस समय डिफ्लेक्शन की तलाश में, लेकिन बॉल निकल गई बैक लाइन से बाहर। बी ननैया आज के अंपायर इस समय इस बात को पुष्टि करते हुए, और अब मिला है इस समय लॉन्ग कॉर्नर। अत्याधुनिक हॉकी में लॉन्ग कॉर्नर 23 मीटर की रेखा से ली जाती है। दिनेश, ये पेनल्टी कॉर्नर विफल रहा हरियाणा का। जी अभिषेक, शूटिंग सर्कल में अभिषेक ने डिफ्लेक्शन की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली, और फिलहाल तो स्थिति ये है कि हरियाणा 1 तमिलनाडु 0, जबकि 6 से ज़्यादा कुछ मिनट का खेल शेष है, 6 मिनट 20 सेकंड के आसपास। तमिलनाडु की लगातार कोशिशों के बीच इस तरह से हरियाणा के प्रति आक्रमण होते हैं विकास, उससे लगता है कि हरियाणा की टीम अपने ये प्रयास जारी रखेगी। फिलहाल तो हरियाणा के ही हाफ में खेल होता हुआ 23 मीटर लाइन और डी के बीच में एक सोच समझकर मूव बनाने की कोशिश, और एक स्कूप, लेकिन वहां पर स्कूप पर नियंत्रण किया था तमिलनाडु के 22 नंबर की जर्सी में विनोद ने। वापस समानांतर पास दिया अपने ही साथी को, साइड लाइन के समानांतर खेल होता हुआ बैक पास दिया 12 नंबर की जर्सी में, एक बार फिर विनोदन के पास थी गेंद, यहाँ पर 10 नंबर में अक्षय कुमार आगे पास दिया है 23 मीटर लाइन के पास 24 नंबर की जर्सी में साहिल को, साहिल गेंद पर नियंत्रण किए हुए बैक पास दिया है। तो इस प्रकार से विकास लगातार कोशिश जारी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की टीम इस समय शूटिंग सर्कल में, लेकिन फायदा नहीं उठा सके। बहुत ही शानदार मेजबानी, 36वें राष्ट्रीय खेल, 7 साल बाद राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी हुई है, और जिस तरीके से ये मुकाबले गुजरात के अलग अलग शहरों में 36 स्पर्धाएं, हॉकी का क्वार्टर फाइनल, लीग चरण का दौर खत्म हो चुका है, दूसरा क्वार्टर फाइनल है, और दूसरे क्वार्टर का खेल हरियाणा 1-0 की बढ़त पे, लेकिन तमिलनाडु ने जो खेल दिखाया है बहुत प्रशंसनीय। धनुष मुरली बहुत ही स्किलफुल खिलाड़ी हैं, पिछले मुकाबलों में देख चुके हैं आप इन्हें। 24 नंबर की जर्सी में एक बॉल ली, बॉल काफी ज्यादा हवा में, और देखते हैं आप तस्वीरों में शेख जावेद
ओलंपिक में कर चुके हैं अंपायरिंग की भूमिका मुंबई महाराष्ट्र से, और साथ में है उनके बात करें इस समय पी नरैया, और मुकाबले में इस समय दूसरे क्वार्टर के लगभग 4 मिनट 30 सेकंड्स के आसपास खेल, और बहुत बढ़िया खेल रही है हरियाणा और उतना ही अच्छी चुनौती दे रही है दिनेश। ये समय तमिलनाडु की टीम, स्कोर लाइन 1-0 की बढ़त पे हरियाणा। जी 1-0 की बढ़त है इस समय इस मैच में हरियाणा के पास। हरियाणा के डिफेंडर्स भी अच्छा खेल दिखाते हुए जिस तरह से तमिलनाडु के आक्रमणों को वो लगातार विफल कर रहे हैं, और बीच बीच में वे अपने गोल की संख्या को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं विकास की इस अच्छी हॉकी का, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि संभवतः ये इस टूर्नामेंट का एक बहुत अच्छा मैच है, जिस तरह से हरियाणा की टीम के सामने तमिलनाडु की टीम खेल रही है। हरियाणा के हाफ में फिलहाल खेल होता हुआ एक बार फिर से एक लंबा स्कूप, और वहां सफाई के साथ रोका था हरियाणा की 10 नंबर की जर्सी में धर्मेंद्र ने। भरत चिकारा गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए एक और आक्रमण की कोशिश, लेकिन 23 मीटर की लाइन के पास फाउल हुआ तमिलनाडु के डिफेंडर का। फिलहाल बिल्कुल सही, इस बात से सहमत, और 23 मीटर की रेखा के पास या शूटिंग सर्कल से बाहर फाउल होता है, जहां से फाउल हो वहीं से हिट ली जाती है। फिलहाल इस समय डिफ्लेक्शन की कोशिश थी। आज भरत चिकारा को कप्तानी दी गई है, इससे पूर्व कप्तानी की भूमिका सुरेंद्र नजर आए हैं करते हुए। गुरमुख सिंह हैं इस टीम में, जूनियर विश्व कप खेल चुके सुरेंद्र खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। इसके अलावा अभिषेक हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय टीम के हिस्सा थे, 20 में मुकाबले खेले, 9 गोल किया उन्होंने। सुमित जूनियर वर्ल्ड कप खेल चुके इस टीम में, और कप्तान भरत चिकारा। आपको बताते रहे हम कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में भारतीय टीम के हिस्सा। फिलहाल नजर डालते हैं इस समय इस तमिलनाडु के डिफेंस वापस से अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश, और अच्छा खेल दिखाया है तमिलनाडु ने हरियाणा जैसी बड़ी टीम के खिलाफ। इस टीम में भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी और उनके साथ कई जूनियर इंडिया कैंप कर चुके सितारे हैं। तमिलनाडु भी लंबे समय से हॉकी में अपनी अहम भूमिका, और सबसे अहम बात दिनेश, एक बात मुझे अभी याद आई, दोनों टीमें 12वें सीनियर नेशनल, जब मैं भोपाल में कवर कर रहा था, दोनों टीमें फाइनलिस्ट थी, विजेता रही थी हरियाणा। वहां पूरे बात करें समय तक मुकाबला बराबर ही रहा था, शूट आउट तक गया था, और दोनों फाइनलिस्ट टीमें फिलहाल पिछले सीनियर नेशनल की आमने सामने है यहाँ क्वार्टर फाइनल में। जी यदि हम कार्ति सेल्वम की बात करें, विकास जो पीले नंबर की जर्सी में है तमिलनाडु की ओर से, इन्होंने झारखंड के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें गोल किया था, और उस पहले मैच में मारीश्वरन शक्तिवेल, कार्ति सेल्वम और सेलवराज ने अपनी टीम की ओर से गोल किए थे, और 23 मीटर की लाइन के पास से एक बार फिर से आक्रमण की कोशिश में सेलवराज की सहारे, उनके सहयोग से तमिलनाडु की टीम आगे बढ़ती हुई। लेकिन एक बार फिर से पोजीशन हरियाणा को, एक और आक्रमण हो सकता है हरियाणा की ओर से। 7 नंबर की जर्सी में आगे पास दिया गया भरत चिकारा के पास, बिल्कुल शूटिंग सर्कल में आ चुके हैं डी के अंदर, उनसे संघर्ष करते हुए सेलवराज, लेकिन सफल नहीं हुए। गेंद पर नियंत्रण अभी भी भारत के पास, डी के मुहाने पर खेल होता हुआ, बहुत ही अच्छा संघर्ष गेंद के लिए, गोल पोस्ट के बीचों बीच पास दिया गया था, लेकिन सफाई के साथ 24 नंबर की जर्सी में जो तमिलनाडु के हैं साहिल, उन्होंने गेंद को बाहर जरूर निकाल दिया है, लेकिन अभी हरियाणा के 2 फॉरवर्ड से घिरे हुए कोशिश कर रहे हैं कि फ्री हिट हरियाणा को ना मिले, लेकिन उनकी कोशिश असफल। हरियाणा का आक्रमण लगातार जारी। बिल्कुल दिनेश, आपकी बात से सहमत। हरियाणा लगातार इस समय बेहतर कोशिश करती हुई, भरत चिकारा की कप्तानी में एक अच्छा हिट लिया था शूटिंग सर्कल के अंदर, बॉल रिबाउंड पे वापस आई थी, वापस से आक्रमण राइट फ्लैंक से, फ्लैंक चेंज करने की भी रणनीति रहती, बैक पास करके दोबारा से इस अटैक को बनाने की कोशिश। ये भी हॉकी के मुकाबले में दूसरे क्वार्टर का खेल, आज का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। पिछले सीनियर नेशनल मेंस का बात करें 12वें में दोनों टीमें फाइनलिस्ट, हरियाणा वहां चैंपियन रहे थे शूट आउट में, लेकिन यहाँ क्या तमिलनाडु अच्छी चुनौती देती हुई। आखिरी क्वार्टर का खेल जारी, और देखना होगा इस समय अब बॉल पोजीशन काफ़ी देर बाद तमिलनाडु के पास, और बॉल पोजीशन जिस तरीके से तमिलनाडु की टीम लेकर के बहुत अहम रहेगा ये देखना इस हाफ की समाप्ति के बाद किस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ दोनों टीमें आएगी। और जी हाँ, ये है बड़े मुकाबले का प्रेशर। फिलहाल इस समय देखें, इस समय पहले हाफ की समाप्ति के बाद 1-0 की बढ़त पे हरियाणा, ये है सूरत हाल। हरियाणा के लिए पहला गोल आया भरत चिकारा के द्वारा।
भरत शिकारा के द्वारा पहला गोल आया था मुकाबले में, महज 1-0 की बढ़त। आप उसी गोल का आप देखिए इस समय रिप्ले में, कितना बढ़िया कंट्रोल था, क्या स्किल थी। जो दुनिया की टॉप टीमें हैं, जर्मनी, स्पेन, उनके जैसे और नीदरलैंड्स, उन टीमों की झलक दिखाई इस बार। और भरत शिकारा की देखिए सेलिब्रेशन, कप्तान है आज, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और हरियाणा को पहले हाफ के बाद 1-0 की बढ़त। ये है इस समय सूरत हाल फिलहाल दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। हाफ टाइम का स्कोर लाइन आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सीधा प्रसारण इस समय 36वें राष्ट्रीय खेलों का डीडी स्पोर्ट्स पे। दूसरा क्वार्टर फाइनल बात करें, बहुत अहम रहेगा यकीनन तौर पे। फिलहाल इस समय ये सूरत हाल, दोनों टीमें अभी तक, हरियाणा 3 मुकाबले खेले, 2 जीत 1 हार के साथ 15 गोल इससे पूर्व किया था इन्होंने, 3 गोल इनके खिलाफ लगे। और अब सीधे चलते हैं अपने दिल्ली स्टूडियो आपको लेकर के। दिल्ली स्टूडियो आपको लिए चलते हैं और अगले क्वार्टर की Second quarterfinals between Haryana and Tamil Nadu, and Haryana has taken a slim 1-0 lead at the end of the second quarter in the men's quarterfinal hockey. I am Arjun, your host, and joining me is a sports expert Manish Kumar. Just to give you a brief taste of what's been going on in men's hockey. Earlier we had Karnataka versus Gujarat, the first quarterfinal, which Karnataka won by a huge margin of 11-2. So Manish, let's take it to you now. Good to have you on the program. And looking at this slim lead of 1-0 by Haryana against Tamil Nadu, how do you see the remaining 2 quarters being played and Haryana's performance for that matter? See, as far as history is concerned, both teams have always been close to each other. Even though the tournament favorite seems to be Haryana, I think what Haryana will wait and watch is they'll come back very strongly in the last phase of the third quarters and the fourth quarter. I think that's what has been a common strategy with many teams. They don't want to take chances and waste their stamina and energy. They'll rather come back towards the end because they're very confident of their preparation, their planning, their defense, and their offense attack. So I think that's what I would like to anticipate, that Haryana will come back very strongly in the last quarter. Again, the formation is very important. Who are your forwards, midfielders, and your fullback positions. We know that these positions are interchangeable as the situation demands. How do you see the attack being restructured in the third quarter, which is about to start after this interim period? See, modern hockey has undergone lots of changes, sea changes. So the game doesn't really start and finishes in the first and second quarter. So teams would like to reserve its energy. I'm sure even Tamil Nadu, we cannot, maybe the underdog in this match, but you can't rule them out coming back and springing up a surprise against Haryana in the last quarter. So I would wait and watch probably the last phase of the third quarter and the final quarter. I think that is where both the teams would like to go all out. We also have the UP West Bengal match coming up, the third quarterfinals in the men's hockey. We have the fourth one coming up, which will be the final quarterfinal match between Maharashtra and Jharkhand. We already know that Karnataka is through to the semi-finals. How do you see the remaining 2 quarterfinals playing out? I think Maharashtra and Jharkhand would be more evenly matched because going by textbook, because both teams have strong teams. As far as UP and West Bengal is concerned, history would side with UP. UP has traditionally always produced good results. Bengal really has not been known for hockey for the last 30-40 years. It's a welcome change to see West Bengal in contention this time. How do you see the national games in terms of selection to the national team? We know that national championships are actually responsible for placing players into the national team. How do you see the significance of the national games when it comes to selection for the national team? Huge. I think, one way through this program that we could suggest is that national games should be held every year, because that's what China does. They take the national game very seriously. And I think just like the Khelo India Youth Games, we should be taking national games very seriously, because this is one forum where you see 7,000, 8,000 athletes come together. You get to watch the best of them and make it, shortlist the national team. So according to the international standards, Manish, we now have 4 quarters of 15 minutes each, and each quarter is quite intensive. So stamina is a crucial element. Earlier there used to be 2 halves, like in football, 35 minutes each with a lengthy interim period. We are now following
the standards set by hockey leagues and the International Hockey Federation as well. How do you see that improving hockey in India? Indian hockey has gone a lot of transformation in the last 1 decade. I think the gap between the international standard and our standards have really narrowed down to a position where probably we're at par with the world standard today. And the good thing about the national games being held in the 4 quarters is that all the states are getting used to playing in this format, which will probably also filter down at the junior, most of the sub-junior level. So in that sense, I think having the national games and where hockey has the 4 format, I think it's a good sign for the sport. And at large, I think hockey has really done well. Hockey is, I don't think we can complain about the way hockey was 10 years before. I think there's, what we look forward to is good standard of fitness, stamina. It's almost matching up to the Indian cricket team today. So the venue for the National Games hockey is at Rajkot, the Major Dhyan Chand Stadium, the AstroTurf field. And remember that we had an interview with the competition manager, Mr. Khelar, and the challenge before the Gujarat administrators was to organize the national games in 100 days. So your take on the AstroTurf at Rajkot and the organizing committee for the national games? I think the turf has really played very well, and kudos to the organizers for pulling off the national games with aplomb and with such elan. It's a great thing that that these days when you look at events being held in India, they have a certain quality and standard, which is very good because it also it also gives an insight to the common people that this is how sports events are being held in India. They also mean a lot of respect to the athlete and the coaches and the technical officials. So I just hope that we continue to strengthen this aspect and organize such high quality national games as we're seeing it in Gujarat. So as we speak for hockey right now, Malkham, which is an indigenous sport, is also a discipline at the national games. Do describe for the benefit of our viewers what this indigenous sport is and how important it is to promote indigenous sports and make it a sporting discipline for the national games. I think one of the good things that I've seen in Indian sports is the importance being given to indigenous sports, which will make sporting activity and pastime more accessible to more number of people. When you introduce sports like Malkham and Kho-Kho and Kabaddi, I think there are a lot of people who smile because what you're saying is you're speaking their language, because a lot of people have been playing this sports for hundreds of years without being recognized. So in a way you're recognizing their contribution to sport. And Malkham is one sport which is very demanding. It demands a lot of gymnastic skills, fitness and stamina of a wrestler, and the reflexes of someone who does yoga. So it's, just for the benefit of our viewers who are tuned in right now on the national games front, it's a performance on a rope or a pole, yes, which is gymnastic in yes. nature. So what you have judges who score you on your ability to be flexible on this medium. Right, and also you need the strength and stamina of a wrestler. So it combines 3 sports. You need to be like a gymnast because gymnasts need a lot of strength. You need to be strong like a wrestler, and yet you need that flexibility of someone performing a yogasana. So just coming back to hockey right now, we just spoke about Malkham, the indigenous sport. Remember, the first quarter-final match in the men's hockey is already over. It started at 7 in the morning. And Karnataka won against Gujarat by 11-2, which means that Karnataka is through to the semi-final. The second quarter-final is being played right now. We are in that interim period right now, the break after 2 quarters of play. And Haryana has taken a slim lead of 1-0 against Tamil Nadu. We were discussing about what the attack and defense formation is likely to be for Haryana against Tamil Nadu and how they can actually make a comeback in the third or the fourth quarter of 15 minutes each. So stamina is key, your ability to focus and of course change positions during the remaining 2 quarters, and that's very important when it comes to scoring goals. You've seen how well Karnataka did. So it's time now to go back to Rajkot and see how the third quarter plays out for Haryana if they are to win against Tamil Nadu in this second quarter-final match in men's hockey. नेशनल गेम्स के प्रस्तुतकर्ता अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डर अब
अब है किस बहुत अहम मुकाबला है। जो टीम जीतेगी सीधे सेमीफाइनल में, और बहुत स्पर्धा इस लिहाज से भी है। पिछले नेशनल की बात करें, दोनों फाइनलिस्ट टीमें हैं दिनेश, और तमिलनाडु के पास मौका है पिछली हार की बदला को लेने का। जी विकास, फिलहाल तो हम दर्शकों को बता दें कि दूसरे हाफ में साइड चेंज हो गई है और हमारे दाहिनी ओर हरियाणा की टीम आ गई है और बाईं ओर अब पीली जर्सी में आपके स्क्रीन पर है तमिलनाडु की टीम। आप सही कह रहे हैं विकास कि जिस तरह से हमें एक अच्छी हॉकी देखने को मिल रही है यहाँ पर, वो काबिल तारीफ है और नई रणनीति के साथ उतरी होगी तमिलनाडु की टीम, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ पर एक आरंभिक आक्रमण तमिलनाडु की ओर से 23 मीटर की लाइन के पास आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए 30 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु के फॉरवर्ड्स एक समानांतर पास दिया था 23 लाइन के, और एक मूव बनाने की कोशिश में विकास देखिए शूटिंग सर्किल के अंदर आने की कोशिश, गोल पोस्ट के दाहिने ओर खेल होता हुआ हरियाणा के, और एक लंबी हिट का भी प्रयास किया गया था लेकिन डिफेंडर्स ने उनके एंगल को ब्लॉक किया। लेकिन गेंद का पोजीशन अभी भी तमिलनाडु के 10 नंबर की जर्सी में अक्षय के पास, फ्री हिट तमिलनाडु को, बॉल पोजीशन तमिलनाडु के पास। और आरंभिक क्षणों में जो तीसरा क्वार्टर है विकास, ये एक अच्छा आक्रमण कहा जा सकता था लेकिन गेंद को डी के अंदर नहीं डाल सके थे। यकीनन तौर पे तमिलनाडु की टीम मुकाबले में पहले हाफ के बाद अलग स्ट्रैटेजी के साथ आई है, जानते इस मुकाबले की अहमियत को। और देखिए शूटिंग सर्कल में शुरू से ही समय इस क्वार्टर में दबाव बनाने की रणनीति से और एक आक्रामक एग्रेसिव हॉकी, हाई प्रेसिंग मिडफील्ड में और बढ़िया बॉल कंट्रोल, अच्छी कॉम्बिनेशन, बेहतर पासेस, ये दर्शाता है कि ये टीम ने बड़ी काम की है। पिछले क्वार्टर के बात करें जो हाफ ब्रेक हुआ था हाफ टाइम का, उसमें वापस से कोच ने बात की होगी, कप्तान भूमिका अदा कर रहे हैं श्याम कुमार हरितोष। और फिलहाल एक बार फिर से 4 नंबर के जैसे खिलाड़ी अब हरियाणा के लिए सुमित, जूनियर विश्व कप खेल चुके सुमित, बॉल को पास की, वापस से अब अटैक बना रही हरियाणा की टीम। बहुत अच्छी रणनीति, बैक पास करके गेम की गति को थोड़ा कंट्रोल करना, ये भी खेल की हिस्सा होता है रणनीतियों का कि किस तरीके से आप पेस को मेंटेन कर रहे हैं। और हॉकी जैसे खेल में आपके बॉल पोजीशन ही आपकी सफलता की है। फिलहाल तमिलनाडु बढ़िया बॉल ट्रैप की है, अच्छी रणनीति, थ्रू पास शूटिंग सर्कल के अंदर एक रिवर्स हिट से, लेकिन गोलकीपर विक्रांत की तारीफ करनी होगी, बेहतर बचाव, अभी खतरा टला नहीं है। दिनेश, बहुत अच्छी रणनीति से टीम वापसी कर रही है तमिलनाडु इस हाफ में। जी विकास, हमने देखा कि लगातार आक्रमण इस क्वार्टर में, जो कि दूसरे हाफ का पहला क्वार्टर है और कुल मिलाकर खेल का तीसरा क्वार्टर है, लगातार दबाव बनाने की कोशिश। और जैसा कि हम आपस में बात करते रहे हैं, आपने और मिलिंद जी ने भी बात की थी कि जो इस तरह के आक्रमण होते हैं वे कहीं ना कहीं सफलता जरूर दिलाते हैं। फिलहाल स्कूप के जरिए पास दिया था हरियाणा की टीम ने अपने ही साथी को, सेंटर लाइन को क्रॉस करती हुई गेंद, एक बार फिर से हरियाणा का आक्रमण, 3 नंबर की जर्सी में दीपक, शूटिंग सर्किल के अंदर आने की कोशिश लेकिन गेंद पर अभी भी नियंत्रण हरियाणा का। शूटिंग सर्किल के अंदर गेंद आ चुकी है और ये खतरा हो सकता है विकास तमिलनाडु के लिए, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु के खिलाड़ी ने रोका था हरियाणा के आक्रामक खिलाड़ियों को, शेख जावेद ने एक पेनल्टी कॉर्नर दिया है हरियाणा के लिए। फिलहाल इस समय पेनल्टी कॉर्नर मिला है हरियाणा को, लेकिन क्या डिफेंस किया वहां पे 2 नंबर की जर्सी खिलाड़ी सतीश जेम्स, एक सुनिश्चित गोल को सेव किया सतीश ने। और हरियाणा के खिलाफ तमिलनाडु टीम में भी अहम सितारे कार्ति सेल्वम, इंडिया के लिए अंडर 21 खेल चुके, एशिया कप 2022 इसी वर्ष, और भारत के लिए 7 मुकाबले, 3 गोल उनके नाम। नजर डालते हैं फिलहाल पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए हरियाणा के खिलाफ इस समय तमिलनाडु अपनी डिफेंस को किस तरीके से इस पेनल्टी कॉर्नर में, पहले ही जब तक बॉल को इंजेक्ट न किया जाए रूल होता है। और शेख जावेद इसी बात को डिफेंडर से, गोलकीपर के अलावा जो 4 डिफेंडर हैं उनको ये निर्देश देते हुए कि जब तक बॉल वहां से बात करें पुश न किया जाए तब तक आप गोल पोस्ट छोड़कर नहीं निकल सकते जी, FIH के नियमों के मुताबिक। और देखिए इस समय तीसरे क्वार्टर का पहला पेनल्टी कॉर्नर, हरियाणा को दूसरा पीसी मिला पूरे मुकाबले में। और देखना होगा बॉल को इंजेक्ट करने के लिए। इस समय पुश किया, स्टॉपर ने स्टॉप की, ड्रैग किया और बहुत ही खूबसूरती से इस समय
हरियाणा की टीम का ये आक्रमण और गोल कर दिया इस समय हरियाणा ने। आखिरकार तीसरे क्वार्टर में दिनेश बेहतरीन शुरुआत की है, 2-0 की बढ़त। नजर डालते हैं रिप्ले पे, जिस तरीके से क्या बढ़िया खूबसूरती से ट्रैक किया। 150-160 की रफ्तार में आती है बॉल। देखते हैं दूसरे एंगल से कितना बढ़िया तरीके से आप तक ये प्रसारण पहुंचाया जा रहा है डीडी स्पोर्ट्स की टीम के द्वारा। क्या बेहतर गोल दिनेश। बिल्कुल गोली की गति से गोलकीपर की दाहिनी ओर से गेंद गोल पोस्ट में समा गई। विकास, एक बहुत अच्छा गोल था हरियाणा के लिए, जो कि हरियाणा के लिए दूसरे नंबर का गोल था। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हरियाणा अपनी बढ़त बनाए रखना चाहती है, और जो गोल अंतर है, अंतर की बात क्या की जाए, जबकि तमिलनाडु की ओर से अभी तक एक भी गोल नहीं हुआ है। 2-0 का परिणाम हरियाणा के पक्ष में। फिलहाल विकास, देखते हैं कि किस तरह से प्रति आक्रमण की कोशिश की थी यहाँ पर तमिलनाडु ने, लेकिन पैनापन नहीं आक्रमण में। जितने पैने आक्रमण, जितने तीखे आक्रमण फॉरवर्ड्स करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि आपने बताया है दर्शकों को, हम भी बताते रहे हैं कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ियों से सजी टीम है, लेकिन नए खिलाड़ियों को भी सीखना है कि अनुभव किस तरह से प्राप्त किया जाए। इस बीच 29 नंबर की जर्सी में मीरा सोरेन ने गेंद पर कब्जा करने की कोशिश की थी, सफलता नहीं मिली। सेंटर लाइन के आगे एक बार फिर ये नया आक्रमण हो सकता है हरियाणा के लिए। दिनेश, पिछला गोल मनदीप मोर ने पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया 35वें मिनट में, और देखिए कितना बढ़िया गैप का यूज करके एक बार फिर से शूटिंग सर्कल में बाधा पहुंचाने की कोशिश कार्थी सेल्वम के द्वारा, और एक और पेनल्टी जहां से तीसरा पेनल्टी कॉर्नर। 3 पेनल्टी कॉर्नर अभी तक अर्जित की हरियाणा ने। बात करें पिछले पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया था गोल के रूप में, यानी 2 में से 1 कन्वर्ट कर चुकी है टीम पेनल्टी को। ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर गोलकीपर के लिए अग्नि परीक्षा। बात करें इस समय गोलकीपर अरुण प्रसाद। तमिलनाडु के तीसरे क्वार्टर का खेल, हरियाणा 2-0 की बढ़त पे। बहुत अहम मुकाबला। देखिए शेख जावेद अंतर्राष्ट्रीय अंपायर मुंबई से, और फिलहाल इंजेक्ट करने के लिए इस समय हरियाणा खिलाड़ी स्टॉप किया, ट्रैक किए, खतरा टल गया। दिनेश, इस समय अभी भी 2-0 की बढ़त। बिल्कुल, और जिस तरह से मनदीप मोर ने ट्रैक करके बेहतरीन फायदा दिलाया एक बार अपनी टीम को। मनदीप की हम बात करें तो बता दें कि डिफेंडर हैं, ट्रैक फिल्कर हैं, और 2019 में सुल्तान ऑफ जौहर कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कप्तान थे। हरियाणा में नरवाड़ा के रहने वाले हैं। तो विकास, इस तरह से खेल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ तीसरे क्वार्टर का, जबकि इस वक्त स्थिति ये है कि हरियाणा 2 तमिलनाडु 0। तो हमने इस क्वार्टर की शुरुआत में ही ये बात की थी, यानी दूसरे हाफ का खेल जब शुरू हुआ था, कि किस तरह से खेलना चाहेगी तमिलनाडु, लेकिन उनकी रणनीति ऐसा वर्तमान में तो लगता है सफल नहीं हुई। पर फिलहाल तो तमिलनाडु के आक्रमण की कोशिश, हरियाणा की गोल पोस्ट के बाईं ओर से शूटिंग सर्कल में गेंद, और एक अच्छी हिट लगाई थी गोल पोस्ट की ओर, और ऐसा लगता है कि कुछ फायदा यहां हो सकता था, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर भी अवार्ड नहीं किया गया तमिलनाडु को, और बहुत सफाई के साथ डिफेंडर्स ने बचाया था। तारीफ करनी होगी। फिलहाल इस समय देखना होगा, जो बात करें गोलकीपर विक्रांत ने सेव किया, बहुत अहम, क्योंकि एक ऑलरेडी बात करें अटैकर दूसरे टीम के, जो पिछला जो गोल सेव किया था, नजर डालते हैं उस पे। क्या बेहतरीन विक्रांत का सेव, मुझे पीआर सृजेश की याद दिलाते हुए। अहम, जिस तरीके से डेडिकेशन दिखाया, अपनी दाहिनी तरफ पूरे रीच का इस्तेमाल किए, रिबाउंड पे बॉल हल्की सी आई, वापस फिर सेव किया। लाजवाब विक्रांत। खुश होंगे कोच गुरबाज सिंह इस तरीके के प्रदर्शन से, क्योंकि यहाँ ऐसे क्रुशियल मोमेंट में, अहम क्षणों में अगर गोल करती तमिलनाडु, वापस दबाव जाता हरियाणा पे, और बहुत मुश्किल होता मुकाबले में, क्योंकि वापस देखिए जिस तरीके से बॉल इस बार बेहतर कॉम्बिनेशन से टीम अर्जित कर रही है, फ्लैंक चेंज करके। कितना बढ़िया रणनीति तमिलनाडु की। हालांकि बॉल पोजीशन अभी भी देखना होगा तमिलनाडु के पास। 22 नंबर की जर्सी खिलाड़ी इस समय विनोद रायर बॉल लेकर के पास किया इस समय साथी खिलाड़ी केविन किशोर को, और वापस से टीम अपने अटैक को बिल्ड करती हुई। दिनेश जी, एक बार फिर से प्रति आक्रमण तमिलनाडु की टीम की ओर से डी के
बाईं ओर से, लेकिन उतना ही सुंदर खेल हरियाणा की ओर से। तो विकास, जिस तरह से दूसरा गोल हुआ है उसने एक बार फिर से हरियाणा के पक्ष में माहौल तो बनाया ही है, और विशेषकर जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों को उससे उत्साह बनता है, बढ़ता है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक बार फिर बॉल को शूटिंग सर्कल में डालने में सफल हो गई थी हरियाणा की टीम, लेकिन वहां पर एक फ्री हिट मिला है, हिट इन हुआ है मैं समझता हूं विकास। तो इस तरह से 23 मीटर की लाइन और डी के पास से एक बार खेल फिर शुरू होता हुआ। हरियाणा के पास गेंद अपने ही हाफ में, जबकि तमिलनाडु के 3 फॉरवर्ड्स उन्हें घेरे हुए। 23 मीटर की लाइन के पास संघर्ष जारी है गेंद का। हरियाणा के खिलाड़ी बेहतर स्किल का प्रदर्शन करते हुए बढ़िया बचाव किया था, लेकिन अभी भी पोजीशन तमिलनाडु के पास। 24 नंबर की जर्सी में साहिल आगे बढ़ने की कोशिश है, बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने गोल खेल होता हुआ, और ये संभवतः गोल हो सकता था, लेकिन ये गोल नहीं है और तमिलनाडु पहली सफलता से वंचित। यकीनन तौर पे देखिए, दोबारा देखेंगे इस समय रिप्ले में, कितनी बढ़िया कोशिश थी 5 नंबर के जैसे खिलाड़ी कार्तिक सेल्वम, और जिस खूबसूरती से ये बचाव एक बार फिर से विक्रांत की हरियाणा को मानो लाइफ लाइन दे दी हो। क्या खूबसूरती से पिछले 2 बचाव, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है दोनों टीमों के। इस समय गोल की मार्जिन की बात करें 2-0 की सिर्फ बढ़त है, और पिछले 2 जो हमले किए तमिलनाडु ने दर्शा दिया कि हाफ टाइम के बाद जो स्ट्रैटेजी बनाई है इनके कोच ने, वो इसको एग्जीक्यूट कर रही है मैदान पे, उसे लागू करते हुए तमाम इनके मिडफील्डर्स। बेहतर बॉल सप्लाई फॉरवर्ड, क्या शानदार गति, बॉल कंट्रोल, नियंत्रण कमाल की, और यही वजह है मुकाबले के तीसरे क्वार्टर में तमिलनाडु ज्यादा प्रभावित कर रही है। पिछले 3 लगातार हमले किए हैं। गोलकीपर की तारीफ विक्रांत, जाने माने गोलकीपर पीआर सुरेश की याद दिलाते हुए, और दिनेश वाकई में हरियाणा को इस मुकाबले में अगर थोड़ी मुश्किलों से अगर किसी ने बचाया है, वो गोलकीपर, जो मुकाबले को सबसे ज्यादा क्लोज कोई देखता है वो गोलकीपर विक्रांत। क्या ऐसा हो सकता है कि विक्रांत जो ये नाम है विकास, ये आगे आने वाले समय में हरियाणा की नाम को उसी तरह से रोशन करे जैसे कि सविता पूनिया फिलहाल विमेंस हॉकी के लिए कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं, युवा खिलाड़ी हैं और बेहतरीन बचाव उन्होंने अपनी टीम के लिए किए हैं। और हम बात करते रहे हैं कि गोलकीपर मैच जिता भी सकता है और गोलकीपर मैच हरा भी सकता है, भले ही उसकी भूमिका शूटिंग सर्किल तक सीमित रहती हो। यकीनन तौर पे सविता पूनिया की आपने जिक्र की, FIH 2023 बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर विमेंस में दूसरी बार उन्हें चुना गया है, और दुनिया में विमेंस वर्ग में ये दूसरा ही सिर्फ ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड FIH ने दिया है। और साथ ही साथ पीआर सुरेश को मिला है इस वर्ष का बेस्ट गोलकीपर मेंस का। ये भारतीय हॉकी के लिए वापस से वो स्वर्णिम दिन आने की एक संकेत है, और बहुत बढ़िया मेजबानी। 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें, ये दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, क्वार्टर नंबर 3 का बामुश्किल 3 मिनट के आसपास का खेल, और 2-0 की बढ़त। इस समय हरियाणा एक लंबा हिट लिया। इस समय तमिलनाडु ने इस क्वार्टर में बहुत प्रभावित किया है। तारीफ डिफेंस की जो वापस है, लेकिन आक्रमण पे तमिलनाडु शूटिंग सर्कल के अंदर पहुंचने की कोशिश थी, अच्छा डिफेंडिंग वहां पे 16 नंबर की जैसे खिलाड़ी में पंकज, और साथ ही खिलाड़ी की बहुत बढ़िया मुकाबला वाकई में क्वार्टर फाइनल का दिनेश। एक बेहतरीन हॉकी और बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता हुआ विकास, इसमें कोई शक नहीं। और इस क्वार्टर के अंतिम मिनटों में तमिलनाडु की ये कोशिश जरूर रहेगी कि वे 2-0 की बढ़त को कम से कम करने की कोशिश करें, जबकि लगभग 2.5 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। विकास, आपने देखा कि अब जबकि पूरी तरह से तमिलनाडु हावी हो चुकी है गेंद के ऊपर, एक बार फिर से प्रति आक्रमण, लेकिन एक बात है, एक बार फिर से हरियाणा की टीम आक्रमण पर। 19 नंबर की जर्सी में गुरमुख सिंह के पास गेंद थी, लेकिन सफाई के साथ तमिलनाडु के डिफेंडर्स ने उस पर कब्जा किया, और एक तमिलनाडु की ओर से बनता हुआ एक और मूव आगे की ओर बढ़ते हुए, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन स्किल का प्रदर्शन करते हुए उसे रोका। और मैं समझता हूं विकास की ये मैच की अंतिम क्षणों में, अंतिम मिनट में एक हरियाणा का और प्रयास हो सकता है अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही, गेंद को शूटिंग सर्कल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले ही बढ़ते हुए, समानांतर साइड लाइन के ऊपर खेल होता हुआ गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने, लेकिन कार्तिक सेल्वम ने
सतीश जेम्स के साथ मिलकर बहुत होशियारी के साथ गेंद को क्लियर किया, लेकिन अभी हिट एंड मिला है हरियाणा को। हरियाणा की टीम ने क्या शानदार आक्रमण बनाया था शूटिंग सर्कल के अंदर। बहुत अहम रणनीति, ये क्वार्टर बहुत अहम रहेगा, तीसरा क्वार्टर, क्योंकि इसके बाद आखिरी क्वार्टर में दोनों टीमें जो कहीं ना कहीं डू और डाई कंडीशन में होंगी। वापस से देखिए गेम को बिल्ड कर रही है इस समय अटैक को। ज़्यादा डेंजरस बॉल, ये जो स्कूप लिया था, इसलिए इस समय इस बॉल पोजीशन एक बार फिर से तमिलनाडु की टीम क्या बेहतर स्ट्रैटेजी से खेल रही है तीसरे क्वार्टर में। बढ़िया हाई प्रेसिंग, दोनों फ्लैंक का अच्छा यूज, और मिडफील्ड में मॉडर्न हॉकी में सबसे अहम होता है मिडफील्ड का जो बैटल है, उसको आप जितना आपके मिडफील्डर्स बॉल को बेहतर सप्लाई करेंगे फॉरवर्ड तक, अटैक बनेगा, वहां से ही पेनल्टी कॉर्नर्स और गोल निकाले जा सकते हैं। दूसरा क्वार्टर फाइनल्स मुकाबला तो हरियाणा और तमिलनाडु आमने सामने। पिछले नेशनल गेम्स में भी दोनों टीमें, लेकिन भरत शिकारा देखिए थ्रू पास खूबसूरती से, लेकिन बॉल पोजीशन गंवाते हुए अभी भी हरियाणा 2-0 की बढ़त पे, और एक लंबा स्कूप लेते हुए हरियाणा के खिलाड़ी शूटिंग सर्कल में बॉल को ट्रैप नहीं कर सके। बहुत ही अहम रहेगा। देखिए ये मुकाबले का आखिरी क्वार्टर, उससे पूर्व के बचे हुए कुछ सेकंड्स में दोनों टीमें अपना 100% देने की कोशिश में। डीडी स्पोर्ट्स पे 36वें राष्ट्रीय खेलों का सीधा प्रसारण, और तीसरे क्वार्टर की हुटर की शुरुआत इस बात को संकेत करेगी, और 2-0 की बढ़त है। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ अजनबियों को पल में अपना बनाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। डर अब है किस बात का, जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। मिलिंद, मैं चाहूंगा कि इस बीच जो स्टैंडिंग पोजीशन है विभिन्न टीमों की जो थी अभी तक क्वार्टर फाइनल्स मैच के पहले, ग्रुप बी में कर्नाटक ने 3 मैच खेले, तीनों जीते, 9 अंक थे उनके। उत्तर प्रदेश ने 3 खेले, 2 जीते, 6 अंक थे उनके। तमिलनाडु ने 3 मैच खेले थे, 1 जीता, 2 हारे और 3 अंक थे। इस बीच खेल समाप्त होने, क्षमा करें, खेल शुरू होने वाला है जबकि तीसरे हाफ का। मिलिंद, क्या समझते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि तमिलनाडु की टीम में वो क्षमता दिखती है कि खेल आरंभ होने के पहले या दूसरे मिनट में भी वो गोल कर सकती है? Yes, absolutely. Not much to choose between the two sides, although Haryana have taken that lead of 2-0, which could be crucial towards the end. It is Dinesh Kumar Chandrasekhar for Tamil Nadu. What Tamil Nadu will have to do, Dinesh, is they will have to mount the attack from the very beginning. They cannot afford to be defensive. Remember, this is not a pool game. This is now a knockout game. It is the knockout punch which Tamil Nadu will have to give. They'll have to come back very strongly. 2-0 is not a big score. Get 1 goal, as I said earlier on, in the first or second minutes, and then I'll tell you, Haryana, the pressure will start mounting on them. बिल्कुल, हरियाणा कोशिश करेगी कि दबाव बढ़ाया जाए, और तमिलनाडु की कोशिश रहेगी कि अपनी ओर से कुछ गोल किए जाएं। जिस तरह से हरियाणा ने अभी तक खेला है, तो कहा जा सकता है कि बॉल पोजीशन उनके पास जरूर रहा है, लेकिन खेल तमिलनाडु का भी बहुत अच्छा रहा है। तो इस तरह से मिलिंद जी, यदि हम पूल ए की बात करें पुरुष हॉकी में 36वें राष्ट्रीय खेलों में, तो महाराष्ट्र की टीम ने अपने पूल में अपने ग्रुप में तीनों मैच जीतकर 9 अंक अर्जित किए हैं, जबकि हरियाणा की टीम 6 अंकों के साथ थी।
पश्चिम बंगाल 3 मैच खेला था, 1 जीता 2 हारा और 3 अंक है उनके पास, जबकि गुजरात जो कि आज पहले क्वार्टर फाइनल में अलग हो चुकी है, उसके पास कोई भी अंक नहीं था। और यहाँ पर इस आगे खेल होता हुआ एक और मूव बनाने की कोशिश की गई थी हरियाणा की ओर से, लेकिन सफलता नहीं मिली। साइड लाइन के समानांतर शूटिंग सर्किल में गेंद को हिट किया था, लेकिन शानदार बचाव वहां पर। Yes, the goalkeeper for Haryana, Vikrant, and that brings me back to a brilliant name, INS Vikrant, the mothership, the aircraft carrier, and the other INS Vikrant was just recommissioned again, indigenously built just about a month back. So Vikrant, some big names out here as far as India is concerned, and out here for Haryana in the goal, Vikrant has done an admirable job. As it is Haryana once again, little bit of defensive ploy there. Tamil Nadu knowing very clearly that they've just got about 13 odd minutes to go from here on. They need to bridge that gap as quickly as possible. Haryana there with Kohinoor Preet Singh. He's playing like a Kohinoor diamond. That's Kohinoor Preet Singh, and the ball taken away. But Haryana with Tamil Nadu mounting the attack at this point of time. That's what they will have to continue to do. Dinesh Kumar Chandrasekhar all by himself. He'll have to look at a partner out there if they need to get that first goal. Just keeping the ball to yourself is not going to help. Hockey, football, all the ball games are all about passing the ball, giving it to your partner, and then making sure that the goal is scored. जी मिलिंद, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए विशेषज्ञ ड्रिबलिंग को ज़्यादा पसंद नहीं करते जो हॉकी को जानते हैं। उनका कहना होता है कि जितनी जल्दी हो सके दूसरे को पास दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। You know, that's the reason why we go back to the 1930s when Major Dhyan Chand, who's named this particular ground, this particular arena is named after the skill of dribbling. All the years down the line to Dhanraj Pillai that we have known to be, and some of the other forwards, the skill was on grass, not here. Long passes, through passes, and the short passes are missing in today's game. But Tamil Nadu, once again, as I keep on saying, into the 4th minute of play in the last quarter, it's now or never as far as Tamil Nadu is concerned. But if you look at the first game between Gujarat and the first side that beat them, Karnataka, this is a very, very different game. जी, आपने सही कहा। दर्शक भी इस बात का अनुभव कर रहे होंगे कि जो पहला क्वार्टर फाइनल था और जो ये दूसरा क्वार्टर फाइनल हो रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ हम एक बेहतरीन हॉकी देखने को मिल रही है, एक हॉकी जो संघर्षपूर्ण कही जा सकती है। मिलिंद, आपने विक्रांत के नाम के बारे में बताया, तो INS विक्रांत समुद्र में हमारे देश की रक्षा करता है और यहाँ हरियाणा के गोलकीपर इस मैदान पर हरियाणा के गोल को सुरक्षित बनाए हुए हैं। You know, for Tamil Nadu, it hasn't made a difference even if Haryana has got a few international names in their side. Abhishek, of course, is the big name as far as Haryana is concerned. He's scored 5 goals in this tournament so far. All of them have been 5 goals. Tamil Nadu there, right ploy, absolutely right ploy for them coming through a Sahil Ramehar, and that ploy is what now they have to capitalize on. They got a penalty corner in their favor, capitalize, get that goal. The moment you narrow the gap from 2 to 2-1, then perhaps Haryana will have to start thinking. 2-0 is very different from 2-1. जी मिलिंद, और तमिलनाडु की ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये पेनल्टी कॉर्नर जो उन्हें मिला है इस क्वार्टर में उसका फ़ायदा भी उठाएं, और यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ दूसरा गोल करना भी उनके लिए बहुत दूर नहीं रह जाएगा। वो कहते हैं ना, सोने की प्लेट के ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो सोने की प्लेट को ठुकराओ मत, उसको कैपिटलाइज करो। जी मिलिंद, देखिए ये पेनल्टी कॉर्नर विसिल के साथ इंजेक्ट करने के लिए तैयार, स्टॉपर तैयार, रोका गया और ड्रैग करने की कोशिश, लेकिन हरियाणा के डिफेंडर्स ने 15 नंबर की जर्सी में बहुत सफाई के साथ उसको, मनदीप मोर ने, जिन्होंने अपनी टीम के लिए पेनल्टी कॉर्नर से दूसरा गोल किया था। यहाँ हरियाणा का प्रति आक्रमण, शूटिंग सर्कल में गेंद, और इस तरह से ये तीसरा गोल हरियाणा के लिए। देखिए मिलिंद, किस तरह से प्रति आक्रमण किया हरियाणा ने। Wonderful, they wasted a penalty corner, Tamil Nadu, and suddenly the Haryana forwards have mounted the attack from one end of the field to the other end of the field. Haryana made sure that they capitalized on the weak defense first of Tamil Nadu. All the Tamil Nadu players were all on. We keep on talking of the combination of 2 or 3 players, and that combination has got them the third goal. Now different story, not 2-1, 3-0, and the pendulum has swung back in Haryana's favor. जी, स्थितियां हर बल बदलती हुई इस मैच में।
16 नंबर की जर्सी में हरियाणा के मनदीप मोर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए युवा खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सितारों से सजी हरियाणा की इस टीम में हर पक्ष में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 4 नंबर की जर्सी में सुमित हावी से लगते हैं गेंद के ऊपर जब भी उनके पास आती है। तमिलनाडु के प्लेयर्स को उनसे गेंद छीनने में बहुत मुश्किल होती है और ऐसा लगता है कि एक और पेनल्टी कॉर्नर हरियाणा को मिला है यहाँ पर इस क्वार्टर में। But if you go back to that earlier penalty corner which Tamil Nadu had got, they took the penalty corner. It was the good defense of Haryana which stopped it, and then after that they did not even wait for 1 second. The attack started immediately, by which time the Tamil Nadu defense was sleeping. जी, पेनल्टी कॉर्नर के दौरान जो शेष खिलाड़ी बाहर खड़े रहते हैं उन्होंने फायदा उठाया और यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर लेने की तैयारी, इंजेक्ट करने की तैयारी, पूरी टीम तैयार, गोलकीपर तैयार तमिलनाडु के। और ये शानदार ड्रैग किया था लेकिन दिशा नहीं थी ड्रैग में और ये खतरा तो फिलहाल तमिलनाडु के गोल पोस्ट से टला, लेकिन अभी भी गेंद डी के अंदर मिलिंद लगातार हरियाणा आक्रमण करते हुए तमिलनाडु के ऊपर। I have a strange feeling that Tamil Nadu, now that third goal has perhaps got them a little dejected, and understandably so. Once again a penalty corner, they're coming the way of Haryana. Good thinking that they will have to do out there, and if they get the fourth goal, then Tamil Nadu perhaps will say, we don't seem to be there out here. But don't give up hope. A lot of things can happen in 9 minutes and 25 seconds remaining out here in the third quarter. I keep on emphasizing, this is not a pool game. This is a knockout punch game. Haryana doing well, leading by 3 goals. Is this the one that's going to seal the fate as far as the game is concerned? But Tamil Nadu, very, very good out there. Yes, nearly there. And what do we have at the end of all of it? Tamil Nadu still leading. The momentum has been built up by them, and I'm sure, as I keep on saying, in 9 odd minutes, they have got something which is not in their favor. जी, रिप्ले में देखते हैं, सफाई के साथ हालांकि स्टॉपर रोक नहीं पाए थे, लेकिन जो मौका उनके हाथ से निकलने वाला था उस मौके को भी उन्होंने भुना लिया था। यहाँ पर पेनल्टी स्ट्रोक लेते हुए हरियाणा की टीम। That's what I was talking about. That's what they didn't like. Oh, brilliant! Absolutely brilliant from the goalkeeper Arun Prasad Murugesan. Absolutely brilliant. मिलिंद पेनल्टी स्ट्रोक बचाना, और वो भी हरियाणा की टीम का निश्चित रूप से ये प्रदर्शित करता है। देखिए रिप्ले में देखिए किस तरह से उन्होंने पूर्वानुमान लगाया था कि गोलकीपर के दाहिने ओर पुश करने की कोशिश करेंगे, गोल के जाल में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम हरियाणा ने एक सुनहरा मौका और गंवा दिया, जबकि वो 4-0 की बढ़त पा सकता था। This should give them the confidence. This should give Tamil Nadu the confidence. The goalkeeper has done all the hard work at this point of time. 3-0 only and not 4-0. It could have been a different story altogether. For Haryana, it is number 18, Surinder, as he gives it back again out here to Mandeep Moore onto the sideline. That flank to be used well by Tamil Nadu. The attack has started. This is what I want from Tamil Nadu. That goal saved. The attack is there. Put it on Haryana. You don't lose anything at this point of time, because remember, only 8 minutes are remaining, not only in the fourth quarter but also in the entire match. जी मिलिंद, यदि हम पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील नहीं कर सक रहे हैं तो कम से कम दूसरी टीम को भी पेनल्टी कॉर्नर से गोल अपनी टीम पर ना करने दें। ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है। So yes, Tamil Nadu once again on the attack. They're doing well, passing. That should be the order of the day. Take as much as ball possession. That's what they're trying to do on this particular occasion. Gurmukh Singh there with the ball, but there it is. A lot of things are happening out here. But what I liked about the play out here between the two sides, very clean play between Tamil Nadu and Haryana. Two strong sides in this competition, and yet all the same, that's a wild one out there. That's a wild one. And has it gone? Ask the question there from the Tamil Nadu players. And the score at this point of time, 3-0 in favor of Haryana. 7 minutes 52 odd seconds remaining. So under 8 minutes of play, 8 minutes, everything can happen. जी मिलिंद जी, जो भी रणनीति निर्धारित की गई होगी तमिलनाडु के कोच के द्वारा, मुझे लगता है कि वो सफल होती हुई नहीं, जबकि शानदार तरीके से कब्जा किया था सतीश जेम्स ने गेंद पर, और तमिलनाडु की टीम ऐसा लगता है कि अब
3-0 की जो बढ़त है उसके दबाव में आती हुई। 4-0 तो स्कोर नहीं हो सका, पेनल्टी स्ट्रोक चूक गई है हरियाणा की टीम। यहाँ पर एक बार फिर से हरियाणा की 3 नंबर की जर्सी में दीपक के पास गेंद थी। मिलिंद, हम क्या समझें कि इस मैच का नतीजा क्या हो सकता है? क्या अभी भी रास्ते खुले हैं तमिलनाडु के लिए कि वो वापसी कर सकती है, या दूसरा रास्ता खुला हुआ है कि हरियाणा का स्कोर जीत का 3-0 के अलावा कुछ और हो सकता है? Oh, the door is never closed till the final hooter goes off out there. I still remember going off from the hockey match to swimming yesterday in the 800 meters freestyle. Advait Page came from nowhere. He was nowhere and came back from nowhere to get a silver medal. So never give up hope in any sport. Hockey is not an exception, remember. 6 minutes or 6 minutes and 41 seconds is a long time. But the most important thing is you must need possession. This is exactly what I'm talking about. Take possession of the ball. Here, Dinesh Kumar Chandrasekhar, he's been very good in the forward line. He needs to make sure that he gets support from his team members. And if you get the support from the team members, if it's a cohesive unit, that goal can always come there. And you get 1 or 2 goals, Haryana will get back on the defensive. The moment you get back on the defensive, so much are the bigger chances for Tamil Nadu. जी, 6 मिनट का जो वक्त है वो बहुत कम है। यदि तमिलनाडु की टीम चाहे तो ये गोल करना बहुत आसान है। इधर शूटिंग सर्कल में गेंद थी हरियाणा के। तमिलनाडु का बहुत अच्छा आक्रमण हो सकता था, लेकिन जिस तरह से वहां पर हरियाणा के डिफेंडर्स ने स्लिप हो गए थे, वहां गिरे थे, और तमिलनाडु के जो प्लेयर्स थे उन्होंने एक जो स्टिक, वो एक हिट लेने वाले थे, उसे रोका था। और ये एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलिंद मिला है तमिलनाडु के लिए। और देखना है कि जैसा कि आप लगातार कहते रहे हैं कि जब तक हूटर की आवाज़ आपके कानों में ना आए तब तक दरवाजे बंद नहीं होते किसी भी टीम के लिए। तो ये एक दरवाज़ा और खुला सा प्रतीत होता है कि तमिलनाडु यदि 3-0 को 3-1 कर सके तो एक नई जान आ जाएगी इस मैच में। Oh yes, capitalize on this wonderful opportunity that has come the way for Tamil Nadu. We have got picked up well there, slammed, but very good in defense. Haryana, still the danger is there. Oh, ask the question once again. Umpire B. Nanaya from Karnataka says that you've done it the wrong way. So this is a wonderful opportunity here for Tamil Nadu. This is exactly what I'm trying to say. 5 minutes is a long time. We've seen international and domestic matches. In 5 minutes, the entire game has changed. The complexion of the game has changed. And here Tamil Nadu should not have drooping shoulders. They must make sure that they are there in the striking circle as often as we have seen them. It's a different Tamil Nadu side in the 4th quarter, unlike the other. But what a way this is, just 3 goals compared to 11-2 in the first match. जी बिल्कुल सही कहा मिलिंद आपने। जिस तरह से मौके मिल रहे हैं लगातार तमिलनाडु की टीम को, लेकिन एक भी मौके को भुनाने में भी सफल नहीं हुए अभी तक। तो इसे क्या कहा जाए? क्या खेल के हर पक्ष पर, मैदान के हर हिस्से पर केवल और केवल हरियाणा का कब्जा है, या ये देखा जाए कि 3-0 की जो बढ़त है वो उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर कर चुकी है? लेकिन ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 3-0 से पीछे होने के बाद भी उन्होंने कुछ बहुत अच्छे आक्रमण किए हैं हरियाणा की गोल पोस्ट में। Oh yes, they have just not given up. Tamil Nadu has just not given up, as we are now watching out here. Back. Yes, possession. 1, 2, 3. Close to the striking circle. Not good enough. Still there. Give it across. Very well done. And losing possession as a result of that infringement, with Haryana capitalizing. Every time you give the ball away to Haryana, the chances of you scoring the goal diminish, because the moment the Haryana forwards get the ball, they move swiftly into the other half, and those 20, 30, 40 seconds at this point of time with under 4 minutes to go are very crucial. जी मिलिंद, जिस तरह से अभी भी खेल होता हुआ उससे ऐसा नहीं लगता कि हरियाणा की टीम अभी लगातार प्रयास नहीं कर रही है। एक और आक्रमण था डी के अंदर तमिलनाडु की, लेकिन वहां पर फायदा नहीं हुआ हरियाणा को। ये मूव जो बनाया था वो सफल नहीं हुआ। If I'm the Tamil Nadu side, I will say I'm down 3-0. It doesn't really matter. I might lose the match, but why lose the match? Why thinking of losing the match? It is Dinesh Kumar Chandrasekhar once again. He's been the stalwart as far as Tamil Nadu are concerned. Ball now with Sahil Rahmehar onto the far side. So my question is, you lost the match, you're down 3-0, this is what you should play. Attack.
Get one more player. Where is the second player? You now see him. Get the third player. Get into the striking circle very often in these 3 minutes and perhaps you could be there. जी मिलिंद, आपने इस क्वार्टर की शुरुआत में कहा था कि उनके लिए मौके कम है, उन्हें करना होगा, डू और डाई की स्थिति थी, और लेकिन अभी यहाँ फिलहाल तो कुछ करने की कोशिश में थी हरियाणा की टीम, लेकिन उनकी जो दिशा थी, उनके जो टोमोहॉक की, वो गोल पोस्ट से दूर जाती हुई। तो काफ़ी मौका था, जबकि 15 मिनट का पूरा खेल उनके पास था, 15 मिनट का पूरा समय उनके पास था। धीरे धीरे मैच, मैं तो ये कह सकता हूँ मिलिंद कि तमिलनाडु के हाथ से ये खेल लगभग खिसक चुका है, लेकिन आपकी बात का सम्मान करता हूं कि हूटर की आवाज तक हम ये कुछ नहीं कह सकते। और एक बार फिर से टोमोहॉक, एक आक्रमण था हरियाणा का फिर से, और इस तरह से अंतिम क्षणों में, जबकि मात्र 2 से 2.5 मिनट का खेल बचा हुआ है, वहां पर एक अच्छा आक्रमण था, और शायद चोट लगी है सतीश जेम्स को वहां पर। मिलिंद, क्या कहेंगे हरियाणा के इस आक्रमण के बारे में, जो बिल्कुल 2 या 3 मिनट खेल के शेष रहते किया गया था? Well, 2 wonderful opportunities which have come Haryana. फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है, लाइफ के मजे लेने से ये नहीं डरता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डर अब है किस बात का, जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। At this point of time. जी, अब तमिलनाडु के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए शेष नहीं है, जबकि ये देखते हुए कि हरियाणा के आक्रमण लगातार जारी हैं, और जबकि खेल 2 से 2.5 मिनट का शेष है, ये एक और आक्रमण, बहुत अच्छे प्रयास दोनों टीमों के द्वारा गेंद पर अधिकार के लिए। अगर आपने देखा, एक ही प्लेयर था, दूसरे प्लेयर को पास नहीं कर रहा है, 3 हरियाणा के प्लेयर्स उसको ब्लॉक कर रहे थे, और 2 अगर तमिलनाडु के प्लेयर आ सकते थे, दे कुड हैव मूव्ड इनटू द अदर हाफ वेरी इजीली, बट नहीं हो रहा है वो। जी, आपने कहा कि अपने पास गेंद को कम से कम रखो ताकि आपकी टीम को फायदा हो, आप अपना फायदा ना देखें, टीम का फायदा देखें। और एक बार फिर से 23 मीटर लाइन के अंदर से शूटिंग सर्किल में गेंद, और खुला गोल है, और लगभग चूंकि टोमोहॉक के द्वारा एक और कोशिश की थी वहां पर, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं तमिलनाडु के ऊपर। मिलिंद, ये एक और बेहतरीन प्रयास है खेल के अंतिम क्षणों में। This has been the difference between the two sides. Haryana have passed well, they have combined well as a cohesive force, and if you now look at it, combination of 3 players from Haryana, it's a different matter that they have not scored the goal, but the opportunity was capitalized on a combination of 3 or 4 Haryana players. जी जी, तो इस तरह से आप जो है, आप अनुभवी हैं, आपने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मैचों को देखा है, राष्ट्रीय मैचों को देखा है। जिस तरह की खेल का प्रदर्शन पहले 3 क्वार्टर तक तमिलनाडु ने किया, वो काबिल तारीफ था, लेकिन चौथे क्वार्टर में ऐसा लगता है कि हरियाणा की टीम पूरी तरह से हावी हो चुकी है, और मैच के अंतिम क्षण हरियाणा के पोजीशन में गेंद, बैक पास दिया है अपने ही साथी को सेंटर लाइन के पार, अपने ही हाफ में। So it looks certain now that Karnataka would be joined by Haryana in the semi-finals. These are the dying minutes. We are into the last 45-50 seconds of play out here. Tamil Nadu doing well to keep control of the ball, keep possession of the ball, but it's all going to be wasted from now on, because under 40 seconds of play before the hooter goes up, and Haryana looks certain. They're leading by 3 goals to 0 here in the second quarter-final of the 36th national games here at the Major Doordarshan Hockey Stadium. A beautiful complex. Tamil Nadu now making that last-ditch effort, but Haryana, the defense, very, very resolute to take it on from here. Ball back with them now, with Mahadeep Singh in possession into the striking circle very quickly. Is he going to take this one? Yes, no, not at this point of time. 7, 6, 5, 4, 3. The time, the clock ticking away. The hooter will go off. Yes, it does go off at this point of time, as Haryana go on to beat Tamil Nadu here in the second of the quarterfinals by 3 goals to 0, and they now join Karnataka in the semi-finals. तो मिलिंद, एक अच्छी हॉकी, एक अच्छा मैच देखने को हमें मिला, और जिस तरह से संघर्ष था, और ये देखिए इस मैच में जो गोल हुए हैं, पहला गोल था भरत चिकारा के द्वारा, डिफ्लेक्ट किया बहुत आसानी के साथ
अंतिम रिजल्ट इस पर मैच का है 3-0। ये दूसरा गोल था जो ट्रैक फ्लिक के द्वारा मनदीप मोर ने किया था, और ये तीसरा गोल तो आपने देखा कितनी सफाई के साथ ये गोल किए गए थे हरियाणा की ओर से। अंतिम रिजल्ट है हरियाणा 3, तमिलनाडु 0। So with the news that in this match, the second quarter final, Haryana beats Tamil Nadu by 3-0. They join. 50 सालों से जो बना हर मेज की शान, वो है अमूल चीज। हर दस्तरखान पे बनाया अपना अलग मकाम, वो है अमूल चीज। कहीं लूटी शाही वाहवाई तो कहीं बना दिल की जुबान, वो है अमूल चीज। भारत की लजीज विरासत का एक अजीज नाम, वो है अमूल चीज, जिसे हर किसी ने प्यार से कहा, ये मेरा चीज है। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। Welcome back to the Doordarshan studios in Delhi. We're showing you live coverage of the second quarterfinals match between Haryana and Tamil Nadu in the men's hockey from Rajkot, the Major Dhyan Chand stadium, where Haryana defeated Tamil Nadu by a margin of 3-0, and because of the valiant efforts of the Tamil Nadu goalkeeper, especially with the failing defense inside the striking circle, the 16-yard area, Haryana could not extend the lead beyond the win of 3-0, which means that now, as a result of this second quarterfinal win by Haryana, they are through to the semi-finals along with Karnataka, who won the first quarterfinal against Gujarat by a margin of 11-2. So we now have Karnataka and Haryana in the men's quarterfinals reaching to the semi-finals. So we have the remaining 2 semi-finals left on DD Sports coverage yet to be shown. Uttar Pradesh versus West Bengal, which would be the third quarterfinal match, and the fourth would be between Maharashtra and Jharkhand. With me in the studio is Manish Kumar, our sports expert, who will give us his views about the men's hockey performance. Manish, good to have you on the program once again. And Haryana, who had defeated Gujarat by 7-0 in the pool match, the pre-quarterfinal match earlier, was seen as a victory which could have been extended beyond 7-0. And again, Haryana tended to underperform today. It's because of the valiant efforts of the goalkeeper that Haryana could not extend their lead, plus they could not even convert one of the penalties awarded to Haryana. How do you see this emerging state side in the field of hockey? It's a very good sign for Indian hockey that you've got more states compete and give tough times to the established teams like Haryana and Punjab and Uttar Pradesh. But if you're discussing the Haryana and Tamil Nadu match, we discussed in the previous session that this quarter is the time where probably top teams will execute the strategies. So hockey, as we were discussing it, has undergone a lot of changes. Strategy-wise, it's become much more fun and interesting with the 4 quarters, where we see team come up with their trump cards at the last phase. And this is exactly what happened in this match. Well, it's time now to head from Rajkot to Ahmedabad, where the indigenous sport Malkham is a sporting discipline and being showed live on DD Sports. खुश है ये आसमां ज़मीन हर तरफ छाए हैं हम ये ऐसी कूल है अपनी कहानी चिल करके जीनी जवानी चलने दे बस दिल की मनमानी I'm cool, chill your दिल I'm cool, chill your दिल I'm cool, chill your दिल डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ।
ये हाथ से एक पैर पे स्टैंडिंग करने की कोशिश, देखना होगा किस ढंग की मुद्रा बनाती हैं। बढ़िया संतुलन और ये समरसॉल्ट, फ्रंट समरसॉल्ट लगाया था, लेकिन लैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, जिस कारण कि अपने पर नियंत्रण नहीं बना रख सकी। अंक थोड़े बहुत जरूर कटेंगे चंडीगढ़ की रिंकी। खुशी कुशवाहा उत्तर प्रदेश की इस समय लीड कर रही हैं। सोनिया कुशवाहा इस समय दूसरे स्थान पर हैं और उत्तर प्रदेश की टीम ने बढ़त बनाई हुई है। चंचल पाठक उत्तर प्रदेश की रोप मलखम पर इस समय अपना कर्तव्य दिखाती हुई पद्मासन की मुद्रा, पद्मासन क्रॉस, फिर निद्रासन की मुद्रा, ताड़ासन, युवादी, और यहां पर अपना बैलेंस बनाने में चूक गई, लेकिन साथी खिलाड़ियों का हौसला तो देखिए क्या हुआ। वो कहते हैं गिरते हैं 100 सवार मैदानी जंग में, वो क्या जाने जो घुटनों के बल चला करते हैं। आप यहां तक आई हैं, आप लड़ रही हैं, थोड़ी बहुत चूक हर खेल में होती है, हौसला नहीं खोया है, चूंकि इन्हें पता है ये क्रॉस, ये वादी, और यहां से कोशिश होगी सफल लैंडिंग की। देखना होगा कि लैंडिंग करती हैं या नहीं, और ये लैंडिंग थोड़ा सा ऑफ बैलेंस वहां पर हो गई थी चंचल पाठक। अंक थोड़े जरूर कटेंगे, निराशा भी हुई होगी, लेकिन ये खेल है और खेल में ये कुछ चलता रहता है। चंडीगढ़ की लेखा रानी, चंडीगढ़ की लेखा रानी इस समय पूल पर अपना प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। समय की शुरुआत होती हुई कपाल उड़ी के साथ शुरुआत कर रही हैं। और यहां पर ये आसन की तैयारी, ये पैर का फरारा है, एक पैर का फरारा, ये हाथ का फरारा, ये देखिए बजरंगी, और अब ये हाथ पर पूरी तरीके से स्ट्रेन दे दिया है। बढ़िया संतुलन, और यहां पर अब आसन बनाने की कोशिश बहुत मुश्किल होता है। अब यहां से क्या वीरभद्रासन और फिर समरसॉल्ट होगा। ताड़ासन के बाद वीरभद्रासन की मुद्रा और समरसॉल्ट लगाने की कोशिश, फ्रंट समरसॉल्ट, और लैंडिंग अच्छी नहीं हुई। वहां पर कोशिश जरूर हुई थी फ्रंट समरसॉल्ट की, लेकिन लेखा रानी स्थिर नहीं रह पाई लैंडिंग पर। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। और ये लैंडिंग की समस्या हो गई वहां पर। मुस्कान चंडीगढ़ की 4.65 पोल रैंक में टॉप पर चल रही हैं। खुशी कुशवाहा उत्तर प्रदेश की 8.20 के साथ टॉप पर चल रही हैं ऑलराउंड रैंकिंग में। चूंकि अभी रैंकिंग की शुरुआत ही हुई है, तो जिस कारण की ज्यादा परेशानी नहीं है यहां पर। और वापस लौटते हैं रोप मलखंभ की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी स्प्रिया तिवारी आगाज करती हुई ये सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ती हुई स्प्रिया, पद्मासन की मुद्रा, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। ये क्रॉस और ये वादी, कोशिश जरूर कर रही हैं तेज गति से आसन करने की बजरंगी। नटराज आसन, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। अब ऊपर जाना होगा, कुछ और आसन करने की जरूरत। सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश होती हुई यहां पर क्रॉस, 2 पैर की वादी थी। पद्मासन की मुद्रा, पश्चिमोत्तानासन, पाद हस्तासन, ये निद्रासन, क्रॉस, ये बजरंगी, और ये लैंडिंग, परफेक्ट लैंडिंग होती हुई स्प्रिया तिवारी की। बढ़िया प्रदर्शन किया है स्प्रिया ने, और जरूर अच्छे अंक जुटाए होंगे अपनी टीम के लिए। जब तक निर्णायक की तरफ से आपको स्कोर नहीं मिल जाता, तब तक आपको वहीं पे रहने की आवश्यकता होती है। और ये देखिए सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ती हुई ये दोनों पैरों के सहारे नीचे संतुलन बनाया। ये पद्मासन, निद्रासन की मुद्रा, और ये देखिए लैंडिंग परफेक्ट के बहुत करीब थी। चंचल पाठक को 8 अंक मिले हैं, चौथे स्थान पर हैं चंचल। और अब हम चलते हैं आपको लेकर चंडीगढ़, जहां पर संध्या यादव पोल मलखंभ पर अपना प्रदर्शन करती हुई, ये जो सफेद रंग के पाउडर नुमा चीज आप देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, जिसको कि फिसलन से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फरारा, और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि महिला वर्ग में ये पोल कंपटीशन जो है, पोल मलखंभ की जो प्रतियोगिता है, पिछले 2 साल से ही शुरू हुई है। नहीं तो महिलाओं के श्रेणी में सिर्फ रोप मलखंभ की ही प्रतियोगिता हुआ करती थी। और ये देखिए फरारा करने की कोशिश, पैर का फरारा, ये बगल का फरारा है। और अब टॉप पर जाती हुई प्रेसिंग एलिमेंट, आसान नहीं होता है वहां पर खड़े रहना, संतुलन बनाए रखना। समरसॉल्ट की तैयारी होगी, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा, संभालने में कामयाब, लेकिन क्या उसी पोजीशन पर दोबारा जाएंगी। और यहां से अब साइड लैंडिंग, समरसॉल्ट का इरादा त्यागा और साइड लैंडिंग करती हुई जसवंत। बेहतरीन मुकाबले चल रहे हैं। और बेहतरीन मुकाबले तो आनंद होने भी चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ की खिलाड़ी यहाँ पर
और ये रोप मलखम में इस समय उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करती हुई उत्तर प्रदेश की स्प्रिया तिवारी, राधा राजपूत इस समय प्रदर्शन करती हुई यहां पर 90 सेकंड का समय, और ये देखिए किस ढंग से रोप से अपने आप को कम से कम 2 पार्ट को यहां पर दिखलाना पड़ता है मुद्रा के रूप में, आगे और पीछे। लगातार कोशिश, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश 90 सेकंड में। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी स्प्रिया और अब राधा वापस जाते हुए और अपने खिलाड़ियों को, साथी खिलाड़ियों को अपने अनुभव को शेयर करते हुए कैसा क्या कुछ उन्होंने अनुभव किया, ताकि जो खिलाड़ी आगे प्रदर्शन करने वाले हैं वे सतर्क हो सके। ये देखिए राधा, और ये उनकी बेहतरीन मिस पॉइंट। ये पोल में अभी लेखा रानी चंडीगढ़ की आगे है, और ऑलराउंड मलखम की जहां तक बात है तो स्प्रिया तिवारी 8.40 अंक लेकर पहले स्थान पर, खुशी दूसरे स्थान पर है। गुनगुन और चंचल को तीसरा स्थान मिला है, जबकि यहां पर टीम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत मुकाबला, और ये वहां पर निर्णय देने वाले जो जज है वो है, हम आपको ये बतला दें कि पोल में अभिजीत भोसले, गणेश, पंकज हिरमथी और ये यहां पर उपस्थित खिलाड़ी दर्शक साथी अभिजीत भोसले, गणेश, पंकज, हिरमंत, ये हैं जज, और स्कोरर हैं संगीता, और टाइम देखते हैं मकसूद। तो इस प्रकार से यहां पर टेक्निकल ऑफिशियल्स और कोच अपने खिलाड़ियों का जो उन्होंने तैयार किया है उनका प्रदर्शन देखते हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत ये मुकाबला चल रहा है। यूपी की खिलाड़ियों ने रोप मलखम पर अपना प्रदर्शन किया है, और धीरे फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है, लाइफ के मजे लेने से ये नहीं डरता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार
5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर, जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। शुरुआत होती हुई यहां पोल मलखम पर। ऊपर जाने का प्रयास, हाथ का फरारा। नटराजासन की दूर से कोशिश की जा रही थी। यहां प्रेस एलिमेंट चलता हुआ, पेट का ताजवा, थोड़ी सी हेजिटेशन में लग रही हैं। बगल का ताजवा करने की कोशिश, ये बगल का फरारा है। थोड़ी सहज नहीं दिख रही वहां पर। और यहां पर साइड लैंडिंग, ऐसा लगा कि 90 सेकंड से बहुत पहले अपना उन्होंने समय पूरा कर लिया। और थोड़ी सी दाहिने हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करती हुई, और इसके साथ ही चंडीगढ़ ने पोल मलखम पर अपना प्रदर्शन पूरा कर लिया है। और अब ये स्विच ओवर होगा, उत्तर प्रदेश की टीम जाएगी पोल पर और चंडीगढ़ की टीम आएगी रोप पर। और यहां पर देखिए, ये अंतिम परफॉर्मेंस थी। नटराजासन की कोशिश की थी। प्रेसिंग एलिमेंट, और पोल मलखम पर इस समय हम आपको बतला दें, ऑलराउंड रैंकिंग अभी जो है, इस प्रिया तिवारी प्रथम स्थान पर है, राधा राजपूत दूसरे स्थान पर है और खुशी कुशवाहा तीसरे स्थान पर है। ऑलराउंड रैंकिंग में इस समय प्रिया तिवारी पहले स्थान पर है और राधा राजपूत दूसरे स्थान पर, खुशी तीसरे स्थान पर। और अगर टीम रैंकिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश की टीम पहले स्थान पर 41.2 अंकों के साथ, चंडीगढ़ से 21.7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। पोल रैंक में लेखा रानी है, वो स्थान पर Welcome back to the Doordarshan studios. We're showing you live coverage of the indigenous sport called Malkham directly from Ahmedabad, which is basically a sport of indigenous origins where you have athletes who perform aesthetically using yogasans either on a wooden pole or on a rope, and they have to go up and down and finish off with an asan and with finally a landing to close their performance. The judges actually assess them on the basis of how they have conducted themselves on the pole or on the rope. So the women were taking part in there, and it was quite interesting to see that an indigenous sport is being made an important sporting discipline for the national games being held in Gujarat. And to understand this more,
I am joined in the studio with Manish Kumar, a sports expert. Manish, very interesting that you were talking about the foundation of a lot of athletes who have done well for India in the past and in the present because they have played sport like Kho-Kho, and Malkhamb is a very important part of cultural activity in Maharashtra and Uttar Pradesh, which is why we are seeing a lot of athletes participate in the national games. Here we also have this girl from Chandigarh whom we're showing the live coverage of from Ahmedabad, the sport of Malkhamb. How important is it? Because it appears to be quite eye-pleasing. You're mentioning about the nuances that even though it has certain aspects of gymnastics, in terms of form and the physique, it's more of that of a wrestler. So it's, our viewers are getting to see a national sport being showed on the national games. How do you view this development? It's an eclectic, talking about Malkhamb, it's an eclectic mix of gymnastics, wrestling and yoga, asana. But overall, and we discussed that earlier also, that that highlighting indigenous sports like Malkhamb, Kho-Kho, Kabaddi, in the Khelo India Youth Games, you have sports like Gatka and others. I think it's a great move forward for Indian sports, because here what you're showcasing is sports which are intrinsic part of Indian culture. So that is why, and we discussed it earlier while we were watching the live show, that we saw more audience in Malkhamb than probably in hockey. Now, hockey is a game that we adopted from the Britishers, while Malkhamb is our original game. So that's why you see more people in Malkhamb. You might invite audience in a hockey match, but in Malkhamb probably there were people who just walked in because they're excited to see Malkhamb, which they can connect with. And that is why probably the government also been wise enough to include and highlight these indigenous sports today in the curriculum of the national games. So, I mean, Kabaddi for that matter is an indigenous sport, and it has become a marketable sport as well across television channels which have promoted sporting events. So it's very interesting to see that Malkhamb is being seen as an important sport as well in the national games selection of sporting disciplines. And quite a comparison you drew, because cricket and hockey, these are sports that we have inherited from British culture through their colonialism of India, even though we can look at it positively right now, and we have some results for our viewers because we had the two quarterfinal matches in men's hockey, with Karnataka defeating Gujarat by a wide margin of 11 goals to 2, which means Karnataka along with Haryana are through to the semi-finals. Haryana defeating Tamil Nadu by a smaller margin of 3-0 after defeating Gujarat in the pre-quarterfinals 7-0. So a lot of expectations from Haryana's performance there, but they both are in the semi-finals. We have some pending quarterfinal matches in hockey as well. UP versus West Bengal and Maharashtra versus Jharkhand, which will be showed live on Doordarshan Sports as well, directly from Rajkot. And then we move from Rajkot to Ahmedabad, where we showed you the indigenous sport of Malkhamb, and the judges were assessing the participants on the basis of form and the number of asanas that they could finish on the rope and on the wooden pole as well, and getting right on the top of it and then jumping off it and making a soft landing on the matting all around it. So there are a lot of physical challenges to the sport as well. And what we are able to understand right now, Manish, is that in order for us to excel in the internationally recognized and competed events, we need to invest in the indigenous sports, because a lot of physical development actually takes place by taking part in Kabaddi, in Kho-Kho, or for that matter Malkhamb. Yes. Why should health and fitness come at expensive turf? I'm not saying do not promote other sports which are globally, which have been imported, by us. I'm saying is that if you can be physically fit by doing Malkhamb and Kho-Kho and Kabaddi, do you really need to look at sports which are imported externally and said you need to play on a turf which costs 5 crores, 6 crores? Here you can do Malkhamb, you need a pole, you need a landing pad, and you can do Malkhamb. Same thing for Kabaddi and Kho-Kho, which are played on a pad, on mattresses these days. But one point that I would like to make here is that I wish, that at large people who make policies and decisions get the nuances of these sports well on the scientific parameters. So gradually that we can introduce these sports at the Asian Games, Commonwealth Games, and probably even at the Olympic Games. Because don't forget that as one of the largest market of the world, we would love to watch these sports when they're being televised, rather than watch a sport like judo, which is completely
imported from Japan. Why not export sports to the world also? That's very interesting because judo is from the martial art of jujutsu, and of course we had quite a judoka performance from women yesterday on day 8 of these national games. Coming back to the indigenous sport, we also have some sport called yogasana, apart from Malcolm as an important sporting discipline in these national games, the 36th edition of it. So what is yogasana? How is that different from Malcolm? I was part of organizing a Yogasana National Championships sometime last year. One of the challenges that I faced as an organizer was to make the sports more relatable to the public. While the public appreciates the aesthetic part of Malcolm and yoga, but the rules also needs to be conveyed to the public so that they can take active interest in the sports. So I think this is one aspect of the sports where the administrators need to understand that any sport will survive long term and become sustainable if the masses can comprehend what is happening on the field. So if you look at yogasana on day 8 yesterday, we had Maharashtra's Vaibhav Srirame, who took the gold in the men's traditional event, and silver went to Shubham Devnath of West Bengal, and the bronze in fact went to Mohammad Firoz Sheikh of Karnataka in this indigenous sport called yogasana. We haven't showed you live coverage of it today, but Malcolm is a sport that we showed you. We were discussing earlier about indigenous sport and its impact really on internationally recognized sport. One sport that comes to mind, Manish, is wrestling, because a lot of akhada wrestling on sand is where wrestlers develop the initial strength and skill, and then they move on to wrestling on the mat based on the rules framed by the International Wrestling Federation. How do you see that transition being analogous to what the government is attempting to do with indigenous sport across other internationally recognized sports? See, globally we'll always have to face these challenges and overcome them. For example, you know, wrestling was done on mud, but suddenly you go to shift on mat. So we lost a lot of our process because we didn't know how to make the transition. Similarly for hockey, from grass field we had to come to artificial turfs. In kabaddi and kho-kho, again we are playing it on mattress. And let me make you a point that I realized sometime a few years ago that South Africa was doing extremely well in kho-kho. Just like, you know, in kabaddi you have Iran do well and excel, you know, comparing with India. So at the same, I think while we are highlighting these sports, we also need to take the initiative to establish scientific parameters so that these sports become regular part of the curriculum, and India continues to dominate these sports because there are other countries which are breathing down our neck also. Well, let's speak about judo, because yesterday Tulika Maan won the silver medal in the Commonwealth Games, and she won the gold yesterday in her weight class in the plus 78 kilogram weight category, and she made quite a stir, this athlete from Delhi. And remember, judo is an import from Japan. It's a sport that is followed internationally and is recognized as well, and India's performance here has been quite good. Tulika Maan, what is your take on this athlete after she beat Kanwarpreet Kaur of Punjab in this weight class? One of the takeaways from this national game is the fact that almost all our elite athletes have participated in the national games, which is what we were complaining about for many years, that why is it that our top players are not seen in events like national games. So it's a good step that we saw Tulika, and it was, I'm sure a lot of youngsters would be motivated to see her perform. We also had some performances from the men, Manish, with N.K. Roman of the Services Sports Control Board winning the gold in the below 66 kilogram weight category. Then in the below 60 kilogram weight category, UP's Vijay Yadav won the gold after defeating Delhi's Harsh Singh. And then you had judoka from Manipur. In fact, it was Sunibala Devi of Manipur who beat Megha Tokas of Delhi to win the gold medal in the below 63 kilogram weight category. So that was the action as far as judo is concerned. Tulika Maan, of course, being the highlighted performance, but there were other performances in this contact sport. There is plenty of action in the preliminary rounds when it comes to boxing, the lightweight and the welterweight as well. We'll show you more on DD Sports, but before that we'll take a short break, so please stay tuned.
किसी ने तुझ में अपना यार है पाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तूने ही मिलके करार जगाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। केरल की टीम 1-0 से, लेकिन यहां पर प्रयास जरूर किया था महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने, लेकिन गोल पोस्ट से गेंद बाहर चलेगी। इस समय पूजा एस ने थ्रो पास दिया सामने अपने साथी खिलाड़ी नियमा बाबू को। नियमा बाबू ने लेफ्ट फ्लैंक में दिया बहुत खूबसूरत तरीके से, लेकिन 6 मीटर के अंदर से जाकर डीडी स्पोर्ट्स से आप लाइव देख रहे हैं। इस समय वाटर पोलो का यह मुकाबला, यह आखिरी लीग मुकाबला है, इसमें जो टीम जीतेगी उसके बाद स्वर्ण पदक का। अच्छा प्रयास किया था इस वक्त केरल की तरफ से कृपा ने, लेकिन कृपा को रोका गोलकीपर संजय ने, जो कि महाराष्ट्र के शानदार तरीके से उन्होंने बचाव किया। गेंद को उन्होंने केवल बाहर की तरफ निकाला और गोल पोस्ट पे टकरा गई। इस बार प्रयास दाएं फ्लैंक से जरूर किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अभी भी केरल जो है वो 1-0 से आगे चलता हुआ, और ये पहला क्वार्टर चल रहा है। हम बताना चाहेंगे कि 8-8 मिनट के क्वार्टर होते हैं। पहले क्वार्टर के बाद 2 मिनट का ब्रेक होता, उसके बाद दूसरे क्वार्टर के बाद भी 2 मिनट का ब्रेक, और तीसरे क्वार्टर के बाद 3 मिनट का ब्रेक होता है। इस समय महाराष्ट्र की टीम बाएं फ्लैंक से अटैक करती हुई महाराष्ट्र की तरफ से इस समय गेंद को संभाला है कोमल ने। कोमल के पास गेंद, लेकिन कोमल के साथ जूझती हुई कृपा। केरल की जबरदस्त तरीके से यह संघर्ष चलता हुआ एक बार फिर से फाउल हुआ यहां पर, और एक फ्री थ्रो मिला। इस समय काव्या ने फॉरवर्ड पास दिया शानदार तरीके से। इस समय गेंद को संभाला है पूजा ने, जो कि केरल की तरफ से, और उनको रोकने की कोशिश जरूर की। फाउल हुआ, और अभी भी गेंद महाराष्ट्र के पाले में। नियमा बाबू के पास ये गेंद थी। कोच यहां पर साइड में अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करते हुए, अभी भी गेंद केरल के खिलाड़ियों के पास। अटैक करने की कोशिश, 6 मीटर के बाहर से आप डायरेक्ट शॉट कर सकते हैं, लेकिन 6 मीटर के अंदर अगर आपको कोई पेनल्टी मिलती है तो आप दूसरे खिलाड़ी को पास देंगे। जी भरत, बिल्कुल सही। Absolutely, Kulwinder. I'm impressed with your information and knowledge of water polo. Despite the fact that it's a relatively new sport, but with your experience, decades experience in cricket and hockey, I know you are aware of the team sports, and that shows your legacy. And as Kulwinder just rightly said, you know, how teams progress, and that's a good long 6-meter shot by Maharashtra, but it has been cancelled out by referee. Team Kerala back in the reckoning. We'll have to see if Maharashtra can keep maintaining that pressure on. And that's a missed pass by Team Kerala player, but they managed to get it. Team Kerala number 7, Rajeshri, has the ball. Let's see if she will attempt passing back to her teammates. Grishma. And that's a good, nice pass, moving in that. And that's a 30-second whistle. That's the rule in water polo, that one team cannot keep the ball for more than 30 seconds. At any point that happens, the referee will blow the whistle and the ball has to change hands. और जब 30 सेकंड का समय मिलता है गोल करने के लिए, अगर 30 सेकंड में आप गोल नहीं कर पाते हैं तो अब अंपायर की विसल बज जाती है। और यहाँ पर एक फाउल हुआ केरला की तरफ से। महाराष्ट्र अटैक करता हुआ दाएं फ्लैंक से गोल के अंदर डालने की कोशिश, लेकिन केरल की गोलकीपर विस्मय वी ने शानदार तरीके से बचाव किया। जो प्रयास था महाराष्ट्र का वो बेकार चला गया। और इसी बीच इस समय केरल की 4 नंबर की खिलाड़ी कृपा के पास इस समय गेंद बाएं फ्लैंक में हाफ मैदान के बीच तक उन्होंने राइट तरफ पास दिया अपने साथी नियमा बाबू को। नियमा बाबू से
फाउल किया गया महाराष्ट्र की तरफ से। नियम बाबू ने थ्रो किए समय एक बार फिर से फाउल हुआ और अगर पेनल्टी होती है तो ये वापस आप 5 मीटर के 6 मीटर के अंदर आप डायरेक्ट थ्रो नहीं कर सकते, साथी को पास देना पड़ता है। पास दिया गया इस समय 3 नंबर की जर्सी में काव्या के पास। काव्या डायरेक्ट थ्रो ले सकते हैं, 6 मीटर की दूरी से आप डायरेक्ट गोल में थ्रो कर सकते हैं। प्रयास किया गया, गोलकीपर ने उसे रोका संजय ने, उनके हाथ से रखकर गोल पोस्ट से गेंद टकराई और एक अच्छा बचाव भी कहा जाएगा। गोलकीपर ने भी प्रयास किया और इसके अलावा गोल पोस्ट से भी भागे ने उनका साथ दिया। 1-0 से आगे पहले क्वार्टर में केरल की टीम, जबकि आखिरी लीग मुकाबला है 36वें राष्ट्रीय खेलों का और इसके साथ ही ये 8 मिनट का पहला क्वार्टर समाप्ति की ओर। अंपायर की विसल आपके सामने। और इस समय 2 मिनट का ये ब्रेक होगा और पहले क्वार्टर में इस समय केरल 1-0 से आगे चलता हुआ। महाराष्ट्र की टीम अभी तक इसमें पराजित नहीं हुई, कोई भी टीम उनको पराजित नहीं कर सकी और देखना ये है कि क्या आज वो अपने रिकॉर्ड को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात है और 2 मिनट का ये ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड के ऊपर समय चलता हुआ 1 मिनट 13 सेकंड बाकी। 50 सालों से जो बना हर मेज की शान, वो है अमूल चीज। हर दस्तरखान पे बनाया अपना अलग मकाम, वो है अमूल चीज। कहीं लूटी शाही वाहवाई तो कहीं बना दिल की जुबान, वो है अमूल चीज। भारत की लजीज विरासत का एक अजीज नाम, वो है अमूल चीज, जिसे हर किसी ने प्यार से कहा, ये मेरा चीज है। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। How that's played on the field, the rules are similar where the players have to put the ball in the opposition goal, but here we need to swim, we need to play with the hands, so exactly it stays similar. Yeah, but water polo, like I rightly said, it's a grueling, taxing sport where the player is being tested not just about their goal scoring, but also endurance, strength, speed, agility, and teamwork, most importantly, because it's not an individual sport. It's a team sport that requires team to play in coordination with strategy. 6 खिलाड़ी आगे बढ़कर अटैक करते हैं और एक गोलकीपर रहता है। इस समय केरल की टीम दाएं से बाएं अटैक करती है महाराष्ट्र के गोल मुख पर 1-0 से आगे चलती हुई। 30 सेकंड में केवल 10 सेकंड का समय बचा है, गोल करना होगा। थ्रो किया गया, उसके साथ ये गोल, यह केरला का दूसरा गोल। दाएं कोने पर बहुत शानदार प्रयास किया गया, केरल की तरफ से शानदार गोल किया गया। ये देखिए किस तरीके से 4 नंबर कैप में कृपा ने ये गोल किया है और इस तरीके से केरल 2-0 से आगे चलता हुआ। दूसरे क्वार्टर को शुरू हुए अभी केवल 30 और 32 सेकंड का समय हुआ है। तो यहां पर पहले क्वार्टर में 1-0 से आगे थी केरल की टीम और यहां पर अब 2-0 हो चुका है दूसरे क्वार्टर में। महाराष्ट्र की टीम अटैक करती हुई महाराष्ट्र की तरफ से 4 नंबर की जर्सी में फॉरवर्ड पास दिया जरूर, लेकिन मानसिक गड़वे का पास सही नहीं पहुंचा अपने साथी खिलाड़ी कोमल के लिए। कोमल ने एक बार फिर से फॉरवर्ड पास दिया, अटैक करने की कोशिश केरल की तरफ से, फॉरवर्ड पास को पकड़ा गया महाराष्ट्र की तरफ से। 4 नंबर की जर्सी में मानसिक गड़वे ने गेंद को आगे थ्रू किया, लेकिन वहां फाउल हुआ और प्रयास था, रेफरी ने इशारा किया और इस समय केरल की तरफ से नियमा बाबू ने फॉरवर्ड पास दिया। हाफ जो होता है उसको पार किया गया और इसमें देखा जाए 20 मीटर बाई 30 मीटर का ये मैदान है और यहां पर अच्छा प्रयास था गोलकीपर का। महाराष्ट्र के गोलकीपर संजय ने अपने बाएं हाथ से इस गेंद को गोल में जाने से रोका, अन्यथा 3-0 हो सकता था। दूसरे हाफ का अभी दूसरे क्वार्टर का भी 6 मिनट और 32 सेकंड का समय शेष। Yes, that was excellent save defense by Sayali and the goalkeeper of team Maharashtra, Sanjay. What a save that was. It would have been a clear-cut goal, but you see that extended left arm
from the goalkeeper, ensuring that she saves that crucial goal. And these are the moments that these teams prepare for. That's what takes them hours of training. And there you could see another attack coming from Kerala. Number 2, Archa A, who is also the captain of the team. And you could see the strength of Archa, but it's equally defended by Sayali, the captain of Team Maharashtra. And that's a safe back ball by Kerala. Kerala is playing cautiously. They know the score is just margin of 2 goals, and Maharashtra has to do something special if they have any chance of closing in that gap. But a good start to this water polo finale. It's the last day of the event. Whichever team wins today wins the gold medal, and that's going to be decided by this match. And that's a chance for Team Kerala as they are inching in, going for a long shot range, but referee has decided otherwise. And also the goalkeeper was ready to defend that and hold that, stop that shot. Team Maharashtra in blue cap moving in closer, trying their luck, trying every bit of it, and there you could see, well defended by Team Kerala. Defender Maharashtra has to bring some elements of surprise if they have any chance, and that's an extra man advantage to Team Maharashtra, as one of the Kerala players has been asked to move out for the foul that she has committed on Maharashtra team. And there you go, Maharashtra has a good chance. Let's see if this will be converted. Not at all. That was a big miss for Maharashtra. That should have been a clear goal, and then Kerala has the advantage now. Kerala moving forward, but that's a fumble by Kerala number 4, Kripa Ara. That should have been a clear goal, but there you could see Sayali struggling, and a ball dip sign given by referee against Team Kerala. Moving the ball forward, Maharashtra in blue cap with their number 2, Rupal, moving in to 6-meter range, giving a good pass, but mistimed, mishit by Team Kerala. Team Kerala in the prowl. Team Kerala going in stronger. There you could see the strength of Kerala number 2, Archa, and coach of Team Kerala giving instructions, and that's a missed throw just over the goal. This game generates a lot of excitement, Kulwinder. This is a sport for the passionate few, and India still has to garner that crowd for water polo. Internationally, this is one of the most viewed sports after football, and you could see that excitement, how the players are fighting each other out. They have to be subtle, they have to be strategic, otherwise if the referee sees them, and that's a good goal by Team Maharashtra by number 4, Mansi Gowri. What a score that is, what a shot, and coming in 2 goals to 1. They have reduced the lead by 1 goal, Kulwinder. What a shot that was if you see the recap. बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत देर से प्रयास कर रही थी महाराष्ट्र की टीम, लेकिन महाराष्ट्र की टीम को काफी सुदृढ़ रक्षा पंक्ति का सामना करना पड़ रहा था। केरल गोल खाने के बाद इस समय 2-1 से पिछड़ा हुआ महाराष्ट्र, और केरल बाएं फ्लैंक से अटैक करती हुई केरल की तरफ से इस समय 9 नंबर में दृश्य ने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश, उनके साथ जूझती हुई महाराष्ट्र की मानसी गढ़वे, फाउल हुआ मानसी गढ़वे का। क्या ये 6 मीटर के बाहर डायरेक्ट गोल भी कर सकती है? दबाने की कोशिश की गई, आप दबा नहीं सकते, पुश नहीं कर सकते, फाउल होता। डायरेक्ट कोशिश की गई, गोल पोस्ट पे टकराने के बाद गेंद बाहर चली गई। रोका जरूर था संजय ने, लेकिन संजय के हाथ से थोड़ा ऊपर गोल पोस्ट पे ये गेंद टकराई और बाहर चली गई। इस समय दूसरे क्वार्टर का 2 मिनट 30 सेकंड का समय बाकी, 2-1 से केरल आगे, और इस समय महाराष्ट्र का अटैक बनता हुआ गोल पर करीब पहुंच चुके महाराष्ट्र की तरफ से कोमल ने प्रयास किया, गोल पोस्ट से टकरा गई, फाउल किया गया वहां केरल की तरफ से।
और 6 मीटर के अंदर आप अगर पास पेनल्टी लेते हैं तो आपको दूसरे खिलाड़ी को देना पड़ता है। कृपा के पास पहुंची, आर्चर जो कि कप्तान उन्होंने कृपा को दिया, कृपा के पास इस समय गेंद और गोल करने की कोशिश 6 मीटर के बाहर से, लेकिन गोलकीपर विस्मय वी की को तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने इसे रोक लिया, अच्छा डिफेंस किया। और अब एक बार फिर से अटैक बनता हुआ इस समय केरल की तरफ से नेमिया बाबू के पास गेंद, नेमिया बाबू गेंद तो लेके आगे बढ़ी, लेकिन 12 नंबर की जर्सी में कोमल ने फाउल किया। महाराष्ट्र फ्री किक मिली, फ्री थ्रो मिला इस समय और फॉरवर्ड पास दिया गया। यहाँ एक बार फिर से फाउल हुआ, 6 मीटर के बाहर गेंद को दिया गया, क्योंकि 6 मीटर के अंदर अगर फाउल होता है तो आपको दूसरे खिलाड़ी को पास देना पड़ेगा और 6 मीटर के बाहर से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और 30 सेकंड का समय दोबारा चल पड़ा है, क्योंकि 30 सेकंड का समय हो गया था, उन्होंने शॉट नहीं लिया था, प्रयास था। और अब दूसरी टीम के लिए, महाराष्ट्र के लिए ये इस समय कुल 19 सेकंड का समय शेष। क्या महाराष्ट्र उनसे 19 सेकंड में बराबरी का गोल कर पाएगी? महाराष्ट्र के रूपल बी ने फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन पुश किया गया और 7 नंबर को बार फाउल किया गया। 7 नंबर ऑफ केरला नियमा बाबू को कार्ड दिखाया गया और इस समय बाहर निकाल दिया गया। और अब केवल 6 खिलाड़ियों से खेलती हुई 5 हैं और 1 गोलकीपर। क्या यहाँ पर गोल कर पाएंगी? प्रयास किया गया गोलकीपर पूजा के द्वारा, महाराष्ट्र की तरफ से पूजा ने डायरेक्ट थ्रो किया था, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी विस्मय जी की, उन्होंने इसको रोका। और अब बाई फ्लैग से आक्रमण बनता हुआ केरल की तरफ से नियम बाबू वापस मैदान पर। And what a miss that was by Team Maharashtra. That could have reduced the gap and that could have leveled the score, but very costly miss. And there you go, Team Kerala right at the post. And that was a close miss, but a good attempt by Team Kerala moving in positively. Okay, Maharashtra has to do something if they have chance to level the score. That was a good attempt by Team Maharashtra. Team Maharashtra moving in closer, keeping an eye on their number 7. Rajshri G moving in closer, and number 6, she might take a long shot, but no, well defended by Team Kerala. And what a miss that was again, and they'll have to capitalize on these blunders, these misses, Kulwinder, if they have any chance to move forward with the score. डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। Chance and capitalize on that, scoring that one elusive goal. They'll have to change their strategy. They'll have to bring some new teamwork, team building, taking their time with the coach to regroup themselves. And it's a halfway mark with 2 quarters done. Kerala team in the lead by 2 goals to 1. And this is coming out to be a close contest. Team Maharashtra and Team Kerala. There you could see on the screen, Team Maharashtra girls with their coach, Vimal, having a quick chat to regroup. Team Kerala already in the water, feeling that confidence with that 1 goal lead, but let me tell you, it can be taken down any moment. Any team that loses that focus and that grip on the game will have to pay the price. We'll have to wait and watch what will be the ultimate. With 2 quarters left, both the teams going strong. I feel Kulwinder, Maharashtra has missed a few very good chances that could have taken them to the lead. महाराष्ट्र के कोच विमल इस समय अपनी टीम को
इंस्ट्रक्शन देते हुए, और बहुत ही एक ज़बरदस्त मुकाबला, अभी भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं, 2-1 का अंतर है। और 30 सेकंड पहले ये हूटर बजता है ताकि आप अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाएं। और 8-8 मिनट के ये 4 क्वार्टर होते हैं, 2 क्वार्टर समाप्त हो चुके हैं, तीसरा क्वार्टर अब शुरू होने वाला है। और अभी तक 2-1 से आगे चलती हुई केरल की टीम, महाराष्ट्र के जो कि नीली कैप में है और केरल की टीम जो कि सफ़ेद कैप में है। मैदान जो कि 20x30 मीटर का होता है। And there you could see the recap by Team Maharashtra scoring that elusive goal, and the match referee has given the whistle. The teams are ready in their position. The match is being adjudged by Mr. Karambir Tokas from Delhi and Simant from Madhya Pradesh, both the veteran referees keeping an eye on the proceedings. This is a good close game. We'll have to see if Maharashtra team has what it takes to take this game forward. Keeping the eye on that's referee Karambir Tokas from Delhi on the screen. A seasoned referee who has been a top player in his time, but now taking care of the proceedings as a referee. And there you have Team Maharashtra on the breakout, moving in stronger. They have advantage if they can capitalize on this. Let's see. And there is a one-man advantage, but Team Kerala defender comes back stronger and still couldn't survive. And that's a good goal by Maharashtra number 10, Pooja K. What a score that is. Leveling the score for Team Maharashtra. Score is 2 goals all, and that's given them a boost. We'll have to see. और कैप्टन कोमल जो थी उसका बहुत अच्छा पास था 12 नंबर की कैप में, और ये पास दिया गया था पूजा के को। उन्होंने इत्मीनान के साथ समय लेते हुए गोलकीपर को डिच करते हुए उन्होंने ये दूसरा गोल किया, और इस समय दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर। What a game this is turning out to be with Kerala in white cap. That's the referee of the match, Karambir Tokas and Simant from Madhya Pradesh. Number 10 from Kerala, ready to take the shot, and a goal saved by Maharashtra goalkeeper Sanjay. Sanjay taking her time, giving a long pass to her teammate Mansi Gowde, the goal scorer for Team Maharashtra. Mansi is taking her time to move the ball forward with Rupal of Maharashtra. And there you could see they have a one-man. That's a foul for Team Maharashtra. Let's see if she can capitalize on this distance. And the referee has given the hooter for 30 seconds. The 30-second rule has changed the game of water polo, has made it faster. आपने बिल्कुल सही कहा, 30 सेकंड के अंदर गोल। अब केरल की टीम आक्रमण करती हुई, केरल की तरफ से कृपा के पास है एक गेंद, कृपा उसको थ्रो करना चाहती थी लेकिन महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने गेंद को छीना। गेंद इस समय गोलकीपर के पास, गोलकीपर जो कि महाराष्ट्र के गोलकीपर संजय के पास, संजय ने थ्रो किया, अपने साथी को छीनने की कोशिश जरूर की गई गरिश्मा के द्वारा जो कि केरल की है, अभी भी जूझती हुई वो पूजा के साथ, लेकिन अच्छा पास दिया गया। बाएं फ्लैंक में इस समय गेंद पहुंची महाराष्ट्र को, रूपल बी के पास गेंद फॉरवर्ड पास देना चाहती थी लेकिन वहां फाउल कर बैठी केरल की, और एक फ्री थ्रो मिला और फ्री थ्रो लिया मानसी गढ़वे ने। फॉरवर्ड पास दिया, 30 सेकंड के अंदर लगाना होता है लेकिन 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। उसके बाद एक बार फिर से अटैक होता हुआ केरल की तरफ से, और 2 क्वार्टर के बाद ये छोर बदला गया। अब केरल बाईं से दाईं तरफ और महाराष्ट्र दाईं से बाईं तरफ खेलते हुए। सफेद कैप में इस समय केरल अटैक करती हुई, जबरदस्त अटैक, लेकिन डिफेंस काफी अच्छा है महाराष्ट्र का। और क्या यहाँ पर थ्रो कर पाएंगे? डायरेक्ट थ्रो किया गया नंबर 10 में अंजलि कृष्णा के द्वारा केरल के, और बहुत थोड़े से परेशान है कि एंगल कैसे गलत हुआ। काफी दूर से थ्रो किया, 6 मीटर के दूर से, लेकिन गोल पोस्ट के बाईं तरफ से गेंद बाहर चली गई, बॉल बाहर चली गई। और इस समय महाराष्ट्र की तरफ से सियाली जी जो कि कप्तान है, देखते हुए कि क्या किसको पास दिया जा सकता है। केवल 13 सेकंड का समय शेष, आगे फॉरवर्ड देना होगा। 10 नंबर में पूजा को दिया, पूजा क्या थ्रो कर पाएंगी? पूजा ने थ्रो किया, वहां पर बॉल को लिया गया। इस समय कोमल के द्वारा, कोमल थ्रो करे, फाउल हुआ। फाउल के बाद
मौका अच्छा था लेकिन पेनल्टी मिला है और पेनल्टी 6 मीटर के अंदर से ली जाएगी। 5 मीटर से पेनल्टी शूट लिया जाएगा। पेनल्टी मिली जिस तरह से फॉल किया गया। और इस समय केरल के गोलकीपर तैयार विस्मय भी, और गई है 4 नंबर में मानसी गढ़वे। महाराष्ट्र की तरफ से पेनल्टी लेने के लिए 5 मीटर के अंदर से पेनल्टी ली जाती है, 5 मीटर की लाइन से। रेड जोन 2 मीटर होता है जहां बिना गेंद लिए आप नहीं जा सकते। पेनल्टी जोन ग्रीन होता है, साइड में जो इशारे लगे 5 मीटर से पेनल्टी शूट लिया जाता है। और येलो 6 मीटर होता है, वहां से डायरेक्ट आप थ्रो नहीं कर सकते अगर आपको पेनल्टी भी लेनी है तो। और यह गोल शानदार तरीके से बाएं हाथ से मानसी गढ़वे का सुंदर प्रयास, गोलकीपर विस्मय को पूरी तरह से बीट किया। और इस समय महाराष्ट्र की टीम 3-2 से आगे चलती हुई, महाराष्ट्र की टीम अभी तक इस मुकाबले में हारी नहीं है। Well, that was a good penalty shot by Team Maharashtra. What a score. They have moved ahead, inched ahead as they were 2 goals down. Now the scoreline has changed to 3 goals to 2 in favor of Maharashtra. We'll have to wait and watch what Kerala has in response to that scoreline. And you could see Kerala is inching in closer and well defended by Sayali, the international player for Team Maharashtra. Both teams have a group of top players to boast about. And that was a good strike by Kerala player. But unfortunately it hit the sidebar and couldn't go in. And then there you see goalkeeper is taking her time, passing to Rupal of Team Maharashtra. Maharashtra is taking the chances. Maharashtra is looking for that, taking that advantage further, but we'll have to see what response does Kerala has, and they are moving forward. You can see that both the teams, and that's a 30-second hooter by the judges. The ball has to change hands, and Kerala again in possession of the ball. They'll have to do something. They'll have to create some magic, and that's a missed pass by Team Kerala. Maharashtra again coming to attack. Maharashtra taking their time, moving in closer. There you could see Kerala in the white, Maharashtra in blue cap. Maharashtra on attack over to Kulwinder. धन्यवाद भरत सचदेवा। 3-2 से महाराष्ट्र इस समय आगे। तीसरे क्वार्टर में अच्छा प्रयास किया था लेकिन गोलकीपर का उतना ही अच्छा बचाव। विस्मय के ऑफ केरला अपने दाएं हाथ को स्ट्रेच करते हुए गेंद को गोल में जाने से रोका। काउंटर अटैक बनता हुआ 20 सेकंड का समय शेष, और केरल की तरफ से अंजलि कृष्णा बाएं फ्लैंक से गेंद को लेकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ जूझते हुए 10 नंबर की कैप में पूजा के ऑफ महाराष्ट्र फाउल हुआ। और एक बार फिर से अंजलि कृष्णा के पास गेंद फॉरवर्ड जाती हुई बड़ी तेजी के साथ बॉल उन्होंने अपने सिर के आगे रखी, उसको हिट करती हुई अपने सिर से बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी काव्या को। काव्या आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर शॉट लेंगी काव्या ने दिया अपने साथी खिलाड़ी आर्चर को, जो कि कप्तान है, और आर्चर ने दिया इस समय 5 नंबर की जर्सी में। और गरिश्मा ले सकती थी लेकिन गरिश्मा ने पास देने की कोशिश की बाएं फ्लैंक में गोल के बाहर, लेकिन वो गेंद को रिसीव नहीं कर सकी। और एक अच्छा मौका था, और मैं समझता हूं कि अगर डायरेक्ट प्रयास किया जाता गरिश्मा के द्वारा तो शायद ये गोल हो सकता था। 3-2 से आगे महाराष्ट्र। ये तीसरा क्वार्टर चलता हुआ, 2 मिनट 30 सेकंड का समय शेष, और अब जो 30 सेकंड के अंदर गोल करना होता है उसके लिए केवल 14 सेकंड बाकी। फाउल हुआ था एक बार फिर से महाराष्ट्र के पास गेंद, और फाउल कर बैठे अब केरल के पास। केरल को अब 30 सेकंड शुरू हो चुके हैं। केरल की तरफ से अंजलि कृष्णा गेंद के साथ उनके साथ जूझती हुई महाराष्ट्र की राजश्री से गेंद नहीं ले पाई, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को दिया गरिश्मा को। गरिश्मा गेंद लेके आगे बढ़ना चाहती थी, फाउल किया गया वहां से आली कप्तान के द्वारा महाराष्ट्र की, और एक बार फिर से गेंद को संभाल लिया। 4 नंबर में कृपा जरूर थी लेकिन 3 खिलाड़ियों से जूझती हुई 4 नंबर की मानसी गढ़वे, 10 नंबर की पूजा ने अपना गेंद की गोल की रक्षा की, और गोलकीपर भी तैयार थे। इस समय महाराष्ट्र की तरफ से रूपल भी जाते हुए बाएं फ्लैंक से, क्या ये गोल कर पाएंगे? पानी के अंदर बिल्कुल, और डायरेक्ट थ्रो लेंगे या नहीं? केवल 11 सेकंड का समय शेष, और उनके साथ जूझती हुई आर्चा जो कि टीम के कप्तान है केरल की, पास अभी भी दिया गया, और अच्छा प्रयास किया गया बाएं हाथ से महाराष्ट्र की मानसी गढ़वे के द्वारा, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी। विस्मय भी ने शानदार बचाव किया, और केरल अटैक करता हुआ केवल एक डिफेंडर के साथ, क्या यहां से वो ले पाएंगे? फाउल हुआ महाराष्ट्र का, थ्रो मिला, और गोल पोस्ट के ऊपर ये टकरा गया। अच्छा मौका था, डायरेक्ट प्रयास किया गया था
इस समय केरल की तरफ से कृपा के द्वारा, लेकिन गोल की कृपा उन पर नहीं बरसी और गेंद गोल पोस्ट पे टकरा गई। इस तरीके से 3-2 से अभी भी आगे 1 मिनट 6 सेकंड का समय बाकी। भारत Yes, Kerala are trying their best to equalize that score line with less than 1 minute left. Maharashtra still in pole position, and there they go. Maharashtra is trying their best, and that's a 30-second hooter. We have less than 50 seconds to go. Team Kerala has one opportunity. Let's see if they can capitalize on this one. Kerala has to do something fast. They can't slow down the game now. It's the last 30 seconds to go of this half, of this quarter. They'll have to put in some effort. They will have to bring in some strategy. And that's advantage Maharashtra. One member, cap number 2, Archa A, who's also the captain of Kerala, has been asked by referee Karamveer to step out by not adhering to, complying to the rules of the game, which is the players have to follow certain regulation. They cannot throw the ball, or they cannot disrupt the match proceeding by. And Kulwinder, that's a very important thing which a lot of players have to keep in mind is when the referee is giving a signal, they'll have to listen to that. At any point they disrupt the proceedings, the referee has all the right to chuck them out for that temporary suspension. और ये उसका खमियाजा भुगतना पड़ा आर्चा ए को, जो कि टीम के कप्तान है। केवल 23 सेकंड का समय शेष। क्या यहाँ पर बराबरी का गोल कर पाएंगे, देखने वाली बात है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र की टीम अटैक करती हुई, महाराष्ट्र की टीम इस समय तैयार है यहाँ इंतजार करते हुए। और अब ये गोलकीपर को गेंद दी गई। 20 सेकंड का समय है और यहाँ पर 7 नंबर की कैप में महाराष्ट्र की गोल करना चाहती थी राजश्री, दाएं हाथ से। अभी भी समय है, क्या राजश्री 20 सेकंड में इसको कर पाएंगे? और गोल पोस्ट के ऊपर से निकाल दिया। गोलकीपर ने पहले शॉट को बचाव किया, विस्मय ने उस दूसरे गोल पर एक बार फिर से प्रयास किया गया, लेकिन इस बार राजश्री को अवसर नहीं मिला गोल करने का। गोल पोस्ट के ऊपर से गेंद बाहर चली गई और इस समय जूझती हुई काउंटर अटैक, और इसके साथ ही ये हूटर की आवाज, और ये तीसरा क्वार्टर भी समाप्त हुआ। और यहाँ पर तीसरे क्वार्टर की समाप्ति के बाद महाराष्ट्र 3-2 से आगे चलता हुआ इस राउंड रॉबिन मुकाबले में। और उसके पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डर अब है किस बात का, जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। That small little mistake. Remember, one mistake of 5 seconds is a goal. यकीनन तौर पे बहुत सही बात फरमाया आपने। एक छोटी सी भी गलती हॉकी के इस तेज तर्रार खेल में, अब गति वाली खेल है, 5 सेकेंड से अंदर भी कई बार गोल देखने को मिले हैं। और मुझे याद आता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मुकाबला, भारतीय टीम को लगा 6-0 से पीछे चल रही थी कि शायद मुकाबला अब 3 सेकेंड शेष थे, और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 सेकेंड्स के अंदर बात कर शूटिंग एरिया से जाकर के और एक लंबा हिट लेकर गोल किया था। तो आप इस तरीके के हॉकी के तेज तरार खेल में आखिरी मिनटों में भी कोशिश करेगी बंगाल की टीम। एक बढ़िया मूव इस समय शूटिंग सर्कल के अंदर, खतरा टलता हुआ। अभी भी देखना होगा बॉल पोजीशन बंगाल के पास, और संभवतः यहां से पेनल्टी कॉर्नर। The finish has to come from West Bengal. Under 2 minutes of play remaining out here. In fact, to be precise, it's 118 seconds. Remember, 118 seconds is a long, long time. West Bengal will take their own sweet time to decide how do they do this, how do they implement this. They're looking at that equalizer coming here in the second quarter. And if they do get that, all the hard work that the team has done over the last 2 quarters will be coming good for them. And they'll go back with happy smiles. All set now to take that penalty corner. They got quite a couple of them. Stopped well. No.
very good in defense is the Uttar Pradesh side. This is the area where Bengal has to be extremely vigilant. They have to convert that penalty corner, and on the other hand, Uttar Pradesh has been extremely good in the defense. यकीनन तौर पे जो भी पेनल्टी कॉर्नर मिले उससे अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाई है टीम। 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं और यहाँ पे उन्हें काम करने की दरकार होगी। फिलहाल शूटिंग सर्कल के अंदर देखिए बिजली की गति की मानिंद जैसे यूपी टीम को बॉल मिलता है, मिडफील्ड में कितना बेहतर बॉल हाई प्रेसिंग करके सप्लाई करके, और ये बहुत अच्छी स्किल बंगाल के लिए। 5 नंबर में नितिन नुपा ने, इससे पूर्व भी नितिन नुपा ने गोल कर चुके हैं, 2 गोल 36वें नेशनल में। और अंपायर बताते हुए कि संभवतः थोड़ा सा इस समय बेहतर तरीके से इस बॉल को लेने की दरकार थी। वापस बंगाल शूटिंग सर्कल के मुहाने पे एक बार और अच्छी स्किल दिखाई डिफेंस की मिलन यूपी। Wasim Khan was outstanding there for West Bengal. He just ran down there like a cheetah on the prowl, wanting his prey, but then was dispossessed by the UP defense. Wild one there, no success coming their way. That was Sunil Yadav for the Uttar Pradesh side. So we're now into the last 30 odd seconds of play here in the second quarter between Uttar Pradesh and West Bengal. 1 goal separates the two sides. West Bengal, I would really say, full marks to them. They got some wonderful possession in the last 14 or 15 minutes of the second quarter, and it's a pity that they have not been able to equalize out here. This is the difference. Sometimes luck doesn't come your way. Oh, brilliant! Absolutely brilliant, but the finish once again is lacking. The finish, that's the word which I'm looking for. The finish is just not coming from West Bengal into the last second of play out here. Look at this ploy there. यकीनन तौर पर फिनिश की थोड़ी सी समय दरकार थी। बहुत अच्छा मूव बनाया था और इस समय पहले हाफ की समाप्ति के बाद स्कोर लाइन देखे 1-0 की बढ़त पे, और बंगाल की टीम ने जरूर प्रभावित किया, भले ही ये मुकाबला यूपी 1-0 की लीड पे हो। So then that's the news out here. Uttar Pradesh leading by 1-0. We'll of course be back for the third quarter of this match after half time. अजनबियों को पल में अपना बनाया, अमूल the taste of India। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया, अमूल the taste of India। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल the taste of India। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल the taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल the taste of India। They're trailing by 3 goals now, with the scoreline being 5 goals to 2 in favor of Team Maharashtra. What a turnaround this has been for these brave hearts from the Marathas, land of Marathas, the land of the warriors. Amazing, amazing regrouping. They have brought the team together, and that shows the team spirit, the bonding, the understanding, and that's Kerala hitting back 1 goal, leveling, making scoreline 3 goals to 5. But still Maharashtra has a 2-goal lead. We'll see. And that's, there you go. We can't say anything, Kulwinder, till the last breath, till the last minute. Both the teams are in the attacking mode. They'll have to do something. Maharashtra, if they have any chance to take that lead forward from 5 goals to 3. और ये देखिए किस तरीके से रिप्ले में
टॉस दिया गया, गोल किया गया केरल की तरफ से। और अभी 14 सेकंड का समय शेष। महाराष्ट्र इस समय अटैक करता हुआ सेंटर में। इस समय कोमल जी जो कि टीम के कप्तान है महाराष्ट्र के, उनके पास थी गेंद लेकिन छीनी गई। और अभी 1 नंबर के पास है जो महाराष्ट्र की, और यहाँ पर प्रयास किया गया 7 नंबर के कैप में राजश्री के द्वारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। और 30 सेकंड का समय पूरा हुआ। 3 के मुकाबले 5 गोल से इस समय आगे महाराष्ट्र। काउंटर अटैक इस समय बड़ी तेजी के साथ केरल की कृपा के पास इस समय गेंद, कृपा ने गेंद को लिया आगे, फॉरवर्ड तैरते हुए गेंद को उन्होंने अपने कब्जे में किया और प्रयास किया गोल के लिए, सीधा गोल पोस्ट पे गेंद टकराई। मैं समझता हूं कि 8 फीट की दूरी से, 8 मीटर की दूरी से ये उन्होंने प्रयास किया था। 8 मीटर बहुत होता है और 24 फीट के आसपास होता है, वहां से पास दे सकती थी। 2 खिलाड़ी वहां पर आगे थे। ये देखिए किस तरीके से एक बार फिर से अभी गेंद 12 नंबर की कैप में कोमल के पास, जो कि टीम की कप्तान है महाराष्ट्र की, और केरल के खिलाड़ियों ने इस गेंद को छीन लिया। केरल की तरफ से कृपा के पास गेंद, इत्मीनान के साथ आगे बढ़ते उनके साथ 2 नंबर की कैप में रूपल उनसे मुकाबला करती हुई, लेकिन फाउल हुआ रूपल का और केरल को एक फ्री थ्रो मिला। इस समय 8 नंबर की केरल की तरफ से क्या गोल कर पाएंगी पूजा एस ने दिया अपने साथी खिलाड़ी को उनसे जूझते हुए। 4 नंबर ने फाउल किया मानसी गढ़वे ने महाराष्ट्र की तरफ से। केवल 7 सेकंड का समय बाकी। क्या यहाँ पर अंजलि कृष्ण प्रयास करेंगी? 2 नंबर की जर्सी में आर्चा कैप्टन को दिया गया, लेकिन वहां फाउल कर बैठी, दबाया गया, पुश किया गया, होल्ड किया गया और फाउल हो गया। And that was a ball there by Team Kerala. Very smart play by Maharashtra's champion player, the star player Sayali in number 5, and slowly Maharashtra is coming back with less than 3 minutes to go in this final quarter. We'll wait and see if they have what it takes to prevail and be the winner of this contest. Maharashtra taking their time, but they'll have to keep an eye on that 30-second hooter, which might happen anytime, and the ball is going to change hands. Coming back with Team Kerala, and Kerala know that they have less than 3 minutes to go. If they have any chance to regroup and bring that score level by scoring 2 successive goals, they'll have to do something. Lot of pressure building up from Maharashtra defender Sayali, and they are ensuring that there is no room left, and that's a foul by Team Kerala. Maharashtra back in the reckoning with less than 2 minutes to go. Maharashtra is taking their time, passing in slowly. They know that they have to save these critical less than 2 minutes if they have any chance to win this contest. Number 10 from Maharashtra, Pooja K, passing it to her forward player, but Kerala were quick to get the ball back in the hands and then moving forward. They'll have to do something faster, Kulwinder. They have less than 1.5 minutes. 1.5 मिनट का समय बाकी। क्या 2 गोल की बढ़त है महाराष्ट्र की, उसको कम कर पाएगी केरल की टीम? लगातार आक्रमण करती हुई महाराष्ट्र की तरफ से इस समय फाउल हुआ सयाली जी जो कि टीम का कप्तान है, और केरल को यहाँ पर शॉट लेने को मिला। केरल की तरफ से शॉट लेने का प्रयास किया गया पूजा एस के द्वारा, लेकिन इतना कमजोर था, टाइम आउट लिया गया महाराष्ट्र के तरफ से। महाराष्ट्र के कोच विमल ने ये टाइम आउट लिया है और यहाँ पर अपनी टीम को कुछ बताते हुए केवल और केवल 1 मिनट और 15 सेकंड का समय शेष। महाराष्ट्र के कोच विमल अपने सभी खिलाड़ियों को कुछ समझाते हुए कि आपके पास 2 गोल की बढ़त है और आप इस बढ़त को बरकरार रखिए, कोई ऐसी गलती मत कीजिए डिफेंस में, और बीच में पानी भी पीते हैं जो खिलाड़ी हैं। बहुत मुश्किल है पानी के अंदर तैरना, बॉल पर नियंत्रण रखना, और आपको ये भी पता है कि केवल 30 सेकंड के अंदर आपने शॉट लेना है, गोल करना है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये जो और यहाँ पर जो गोल है, जो गोल पोस्ट है, वो 3 मीटर चौड़ाई में होता है और 1 मीटर ऊंचा होता है, उसके अंदर आपको गोल करना है। तो बहुत मुश्किल है ये काम। 30 सेकंड के अंदर आपको, एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ। गेंद इस समय महाराष्ट्र के पास, 2 बॉल इस समय मैदान पर। और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बॉल आई थी उनको बाहर भेजा गया। महाराष्ट्र आक्रमण करता हुआ, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप समय को भी आप
व्यतीत कर सकते हैं। महाराष्ट्र की तरफ से अटैक होता हुआ क्या गोल कर पाएंगे, यहाँ पर देखने वाली बात है। महाराष्ट्र के 7 नंबर की जर्सी में राजेश्वरी ने गोल कर दिया है। And the referee has allowed that. It's a foul committed by Kerala, and Maharashtra has a chance to increase that lead from 5 goals to 3 with that penalty shot. We will wait if Maharashtra's Mansi Gowde will be able to capitalize on that penalty shot. And there you go, what a save by Team Kerala goalkeeper. That could have been a critical lead, but less than 45 seconds to go. Maharashtra have a chance, another chance to increase that lead. There you could see that was a very important save, but with time running out, Kerala knows that they have very thin chance to make a comeback with 2-goal margin, and Maharashtra will waste time, have thrown the ball in the no man's land. Last 15 seconds for Kerala. और ये रणनीति रहती है कि 30 सेकंड का अगर समय आपका व्यतीत हो रहा है तो गेंद को बहुत दूर डाल दीजिए ताकि उनको लाने में समय लगे, और केवल 6 सेकंड का समय शेष है। 3 के मुकाबले 5 गोल से आगे, और यहाँ पर फाउल कर बैठे। क्या यहाँ पर होगा प्रयास, लेकिन नहीं। और इसके साथ ही महाराष्ट्र ने केरला को 3 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर दिया है। What a comeback that was. Team Maharashtra, the winner of 36 national games. There you could see the recap of that match. The last shot which goes out, and Maharashtra has proved once again that that's a team which will be remembered for this comeback by being 2 goals nil, 2 goals down in the first quarter. Kulwinder, what a comeback by these great warriors of Maratha land. केरल ने पहले क्वार्टर में 2 डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है। लाइफ के मजे लेने से ये नहीं डरता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। और यहाँ पर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही हैं गोवा की। यहाँ से दिख रहा है प्रदन्या गोस्वामी हैं। प्रदन्या यहाँ पर पोल माउंट पर बोथ साइड कॉम्बिनेशन करती हुई टॉप पर पहुंची हैं। ताड़ासन की मुद्रा, ये बगल का फरारा, ये हाथ का फरारा।
टॉप पर जाने का प्रयास या साइड लैंडिंग होगी, वहां से साइड लैंडिंग की कोशिश लग रही है देखने से। जी हां, साइड लैंडिंग, और इसके साथ ही प्रदन्या गोसावी का समय समाप्त होता हुआ। चेहरे के भाव बहुत स्थिर और अपने टीम के बाकी सदस्यों और कोचेस से मौन सहमति लेती हुई कि मेरा प्रदर्शन कैसा था। टॉप पर पहुंची और बहुत सहज भाव वहां से आते हुए, और लैंडिंग भी अच्छी हुई है। ये देखिए, स्प्रिया तिवारी रोप रैंक पर टॉप पर हैं, चंचल पाठक पोल रैंक में टॉप पर हैं, सोनिया कुशवाहा अब भी लीड कर रही हैं। और बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ का कोई भी खिलाड़ी टॉप 5 में नहीं दिखा। मुस्कान के ओवरऑल स्कोरिंग 11.05 के रहे हैं। और यहां पर पुदुचेरी की खिलाड़ी रोप पर अपना प्रदर्शन करती हुई निद्रासन की मुद्रा, क्रॉस, बिल्कुल टॉप पर जाती हुई और वहां से पद्मासन बनाया है और वहां पर थोड़ा सा अंगूठे में जैसा चाहती थी वैसा फ्लिप नहीं हो पाया। वादी क्रॉस, एक और वादी, और यहीं से क्या ऊपर से फ्लिप करेंगी या फिर यहीं से डिसमाउंट होगा। जद्दोजहद है और ये सिंपल लैंडिंग। ये पोल पर जो मुकाबले चल रहे थे, और अब रोप पर देखिए निद्रासन बहुत सहज शांत स्थिर होती हैं और स्थिरता में ही पद्मासन, लेकिन यहाँ के बाद थोड़ा सा जगल कर गई। ऐसा लगा कि थोड़ा जैसे फ्लिप करना चाहती थी वैसे कर नहीं पाई। सोनिया कुशवाहा अब भी टॉप पर चल रही हैं। प्राजक्ता इस समय पोल मलखम पर हैं। प्राजक्ता गावड़े पोल मलखम पर। ये नटराज आसन की मुद्रा, संघर्ष होता हुआ यहां पर पैर का फरारा, और ये बजरंगी और ये देखिए डबल एंड एलिमेंट कर रही हैं। ये ज़रूरी होता है, हाथों पर नियंत्रण बनाए रखने की ज़रूरत। फ्लेक्सिबिलिटी और रिफ्लेक्सेस कमाल के हैं। स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, ये तीनों एस का कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिलता है। और यहां से साइड लैंडिंग पर जाएंगी या समरसॉल्ट के लिए ऊपर जाएंगी, देखते रहिए। समरसॉल्ट लगेगा क्या? टॉप पर गई हैं प्रेसिंग एलिमेंट। जी हां, समरसॉल्ट की तरफ जाने का प्रयास होता हुआ, उससे पहले बैक समरसॉल्ट लगा है लेकिन लैंडिंग परफेक्ट नहीं हुई।
प्राजक्ता गावड़े ने बैक समरसॉल्ट पर गई थी, थोड़ी सी परेशानी वहां पर महसूस करती हुई प्राजक्ता, और मनचाहा परिणाम नहीं मिला। प्रयास अच्छा किया था, और ये देखिए ये पैर का फरारा हुआ, और ये बैक समरसॉल्ट था जिसकी लैंडिंग अच्छी नहीं हो पाई। सोनिया कुशवाहा अब भी लीड कर रही हैं और चंचल पाठक दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहिए जो नियम कहते हैं कि स्प्रिया तिवारी और राधा राजपूत थर्ड और फोर्थ पर होने के बावजूद ये जो कंपटीशन इंडिविजुअल होगा उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक टीम के सिर्फ टॉप 2 ही क्वालिफाई करते हैं। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत मलखम्ब को भी शामिल किया गया, और जो नए राज्य हैं छत्तीसगढ़ जैसे, वहाँ पर भी इस खेल को धीरे धीरे लोकप्रियता मिल रही है। और इस समय मेरे साथ है मनोज प्रसाद, जो कि छत्तीसगढ़ की टीम के कोच हैं, और छत्तीसगढ़ की पुरुष टीम ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया। तो पहले मनोज जी, हम आपको बधाई देते हैं कि छत्तीसगढ़ की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मलखम्ब की शुरुआत कैसे हुई? अच्छा सर, मेरा नाम मनोज प्रसाद है, और छत्तीसगढ़ में मलखम्ब शुरुआत होने के कारण हमारा प्रशासन है सर, और पुलिस प्रशासन भी है जिन्होंने हमें बहुत इसके लिए अप्रिशिएट किया सर, कि हमारे जो वहाँ के नक्सली प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पे खेल के क्षेत्र में बच्चों को लाना, जैसे कि उनको बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड नहीं हो पाता सर, और उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ है। तो वहाँ की प्रशासन ने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया कि आप मलखम्ब सिखाए, और बच्चों को यहाँ से इन बच्चों को इस दुनिया तक लाने के लिए बहुत प्रशासन ने मदद किया। किस तरह आपने इन बच्चों को चयन किया, उनमें आपने क्या खूबी देखी? सर, इनमें तो बच्चों में ऐसे ही नेचुरल प्रकृति की इनमें ताकत है, बल है, और ज़रूरत था इन्हें एक सीधा मार्गदर्शन देने का और इन्हें एक रास्ता देने का सर। तो मेरे पास जो भी ज्ञान था, जो भी मेरे पास समय था, बच्चों को दिया सर, और बच्चों ने आज इस 36वीं राष्ट्रीय खेलों में जिस प्रकार का हमारे बच्चे सारे जूनियर के बच्चे हैं सर, सीनियर के बच्चों के साथ मुकाबला करके ब्रॉन्ज मेडल आया। तो सर उन्होंने अभी जैसे मलखम्ब शुरुआत हुआ है उस दिन से आज तक बहुत कठिनाइयों से, परिस्थितियों से जूझा है, और उन्होंने बहुत अपना प्रैक्टिस किया है। तो आज उन्हीं का ये फल है सर कि आज ब्रॉन्ज मेडल हमारा छत्तीसगढ़ प्राप्त किया है सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में मलखम्ब को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा प्रयास किया जाता है सर, किया जा रहा है। अभी आप सुने होंगे सर, बालोद डिस्ट्रिक्ट और मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में सर वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, जन नेता लोग हैं, वो बहुत सारे मलखम्ब के जो ग्रोथ देखकर अभी आगे आ रहे हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े बड़े अभी सेंटर बन रहे हैं जो भारत में अभी कहीं नहीं है, उतने बड़े बड़े स्टेडियम बन गए सर, और वहाँ पे हर एक स्टेडियम में 20 मलखम्ब 25 मलखम्ब लगे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सुविधा मिलना शुरू हो गया है सर, और इसका पूरा श्रेय शासन प्रशासन को जाता है। अच्छा, और अकादमी की भी बात है, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर में अकादमी की स्थापना की जा रही है, इस बारे में क्या बतलाना चाहेंगे आप? अकादमी के लिए सर 2 करोड़ 83 लाख रुपया हमारा सेंक्शन हो गया है सर, और काम प्रोसेस में है, और शासन इसके पीछे लगा हुआ है सर, और वो चाहती है कि इसका पूरा इंटरनेशनल एक लुक दिया जाए, ताकि वहाँ के जो बच्चों जो निकल के आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय खेलों तक सीमित ना रह जाए, उनको ओलंपिक तक पहुँचाने की पूरी तैयारी प्रशासन कर रही है सर। चलिए, आपने हमें इतनी जानकारी दी, आपको मनोज प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस ढंग से मलखम्ब का खेल लगातार लोकप्रिय हो रहा है, और सब आगे आ रहे हैं इस मलखम्ब के खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए। 50 सालों से जो बना हर मेज की शान, वो है अमूल चीज। हर दस्तरखान पे बनाया अपना अलग मकाम, वो है अमूल चीज। कहीं लूटी शाही वाहवाही तो कहीं बना दिल की जुबान, वो है
अमूल चीज, भारत की लजीज विरासत का एक अजीज नाम, वो है अमूल चीज, जिसे हर किसी ने प्यार से कहा, ये मेरा चीज है। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। में लगे रहे, शूटिंग सर्कल में जो आक्रमण हो रहे थे उनको डिफेंड करने में लगे रहे। एक आध मौकों को मिलेंद छोड़ दिया जाए तो उन्होंने कभी भी गेंद को अपने विपक्षी दल की वहां भी लाने की कोशिश नहीं कर सके, लेकिन इस बार शानदार बचाव किया था पश्चिम बंगाल के डिफेंडर्स ने। एक और कोशिश, मिलिंद में कह रहा था कि कुछ मौकों को यदि छोड़ दिया जाए इस क्वार्टर में तो पश्चिम बंगाल की टीम कुछ कर नहीं सकी है। देखो ज़्यादा डिफेंस करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप 1 गोल डाउन है, you are down by a goal, and what's important is that you need to get the equalizer. The more defensive that you get to, it will only mean that you're playing only in your half. You need to play in the other half to get a goal, isn't it? जी, ज्यादा रक्षात्मक होना भी अच्छी बात नहीं, जब तक आप आक्रमण नहीं करेंगे आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से आक्रमण पर और बिल्कुल बंगाल की डी के मुहाने से पोजीशन लिया है अपने पास, लेकिन बड़ी सफाई के साथ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी गेंद पर कब्जा कर रहे हैं। 23 मीटर की लाइन से आगे आने की कोशिश, वहां पर उत्तर प्रदेश की 10 नंबर की जर्सी में सुमित मौजूद थे और एक बार फिर से गोल करने का प्रयास गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने, लेकिन गोलकीपर ने शानदार बचाव किया जो उनके हैंड कार्ड थे उनसे। ये एक बार फिर से मिलिंद बहुत अच्छी कोशिश थी उत्तर प्रदेश की ओर से। Yes, very good stick work there coming from Evoy Ekka. Another name from the Jharkhand belt, Albert Ekka, remember Paramveer Chakra for India. A lot of Ekkas, Topnos, Lakras have all come from the Jharkhand belt who have got jobs in West Bengal and for whom they play out there. You have Asim Lakra in this outfit. You also have Tirke, Amon Miraj Tirke. So all these names from the Jharkhand belt have been wonderful players contributing to hockey. Now West Bengal there on the attack. Where are the other two players? All by himself. That's not what they want. Need the cohesion. Yes, that's good. Give it away. Blocked well. Moving on his own out there is Kunjan Topno. There it is. There it is. This is exactly what West Bengal wanted. The juice came at the right time. 3 minutes to go in this quarter. Super goal there. This is what West Bengal wanted. बेहतरीन गोल मिलिंद पश्चिम बंगाल की ओर से। आप लगातार जिस बात की ओर ध्यान खींच रहे थे कि इन्हें आक्रमण करना चाहिए और पश्चिम बंगाल की 19 नंबर की जर्सी में असलम लाकरा ने ये गोल किया है। बहुत सुंदर गोल, बहुत सुंदर फील्ड गोल और अब इस मैच का एक नया रंग मिलिंद हमें देखने को मिल सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश एक, पश्चिम बंगाल एक और तीसरे क्वार्टर का मात्र लगभग 3 मिनट का खेल खत्म होने के लिए बचा है। Wonderful play there by West Bengal out there. How it gladdens our hearts to see this hockey. They were actually all at sea in 13 minutes and that 5 seconds made that huge difference. I kept on saying attack, attack, Tora, 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 and that's the only way you can get a goal, and how well they've got this. Now don't relax should be what they must tell themselves. Don't relax, get into the move. It doesn't really matter if you're 1-all at the end of the third quarter, but you've done your job. You're in the third quarter to equalize, and this game, as you rightly said, is now alive and kicking. मिलिंद, पिछले क्वार्टर फाइनल मैच में हमने देखा था कि किस प्रकार तमिलनाडु के आक्रमण के कुछ सेकंड्स के अंदर ही हरियाणा ने बेहतरीन प्रति आक्रमण करके गोल को गोल पोस्ट में डाल दिया था तमिलनाडु के। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता गोल करने में, सेकंड्स लगते हैं और अभी तो पूरे 15 मिनट का चौथा क्वार्टर भी वेस्ट बंगाल के पास है। तो जबकि इस क्वार्टर में लगभग मिलिंद 2 मिनट का खेल शेष है, पश्चिम बंगाल की टीम में एक नया जोश, एक ऊर्जा या यूं कहिए कि टॉनिक उन्हें पिला दिया गया है। उन्हीं के खिलाड़ी ने जो गोल किया था 17 नंबर की खिलाड़ी ने, अलसिम लाकरा ने। Absolutely, I think that's the word. They've got that tonic, the much required tonic with a couple of pills that they've had to take at this point of time. Nitish Nipune, Evoy Ekka,
Nitish Nipune again. Uttar Pradesh now must be wondering what hit them, and hit them hard. They are now mounting the pressure, they are mounting the attack, falling back. We are into the last 60 seconds, virtually the last 60 seconds of play out here. The clock ticking away for both the sides. But I must compliment the West Bengal side for some wonderful display in the last 3 or 4 minutes of play. I think everyone had given up hope. I hadn't given up hope. जी मिलिंद, अभी तक हमने रिमांशु, तरुण अधिकारी, नितेश निपाने का खेल तो देखा था, लेकिन इस गोल ने अलसिम लाकरा को हम सब के लिए ऐसा लगता है बहुत परिचित सा बना दिया है. So there you are. The countdown has begun in the third quarter with close to 20 odd seconds remaining here in the third quarter, and how these two sides will go back into the dugout for the final 15 minutes of play. The two sides will now be content to play it out, but that's again not the right approach. Those 10 seconds can get you a goal, but that's the way they have chosen to do it, just into the last 1 second of play. And there you are. The third quarter ends with the two sides, Uttar Pradesh and West Bengal, have got 1 goal each. So Dinesh, with Uttar Pradesh getting that first goal, West Bengal the second goal, the end of the third quarter, this is the way this match has panned out. ये देखिए, पहला गोल जो उत्तर प्रदेश की ओर से किया गया था, और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर ये शानदार फील्ड गोल जो लाकरा ने अपनी टीम के लिए किया. तो इस तरह से 1-1 की बराबरी है, जबकि तीसरे क्वार्टर का खेल समाप्त हो चुका है. मिलिंद, हमेशा हॉकी में आगे अजनबियों को पल में अपना बनाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. उत्साह के साथ और एक मनोबल के साथ खेलें, जिससे न सिर्फ हमें बल्कि स्टैंड्स में जो दर्शक बैठे हैं और डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से जो सैकड़ों, हजारों, लाखों दर्शक इस अच्छी हॉकी को देख रहे हैं, वो इसका आनंद ले सकें. Rajkumar Pal there with his back to us will take the first in the back that he does now. And when they walked out, Dinesh, the two sides after the third quarter, just about 2 seconds ago, I could very clearly see the West Bengal side, a more happy bunch. And why not? Because they've got that second goal in the equalizer, which they got in the third quarter. Now they're Uttar Pradesh, making sure that they will get into the aggression mood, the two of them. And the other thing is Abhinav Pandey has been outstanding. Likewise, Prashant Kumar has also been tested, and these two goalkeepers have also done an admirable job. अभिनव की ना रहने से पश्चिम बंगाल की टीम के मनोबल पर असर पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन यहाँ पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश का आक्रमण, मिलिंद, मैं कहना चाहूँगा आक्रमण भी कई तरह के होते हैं. एक बेफिक्र आक्रमण, यदि आपके पास बढ़त है, लीड है, और एक वो आक्रमण जो सोच समझ के सावधानी से किया जाए. तो चौथे क्वार्टर के आरंभ में आपने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश का जो आक्रमण है बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है. Yes, Uttar Pradesh, who got that first goal through Faraz Khan, and then the equalizer after a lull in the second quarter when there was no goal, came in the third quarter. Look at that wonderful pass there, but there was no one to really take possession of that ball. Ball still with West Bengal. That's the ploy that they will do. That's the ploy of making sure that you get your teammate into possession, but dispossessed there by the Uttar Pradesh
defender, allowing them the liberty to take the strike and move on. Both the players doing well. It is Kunjan Topno and Bengal through Kishore Lakra, the captain, onto the far side with Tarun Adhikari not able to control the ball, and the ball goes harmlessly onto the back line. So yes, we are just into the second minute of play here in the final quarter. This is the fourth and the final quarter, brought down very heavily, but I suspect that the umpire said that was deliberate. Uttar Pradesh moving swiftly there. You got Pawan Rajbar into the striking circle. There's no one there, and West Bengal with a combination of 4 of their defensive players now moving up very quickly. Nitish Nipune, he's been in the thick of action. Yes, doing well, but carried there and allowing Uttar Pradesh to take that free hit. For Uttar Pradesh, Atul Deep. Precious moments for both the sides. दोनों ही टीमें देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक दबाव में खेलती हुई। हौसले की बात की जाए तो हौसले से जो गोल होना चाहिए वो इस क्वार्टर के पहले हो चुके हैं, और अब देखना यह है कि किस प्रकार से दोनों टीमें रणनीति बनाती हैं। और यहां पर एक बार फिर से आक्रमण उत्तर प्रदेश का, और एक पेनल्टी कॉर्नर और मिला है उत्तर प्रदेश को। ये जिस तरह से गेंद के सामने आ गए थे डिफेंडर्स पश्चिम बंगाल के, उस पर आपत्ति की एम्पायर ने, और इस तरह से ये मिलिंद जी पहला पेनल्टी कॉर्नर हो सकता है। ये मेरे ख्याल से इस क्वार्टर का शायद पहला पेनल्टी कॉर्नर है, और देखना है कि अब क्या होता है। आप कह रहे थे कि शुरू से खेल आरंभ होता है यदि आप बराबरी पर हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से आक्रमण प्रति आक्रमण हुए, सधे हुए आक्रमण थे, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर जो ये मिला है उत्तर प्रदेश को शायद एक बार फिर से खेल में तेजी ला दे। Yes, good opportunity there for Uttar Pradesh. 1-all here in going into the fourth quarter. Nice one there. No, very feeble from Faraz Khan, who's got that first goal. And these are opportunities which don't come very often in a hockey match. So we are all celebrating unity through sports out here. Scooped well, got down into the circle, striking circle, but thwarted with a good combination there of Rimanshu and Kunjan Topno. So the danger averted for West Bengal, but asking once again, close to 11 minutes of play remaining. We 4 minutes into the fourth quarter. This is the danger that keeps on coming the West Bengal way, and they need to make sure that they don't allow this danger to come their way. मिलिंद, ये उत्तर प्रदेश की टीम का उत्साह था या मनोवैज्ञानिक दबाव की पिछला पेनल्टी कॉर्नर दिशाहीन था? Psychological play, I think, from Uttar Pradesh, and rightly so. You know, you need to play a mind game on your opponent. Will they be able to convert this and move ahead, or will West Bengal be strong in defense? Brilliant, absolutely brilliant there. He has been outstanding there. Abhinav Pandey in goal. Full marks to him. Could have been goal number 2, but tall, 6 feet 1 inches, and the tall man has to tall. एक संभावित गोल को बचाया है, इसमें कोई शक नहीं। शानदार प्रदर्शन अभिनव पांडे का, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के हाफ में खेल होता हुआ लगातार यूपी की टीम अपने पास गेंद को रखते हुए बड़ी जल्दी पोजीशन ले लेते हैं अपने पास। एक बार फिर पश्चिम बंगाल के हाफ में खेल होता हुआ शूटिंग सर्किल के अंदर डी के अंदर आ चुके थे उत्तर प्रदेश के फॉरवर्ड, लेकिन वहां पर फ्री हिट मिला है। शायद साइड लाइन के बाहर गई थी गेंद, और एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ। पश्चिम बंगाल लगातार आक्रमण करने की कोशिश, लेकिन जो भी आक्रमण किया है उन्हें सफलता जरूर मिली है, पर उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने गेंद पर पोजीशन लिया है, गेंद पर कब्जा किया है, वो लगातार जारी है। और यदि इसी तरह से हमले होते रहे उत्तर प्रदेश के, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये खेल और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। मिलिंद,
Yes, Uttar Pradesh, who had 2 victories in Pool B to start off with. On the other hand, West Bengal had only 1 victory in their Pool A. All that is past, all that is history. But we all learn from history, and I'm sure both West Bengal and Uttar Pradesh will learn from that history that we are talking about. Just 9 odd minutes separate the difference between a passage into the semi-final and pack your bags and go home. The question is, who will join Karnataka and Haryana in the semi-finals? The next match, of course, will be between Maharashtra and Jharkhand. But don't go away, because you're watching some scintillating hockey out here. Wonderful dribbling there on AstroTurf. We've seen the skills from the man on television. There was not much of a recording during those times of Major Dhyan Chand. He was called the wizard in hockey. मिलिंद, हमने जितने भी लीग मैचेस होते थे लगभग सारे लीग मैचेस देखे हैं, लेकिन आज ये पश्चिम बंगाल की जो टीम हमें दिख रही है, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही टीम है जो लीग मैचेस में खेल रही थी। संभवतः जो उनका कोच होते हैं, ये उनकी नीति होती है कि एक नया खेल हर नए मैच में उनकी टीम खेले ताकि सफलता उन्हें मिलती रहे। और यहाँ पर एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है उत्तर प्रदेश की टीम को। Yes, I wouldn't like to be in the shoes of the players going into the last minute if the score is 1-all, because after that, as we know, as per the rules of this particular tournament, there is no extra time. It's the shootout. So you can play a brilliant game in 60 minutes, and after that, sometimes it's just your luck. That's it. We saw earlier on a penalty stroke was stopped in the earlier match. So it's sometimes a question of luck, psychological. It could be the brilliance of the goalkeeper. But for the moment, it's a penalty corner which has come the way of the Uttar Pradesh side. Will they take this? Will they go 2-1 up? Will West Bengal stop them in their stride? Stopped well. Passed on. But again, wasted by the Uttar Pradesh. And look at West Bengal. How quickly they moved up. This is the opportunity. But too fast for their liking. नीतीश नुपाने का शानदार मूव, लेकिन नियंत्रण नहीं रख सके गेंद पर और उत्तर प्रदेश की बैकलाइन के पीछे चली गई थी। मिलिंद, हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से ये खेल हो रहा है, तुरंत पोजीशन लेती है उत्तर प्रदेश की टीम, लेकिन एक बात पर भी हमें गौर करनी होगी कि लगातार डिफेंड करने के बाद भी जो मूव बन रहा है पश्चिम बंगाल का, भले ही वे बिरले मूव होते हैं, लेकिन साथ देने के लिए फॉरवर्ड का कोई नहीं होता पश्चिम बंगाल के। नीतीश नुपाने अकेले आगे बढ़ रहे, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं वो सवाल के ऊपर जवाब देने के पहले ये कहूँगा कि लोग कहते हैं 7 मिनट और 17 सेकंड बचे हैं। मेरे हिसाब से 450 सेकंड बचे हैं, तो 450 सेकंड काफ़ी होते हैं एक गोल स्कोर करने के लिए। ये बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग की बात है मिलिंद जो आपने कही। और एक बार उत्तर प्रदेश का फिर से आक्रमण शूटिंग सर्किल में आ चुके हैं और अभिनव पांडे का एक बार फिर से शानदार बचाव और बहुत होशियारी के साथ पश्चिम बंगाल ने शूटिंग सर्किल से गेंद को क्लियर किया है। पर लगातार आक्रमण ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं कि थोड़ी सी चूक पश्चिम बंगाल को खतरे में डाल सकती है। यूपी एक बार फिर से आक्रमण करता हुआ पश्चिम बंगाल के हाफ में। From a hockey perspective, this is a wonderful match. It's a pity that one side will lose this match and the other side will win. That's what sports is all about. You have one victor and one vanquished, and between these two sides, Uttar Pradesh to start off with, who got that goal, down but not out. That's what we know players to be. You know, yesterday or rather day before yesterday, Shrihari Natraj in the swimming pool was choked and finished seventh. But yesterday he came back to win 2 gold medals. So all sportsmen are known to come back from behind in spite of an injury. And this is the way that he came down, stamped on the ball, got the stick on his eye or a little above his eyebrow. Can be dangerous. मिलिंद, आप कह रहे थे कि कोशिश की जानी चाहिए दोनों टीमों की ओर से कि जो निर्णय है वो 60 मिनट में हो जाए। बिल्कुल सही। हमने कई अंतर्राष्ट्रीय मैच देखे हैं, चाहे वे हॉकी के हों, चाहे वे फुटबॉल के हों। यदि नौबत शूट आउट की आई है तो कभी कभी ऐसी टीम भी उस मैच को निकाल ले गई है जो वास्तव में उसकी हकदार नहीं थी।
आपने थोड़ी देर पहले विकास ने कहा था कॉमनवेल्थ गेम्स ने इंग्लैंड वाज डाउन बाय 4 goals and then they came back to win against India, that important match as far as the Commonwealth Games are concerned. So you may be up by a few goals, and that's the reason why I said count in seconds. Minutes don't mean anything to me. You just saw a few minutes back, after all the aggression that we had, all that it took them was to get into the circle, and that 1 second could have got them that goal. मिलिंद, जिस तरह से इस क्वार्टर में अभी तक खेल हुआ है और आप तो सेकंड्स को गिन रहे हैं, लेकिन मैं स्क्रीन पर 6 मिनट। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल। The day, in those 60 odd minutes, it's the players who got to do it. The coach can teach you whatever you want, but at the end of the day, it's you who got to perform and execute that out there in the center. So I personally feel that in this particular match between Uttar Pradesh and West Bengal, this time it's the turn of a West Bengal player, hard one on the shoulder, or on the back actually, the soft part of the back, the tissues that we talk about. 6 minutes and 12 seconds, so 6 into 6, 360 seconds, plus 12, 372 seconds in which to decide whether you want to go into the strokes or the shootout or finish it before that. जी बिल्कुल सही है। दर्शकों से बता दूं कि जबकि लगभग 360 सेकंड्स का खेल बाकी है, यहाँ स्थिति ये है राजकोट के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में, उत्तर प्रदेश 1, पश्चिम बंगाल 1। मिलिंद, आप राजकोट की बात कर रहे थे, आपने दीव की बात की, आपने अहमदाबाद की बात की, आपने भावनगर की बात की। मैं बताना चाहूँगा कि सोमनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो कुल मिलाकर राजकोट बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वच्छ। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत की जो अलख जगाई है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। Yes, and also got the sports persons of the nation together on one platform. You couldn't have had a better platform than this one, and hockey being one of the 36 sports that has been contested in the 36th national games. Uttar Pradesh now mounting the attack through there, but stopped extremely well by the defense. Wasim Khan looking for an opening, can't find one, back pass. Avoy Ekka gives it back there, moving up very quickly. Nitish Nipune, he needs to get someone, got there, got there. Young man, you needed 2 more guys to support you. They were not there, all by himself once again. Where are the support? Those 5 or 6 seconds were crucial moments from the Uttar Pradesh perspective. They have now come back, falling back very quickly. 5 in the defense for West Bengal. We are now at a crucial juncture of this match. Will that one goal come here? Is this the time? And stopped, and a penalty corner. जी, ऐसा पहले भी हुआ है मिलिंद की, जब नीतीश निपाने आक्रमण पर गए थे यूपी के खिलाफ, तो वे उस बार भी वहां अकेले थे, और जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं दर्शकों को, इस बार भी वे अकेले हो गए थे। यदि 1 या 2 फॉरवर्ड उनके साथ और होते तो हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का ये आक्रमण कोई रिजल्ट ला के दे देता। देखिए, 10 सेकंड पहले जो वेस्ट बंगाल प्लेयर थे वो सर्कल में थे, क्लोज थे, गोल बनना जा रहा था, और अब सडनली द एंटायर पेंडुलम हैज स्विंग द अदर वे। बिल्कुल सही, और उत्तर प्रदेश की टीम इस पेनल्टी कॉर्नर को लेने के लिए तैयार। पश्चिम बंगाल के डिफेंडर और गोलकीपर तैयार इजेक्ट करने के लिए। विसिल की आवाज और इजेक्ट किया गया, सफाई के साथ स्टॉप किया गया है उस गेंद को, लेकिन ये खतरा फिलहाल पश्चिम बंगाल के ऊपर से टलता नजर आ रहा है। अच्छा बचाव वहां पर किया गया, और गेंद पोजीशन अभी भी उत्तर प्रदेश के पास। लगातार हमले, ऐसा लगता है कहीं कुछ पेनल्टी कॉर्नर्स और ना उत्तर प्रदेश के खाते में डाल दे।
If someone who's a cardiac patient is watching this match, then I'm sure he'll be very, very worried. Good ploy there, very good ploy there. But look at the West Bengal defense, taking it away very quickly. Wasim Khan. And more trouble there coming for the West Bengal side. Is this the moment of truth? Is this the moment which might change the entire complexion of the game in the fourth quarter, the dying minutes? Uttar Pradesh will have to think and think hard. West Bengal will have to do some head scratching. The defense will have to be very strong. This is too close for comfort. 7 of them from Uttar Pradesh waiting to strike the ball. No, not again. West Bengal strong in defense. That's been their strength. And the umpire there says, take it again. So one more body blow as far as West Bengal are concerned. This is the moment of truth. Will luck come in their favor? Sometimes, that element of luck is what can change the game. सही कहा मिलिंद आपने, और लगातार मौके मिलते हुए उत्तर प्रदेश को, लेकिन उनको भुनाने में असफल। एक बार फिर तैयार इजेक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश की टीम लगातार तीसरा पेनल्टी कॉर्नर लेते हुए पश्चिम बंगाल के विरुद्ध इजेक्ट किया गया, रोका गया और ड्रैग करके गोल पोस्ट में डालने की कोशिश ना करके अपने साथी को पास देकर इसे गोल पोस्ट में डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये लगातार मिलिंद जिस तरह से 3 आक्रमण टले हैं पश्चिम बंगाल की टीम है उनकी गोल पोस्ट के सामने से, इसमें उनकी डिफेंस लाइन का भी बहुत योगदान है। वे भी जी जान लगा रहे हैं और ये दोनों के लिए अग्नि परीक्षा जैसा है। Oh yes, absolutely. I think I said that before, that it's a pity that one side will have to crash out from here in spite of all the good work that you played. I really wouldn't put my finger on either of the two sides, but both the sides have been exemplary. West Bengal came here as the underdogs of this quarter-final, moving quickly. Yes, move on, but don't give the ball away. They have given the ball away to Uttar Pradesh. The moment you give the ball away, you're allowing the opponent, either Uttar Pradesh or West Bengal, to move forward, which is what they're doing at this point of time. Squares this one, back, moves in front, doesn't find a player, does one, once into the dangerous area once again, and how quickly does Bengal take it away? Full marks to them. Nitish Nipune onto the leg. Uttar Pradesh still in possession. What a match this has turned out to be. बिल्कुल मिलिंद, आपके शब्दों में कहूं तो लगभग 150 सेकंड्स का खेल होने को बाकी है और ये 150 सेकंड्स बहुत होते हैं दोनों ही टीमों के लिए। एक अंतिम क्षणों में फिर से कोशिश, फिर से प्रयास उत्तर प्रदेश का, और पश्चिम बंगाल की टीम भी लगातार कोशिश करती हुई कि वो अपनी बढ़त को बना सके, लेकिन ऐसा नहीं लगता। और ये रिवर्स स्टिक लगाई थी, टोमोहॉक था गोल पोस्ट की ओर पश्चिम बंगाल के उत्तर प्रदेश का, लेकिन सफलता नहीं, खतरा अभी टला नहीं। शूटिंग सर्किल में लगातार खेल होता हुआ शानदार खेल का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के द्वारा। If you were to give marks for defense, then I think a high percentage of it would go to the West Bengal side. Still in that area, lurking around. We are now getting into the last 60 seconds of play out here. 60 precious seconds. Bengal on the attack there, but aimless, absolutely aimless onto the sideline. Far side, moving up quickly is Rajkumar Pal, and onto the back line aimlessly. 40 seconds, 39. The countdown has begun. What a match. Yes, you rightly said. I think this by far has been the best of the 3 quarterfinals. The first match was one-sided, Karnataka beating Gujarat by 11-2. Close encounter between Haryana and Tamil Nadu, although Haryana went on to win 3-0. And here in this match, with under 15 seconds remaining, it's Uttar Pradesh 1,
West Bengal 1. Now into the final 5 seconds. There we go. There we go. That's the finish. 1-all. We'll have the shootout to decide who goes through to the semi-finals. And you can very clearly see that West Bengal look a happy lot. बिल्कुल मिलिंद, मैं आपसे यही कहने वाला था कि वेस्ट बंगाल के प्लेयर्स जिस तरह से एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, उनकी जो लैंग्वेज है लैंग्वेज नहीं है, मौन होकर कह रहे हैं कि हमने जो किया बहुत अच्छा किया। यूपी जैसी टीम के खिलाफ 1-1 की बराबरी, ये उनकी उपलब्धि कही जाएगी। मिलिंद, ये उनका अचीवमेंट है। I don't know who's going to win this match. It doesn't really matter as far as you and I are concerned and Vikas is concerned. But what we have watched and what viewers have watched is good hockey. That's important. Watching good. अजनबियों को पल में अपना बनाया, अमूल the taste of India। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया, अमूल the taste of India। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल the taste of India। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल the taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल the taste of India। Not making any mistake. The host, Gujarat. Uncharacteristic error by Kamlesh there, the libero. Here's an opportunity, no mistake there. Short set, short set. And that's the beauty in volleyball. You don't give enough time for the blockers to settle. There you see the setter using a slight touch, short set and a beautiful spike, well executed. And whenever in volleyball you have to beat a single blocker, it's virtually impossible to get the point. Here comes Gujarat once again. Kamlesh this time with a better reception. Here we go. Once again using the ding and not going for the spike. Well executed. It's not always about power. There you see he has the opportunity. Gets a nice set there. Opportunity to spike. Sees that there are two blockers already ready there and does a beautiful ding. Gujarat already bringing in some momentum. 3 points up. Unforced error. Not what you would expect. Wasn't particularly an aggressive serve. Just a lack of concentration there, not following the ball onto his hands. 4-0. Getting lucky off the tape. Off the tape. Everyone looking around, who's going to go for that ball? And right in the middle of that hole. 5 quick points, and this makes it a situation for a timeout. Rajasthan would want to recalibrate. And the coach will be keen to tell his players. There you see the intensity on the coach's face. Wanting to tell his players that be serious. We know we lost that close first set, but we need to be focused. And Gujarat will need to do more of the same. Especially in volleyball where you exchange points so frequently. Getting 5 points in a row is very, very rare. Let's see if Rajasthan can pick themselves up after that timeout. If you've just joined us,
We are watching Rajasthan versus Gujarat, and the first set went to Gujarat 26-24. This is difficult, and Gujarat has been on a roll. फॉलो नहीं करता है, फॉलो कराता है, लाइफ के मजे लेने से ये नहीं डरता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गेंद आने वाली है और वो उसे किस तरह से रोकता है। अगर आपको याद है हॉकी से हट के फुटबॉल अगर जाएंगे, ओलिवर कान जो जर्मन गोलकीपर था, ही वाज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। लाइकवाइज एक यूरोपियन कप फाइनल थी जिसमें गोलकीपर था, इन्होंने मिस किया है। तो वी आर हियर एट द मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। Gosh, I would not like to be present there. I can tell you one thing. I would not like to be present. 0-0 after being 1-all. Can you imagine? 0-0 after being 1-all. They're the first one. They're the first one for Uttar Pradesh. What a start this is. Who was that? Who was that? The first one. So Uttar Pradesh taking the first one. Soft touch there, and that came from Rajkumar Pal. He's given them the lead. For Bengal now, it's Kunjan Topno. बहुत सुंदर गोल राजकुमार पाल की स्टिक से आता हुआ, और ये देखिए एक और गोल वेस्ट बंगाल की ओर से। एक बार फिर से 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें, एक पेनल्टी स्ट्रोक दोनों ने स्कोर किया है। और पश्चिम बंगाल की ओर से ये गोल स्कोर करने वाले मिलिंद थे कुंजन टोप्पो। तो इस प्रकार से कहा जाए, जैसा कि मिलिंद बार बार कह रहे थे, 0-0 की स्थिति आ रही है। So unlike the stroke, this is a different version now. For saved. No, yes, saved. It was Ayush. It was Pavan Rajbhar. So the goalkeeper for West Bengal, Abhinav Pandey, brilliant. Nearly got it there. Flung himself. Brilliant save there. And Pavan Rajbhar. What a save. What a save this is. For Bengal, Nitish Nipune. जी, यूपी की टीम निराश, और यहाँ नीतीश निपुणे पश्चिम बंगाल के लिए। एक बार फिर से कोशिश करते हुए गोलकीपर के सामने, और बहुत होशियारी से, चतुराई से गोलकीपर के दोनों पैरों के बीच से गेंद को गोल पोस्ट में पुश कर दिया। बिल्कुल ताकत नहीं लगानी पड़ी। बहुत ही चतुराई भरा गोल नीतीश निपाने की ओर से। That was good thinking there. Most goalkeepers perhaps think that the ball would go to the left or the right for Uttar Pradesh. Rajupal, 2 goals in the pool games. Big moment for him. No. It is some great work there which has come from the Bengal goalkeeper. Rajupal, up forward. So 2 of them have missed for Uttar Pradesh. Rajupal and Pavan Rajbhar. Rimanshu has got it for them. No. Prashant Kumar strong there in the goal at this point, blocking it. Getting hot there for Uttar Pradesh. They missed 2. Bengal have missed 1. Time now for Vishal Singh. बहुत रोमांचक क्षण इस तीसरे क्वार्टर फाइनल में, जबकि विशाल शूट आउट के इस चरण में आगे बढ़ते हुए, उनके सामने गोलकीपर अभिनव पांडे। देखना है क्या होता है। बहुत चतुराई के साथ उन्होंने अभिनव को डॉज दिया और गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया। मिलिंद में कह रहा था कि क्या
अभिनव पांडे का अनुभव काम आएगा। रिप्ले देखिए कितनी होशियारी के साथ 16 नंबर की जर्सी में गोल को पोस्ट के अंदर विशाल ने डाल दिया था। मैं कह रहा था आपसे कि किस तरह से पांडे का अनुभव काम आता है। देखिए वो अनुभव काम आया मिलिंद। Tarun Adhikari for Bengal. This is the important one. This is there or not there. Yes, he's done it. He's done it for them, which is Tarun Adhikari. So they've got up there 3. This is now Uttar Pradesh's final chance. Tarun Adhikari had to do it for West Bengal. Fox, the goalkeeper, Prashant Kumar. That's the man, the captain. Oh, he's done it. He's done it. Lalit Kumar Upadhyay has got them back in the game. So it's now a crucial moment for West Bengal. If they do this, they go up by 4-3. If they falter, it's back once again to square one. Gosh, Dinesh, I can't watch. कितने रंग आज हमने हॉकी के देखे। और एक बार फिर से 11 नंबर की जर्सी में पश्चिम बंगाल के किशोर लाकरा कप्तान, और प्रयास होगा लेकिन चूके किशोर लाकरा। So can you imagine the best player of the side, the captain there misses. 2 misses there for West Bengal, 2 misses there for Uttar Pradesh. Took his time, nearly got there, should have gone on the other side, hit the side. 1-1 at the end of 60 minutes, 4 quarters, 3-3 at the end of the 5s. This match, perhaps the finest matches that I watched for a long time. लंबे समय तक राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में ही नहीं, भारतीय हॉकी के इतिहास में इस मैच को याद रखा जाएगा। मिलिंद, जिस तरह से मैं आपसे बार बार कह रहा था, कितने रंग हमने देखे आज हॉकी के, कितने रूप देखे हमने हॉकी के। 1 गोल से पिछड़ने के बाद पश्चिम बंगाल की बराबरी, उसके बाद गोलकीपर अभिनव पांडे का शानदार खेल, लेकिन उनके शानदार खेल का कोई फायदा नहीं ले सकी पश्चिम बंगाल की टीम, और स्थिति एक बार फिर ज्यों की त्यों। So that one goal now will decide. Kunjan Topno not successful. That one goal will make the difference between either a semi-final or packer back to go home. कुंजन टोपनो की ये चूक बहुत भारी पड़ सकती है, और यहाँ तो ये लगता है कि पेनल्टी स्ट्रोक दिया है मिलिंद अंपायर ने। Time for Abhishek Singh. He's got it. Oh, he's missed it. Gosh, I can't believe this. मिलिंद, आप क्या कोई भी विश्वास नहीं करेगा। देखिए 17 नंबर की जर्सी में उत्तर प्रदेश के अच्छे माने जाते हैं ये खिलाड़ी, लेकिन वे भी दिशा चूक गए। क्या खेल है, क्या हॉकी है। The best players can come under pressure. Rajkumar Pal, who had scored, he's done it there for Uttar Pradesh. He had scored earlier on, and he is the man of the hour for Uttar Pradesh. Very cool, like a cucumber, and this is the right move. Got the goalkeeper right in front, the very strong Abhinav Pandey, and what a star he's turned out to be. बिल्कुल आपने सही कहा कि अभिनव पांडे जैसे गोलकीपर को टॉस देना एक बहुत बड़ी बात है, जबकि उन्होंने अपनी टीम के लिए शानदार बचाव किए थे। तो मिलिंद, कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे इस खेल पर, क्या है आप सोच, बहुत संक्षेप में। What can one say? I think the victors obviously Uttar Pradesh by 4-3 at the end of all the action that we've seen. I'm going to get Vikas in out here, because Vikas, you are watching and I'm sure you are as nervous as the players there. बिल्कुल, मैं खुद इस समय बहुत फील कर रहा था नर्वस, लेकिन यह मुकाबला सडन डेथ में आखिरकार जीत की है।
यूपी की टीम ने सडन डेथ में रूल है हॉकी का, जो टीम पहले लीड बनाती है वो जीत अर्जित करती है। और क्या शानदार मुकाबला शूट आउट में देखने को मिला और लाइफ लाइन दिया था दलित कुमार उपाध्याय ने, यूपी टीम के ओलंपियन। और बंगाल ने जो आज, और फिलहाल एक बहुत बेहतरीन मुकाबला यूपी वर्सेस वेस्ट बंगाल शूट आउट में अपने नाम किया है यूपी ने। और सीधे अब आपको हम दिल्ली स्टूडियोज लिए चलते हैं इससे बेहतरीन हॉकी के बाद।